The nominated member of this House from April 2007 to April 2013, born on 7th August 1925 at Kumbakonam in Tamil Nadu, Professor Swaminathan, a plant geneticist by education, laid a firm foundation for agricultural renaissance in India in 1960s. He earned global acclaim for his affirmative stand on sustainable agriculture, mainstreaming gender considerations in agriculture and rural development. As an able administrator, Professor Swaminathan led several developmental organizations in the country and abroad. His enormous contributions helped India to rise from a drought-stricken food importing country to being declared self-sufficient in food production in 1971. His seminal contributions were duly recognized through the first World Food Prize in 1987, Padam Shri in 1966, Raman Magsaysay Award in 1971, Padam Bhushan in 1972, and Padam Vibhushan in 1989, among others. In the passing away of Professor M.S. Swaminathan, the country has lost a true visionary, a groundbreaking agriculture scientist, and an able parliamentarian. Dr. M.S. Gill, a distinguished figure in Punjab's bureaucracy and politics, passed away on the 15th of October 2023. He served as a member of this House representing the state of Punjab for 2 consecutive terms from 2004 to 2016. Born on 14 June 1936 in the state of Punjab, Dr. Gill joined the prestigious Indian Administrative Service in the year 1958 and served in various capacities under Union and Punjab state government. Dr. Gill, an outstanding administrator, also served as the Chief Election Commissioner from 1996 to 2001. And it was during his tenure that electronic voting machines were successfully introduced in Indian elections. He also served as a minister in the Union Council of Ministers, holding portfolios of youth affairs and sports, and statistics and program implementation. Dr. Gill received several awards, including the prestigious Padam Vibhushan, awarded in the year 2000. In the passing away of Dr. M.S. Gill, the country has lost a capable administrator, a prolific writer, and an illustrious parliamentarian. Sri D.B. Chandrasekhar passed away on the 7th of November 2023. He served as a member of the Distinguished House representing the state of Karnataka from April 1986 to December 1989. Born on 26th August 1936 in Chikmalgaru district of Karnataka, Sri Chandrasekhar had an illustrious political career spanning over 4 decades. An advocate by profession, he had an illustrious political career which included being a member of Lok Sabha for 3 terms from 1971 to 1984, member of Legislative Assembly 3 terms, and Legislative Council of Karnataka. He was also a cabinet minister in the government of Karnataka from 1979 to 1980. In the passing away of Sri D.B. Chandrasekhar, the country has lost an able administrator and a distinguished parliamentarian. Honorable members, we deeply mourn the passing away of Sri Lalit Bhai Mehta, Srimati Basanti Sarma, Professor M.S. Swaminathan, Dr. M.S. Gill, and Sri D.B. Chandrasekhar. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Secretary General. Kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Constitution 128th Amendment Bill 2023, passed by the House of Parliament during 261st session of Rajya Sabha and assented to by the President. Sri Rao Sahib Dada Rao Danve. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री कौशल किशोर जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री वी मुरलीधरन. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Sri Brajlal. Thank you, Chairman, sir. I rise to present the following 3 reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Number 1, 246th report on Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Second, 247th report on Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and 248th report on the Bharatiya Saksh Bill 2023. The reports were presented to the Honorable Chairman Rajya Sabha on 10th number 2023 when the House was not in session and forwarded to the Honorable Speaker Lok Sabha on the same day. Orders for the publication and circulation of the report were given by Honorable Chairman Rajya Sabha. Thank you, sir. Announcement. Honorable members, notices under Rule 267 received from Dr. John Britas, Sri P. Wilson, Sri Santosh Kumar P. and Sri Binoy Vishwam do not merit any admittance. Announcement 2. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Phulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Sri V. Vijay Sai Reddy, Sri Sukhendu Shekhar Rai, and Sri Kartikesh Sharma. Announcement 3. I have to inform honorable members that a letter has been received from Dr. D. Virender Hegde, member, stating that he is unable to attend the sittings of the current 262nd session of Rajya Sabha from 4th to 18 December 2023 due to his prior committed engagements. Does he have the permission of the House for remaining absent from 4th to 18 December 2023 during the current 262nd session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Honorable members, announcement number 4. Based on the recommendations of the Business Advisory Committee, a procedure is in place that members who wish to speak in a debate should give their names to the table office not later than 30 minutes prior
to the commencement of a debate with the approval of their party leader or whip. The procedure is also brought to the notice of the honorable members through issuance of a para in the Parliamentary Bulletin Part 2 before the commencement of every session. However, honorable members, it has been observed that during the course of debates, requests are received from the members from various parties to participate in such debates, and at times without the approval of their party leader or whip. This practice causes difficulty in regulating the speaking time of parties as well as individual members. Honorable members are accordingly requested to kindly adhere to the stipulated procedure and send their names for participation in a debate at least 30 minutes prior to its commencement through their party leader or whip. Matters raised with permission. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे महाराष्ट्र में 16 जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर में फसल की क्षति 1.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इनमें से ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल और गढ़चिरौली के करीबन 96 तालुकाओं में बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा, 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है, उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर। श्री जगेश। Thank you, sir. I'll speak in my language. ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು MNCಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಜನರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद श्री जगेश जी. माननीय डॉक्टर फौजिया खान. Deputy Chairman, sir. Sir, the steep increase in screen time in early childhood years has become a growing concern in India. The advantage that technology has in education, entertainment, and communication cannot be denied, sir. But it has been observed that very young children who are still in their early childhood years are spending more hours in front of screens than required. This has been found to have a negative impact on their various aspects of their personalities, their vision, their cognitive, their intellectual, emotional, social, and also physical development, sir. Most children are addicted to screens, with mobile phones playing the roles of babysitters in families. Sir, excessive screen time beyond approximately 1 hour daily links to behavioral problems and poorer vocabulary acquisition. The surge in screen-based technology usage among very young children has raised concerns about its impact on mental health and overall well-being. A study reveals a connection between increased screen exposure from 6 to 18 months of age and adverse outcomes including heightened emotional reactivity, aggression, externalizing behavior. Such addiction may also lead to attention deficit hyperactivity, which is called ADHD, sir, and low academic output. Additionally, findings suggest that elevated screen time at 4 years of age is linked to lower levels of emotional understanding at 6 years of age. These observations underscore the need for a balanced approach to technology use to safeguard the mental health of young children, sir. To address these concerns, a comprehensive strategy should be implemented. The development of a policy framework should prioritize setting permissible limits for screen time during educational activities as well. Parents need support in understanding the consequences and in managing the children's screen exposure, and this can be achieved through educational programs and resources that guide them on effective supervision. Additionally, sir, one more important point, workplaces should consider policies that enable parents to balance workloads and allocate dedicated time for their children, fostering a healthier balance between technology use and quality time in the family. Sir, this dual approach, combining educational reforms and supportive parental policies, aims to create a more conducive environment for the holistic development of children while acknowledging the role of technology in education. The greatest risk, sir, is that this increases the risk of online predators exploiting small children through child pornography and the like, sir. The government must therefore pay attention to this critical issue. Thank you, Fauziya ji. Very important issue. Mani Sri Sandosh Kumar P. Thank you, Deputy Chairman, sir. I take this opportunity to demand the immediate release of rupees 5,352 crores center aid to the state of Kerala. It's the genuine share of the people of Kerala
and it is not anybody's generosity. And this amount includes 790 crores of rupees in the form of UGC pay revision, another 700 crores rupees for paddy procurement, and for healthcare it is 220 crores. So altogether it is 5,350 crores. And the state of Kerala properly submitted all the documents and made certain changes which were suggested by the central government. But even now, this huge amount is due to the state of Kerala. So I take this opportunity once again to demand the immediate release of the same. Moreover, sir, I would like to add one important thing, that the existing center-state financial relations must be redefined. According to the 15th Finance Commission, as it is rightly observed, states account for more than 62% of the total national expenditure. And these states are playing a major role in achieving the sustainable development goals. But whereas their income share is just 37%. This is a huge, glaring disparity, and this must be addressed within no time. And after the implementation of GST, states are also suffering with shortage of finance. So there is an immediate demand of revisiting, restructuring, or redefining our center-state financial relations. Otherwise, we cannot achieve the sustainable development goals. And I request the union government, I demand the union government to take note of this. And let me add one more thing. Kerala as a state is the worst sufferer. 15th Finance Commission provided for just 1.9% of the central taxes for Kerala, whereas at the time of 10th Finance Commission, it was 3.9% of the central taxes. So please note all these points and please redefine these center-state financial relations. Thank you. Thank you, Manisi Santosh Kumar P. Please. Those who wants to associate, kindly send your names here. Mani Sri Sakti Singh Gohil ji. मैं एक गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूँ। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में हैं। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज़ फॉर 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं। पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है और जब फिशिंग बोट्स वहाँ रहती है उसके अंदर से सारे फुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने कुछ चीज़ें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीज़ें की थी। मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहाँ मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा तो उसे कैद में मिलेगा और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार की रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो। तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहाँ गया और फिशिंग बोट वहाँ रख ली है तो उसके लोन की जो किस्तियाँ उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी। वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहाँ पे हुआ था पर राशि बहुत कम है कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं, इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं। तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी कि जीपीएस दिया
कि जिसे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापस रहेगा। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए, GPS सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से GPS का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की ये राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए CBI के जरिए। थैंक यू सर। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Chairman. Thank you, Deputy Chairman, for giving me the time to speak on an important issue of farmers who are custodians of traditional seed varieties. So, India had rich agrodiversity. Scientist Dr. Richarya had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agrodiversity wealth, our farmers continue to conserve some of them in their farms. Despite great logistical hardships and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different crops. Some have been recognized with the Genome Savior Award, which is a welcome recognition for their contribution. We also need to remember the role of women farmers. So, government needs to identify and support such, train them for maintaining genetic purity of seeds, characterization and cataloging under a scheme providing infrastructure facilities and stipends. Surely, government will agree with me, sir, that desi seed varieties and the farmers who conserve them need support so that it can then become the basis for spread of organic and natural farming. Sir, while George Fernandez, who led an aggressive campaign against the signing of GATT and WTO treaty, who was an inspiration for me, I am proud that in 2009, when the regulator GEAC approved BT brinjal, it was again my party leader Nitish Kumar who opposed this. And the then Environment Minister, Mr. Jairam Ramesh, in 2010, ordered a moratorium on GM crops, which continues till the present government approved GM mustard last year, sir. In seed saving, natural and organic farming, I got trained by people like Dr. Debal Dev, who have conserved 1,400 paddy varieties, and Subhas Palekar, who makes Jivamrita out of desi cow dung, and the millet man of India, Dr. Khadar Wali, all of whom advocate desi seeds, sir. Two of them are recipients of Padma Awards by the present government. Each of them believe that there cannot be organic or natural farming without desi seeds. Definitely not GM crops. Thank you. Thank you, Mani Hegde ji. Mania Srimati Sangeeta Yadav ji. माननीय उपसभापति जी, आपने एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युवा लड़कियों और महिलाओं पर एसिड हमला समकालीन भारतीय समाज की एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के दर्द से पीड़ित है और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 1500 एसिड हमले हुए हैं। इस जघन्य अपराध से बचे लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से भी पीड़ित हैं। वे आजीवन भेदभाव, कलंक और समाज से अलगाव का भी सामना करते हैं। वे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई महिलाएं अपनी चोटों और अक्षमताओं के कारण काम करने और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। मैं सरकार से एसिड हमलों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लड़कियों और महिलाओं को व्यापक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूँ। मैं यह भी निवेदन करती हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो, उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए,
उनको शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिले, साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले और सामाजिक बदलाव के लिए भी हम कुछ अलग से प्रयास करें। सरकार से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు సార్. నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్కు సంబంధించి జెన్యూన్గా పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను అనుసరించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగవాలని చెప్పింది నా డిమాండు. దానిలో భాగంగా ఓటు హక్కు అనేటటువంటిది నిర్భయంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుంది. ఓటు హక్కు పరిపాలనా విధానానికి ఆయుధం వంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్చూచి అయిన అలాంటి ఓటు హక్కును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా తొలగిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్షం వారు ఓటర్లు తొలగించడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. అలాగే ఓటర్ల కోసం ప్యారలల్గా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చోట్ల ప్రాంతీయ సమాంతర వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీరాజ్ బదులు పంచాయతీ సచివాలయాలని, మున్సిపాలిటీలో గృహ సారథులని అనేక మందిని ఇట్లాంటి వాళ్ళను నియమించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లలో తొలగించు కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యంగా మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది. ఈ విషయంలో మాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. అలాగే ఉదాహరణకు అనకాపల్లి పరిధిలో 70,000 ఓట్లు తీసివేశారు, నర్సీపట్నంలో 17,000 ఓట్లు తీశారు, మాడుగుల్లో 9,500 ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు గోల్మాల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. వాటిని సరిచేయలేదు ఈ రోజు వరకు. వాటిని సరిచేయమని చెప్పేసి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వాటిని తొలగించడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం ప్యారలల్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిధులకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్లు తొలగిస్తున్నటువంటి వైనాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ కూడా సరిదిద్దనందువల్ల మేము ఈ రోజున పార్లమెంట్లో ఇక్కడ లేవదీయవలసి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు వజ్రాయుధమైన ఓటు హక్కును పౌరులకు లేకుండా ఎన్నికల్లో దొడ్డిదారిని గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా దృష్టి పెట్టి మేము చెప్పిన అవకతవకలపైన వీటిపైన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను చేర్పించాలని ఫారం 7 బల్క్గా ఇస్తూ ఓటర్లను తొలగించడానికి అధికార పార్టీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో వాటిని పరిశీలించి చేయాలని, తొలగించే ముందు ఓటర్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని మేము ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాము. దీనిపైన రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం చేస్తుంది కనుక వేరే రాష్ట్రాలను అధికారులను నియమించి थैंक यू। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो आपके कमेंट है एज पर रूल्स विल एग्जामिन वेदर इट विल गो और नॉट, प्लीज। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी। Deputy Chairman, sir. Sir, the provisions for reservation were introduced in the Constitution of India to provide education and employment opportunities to the backward classes, that is BCs, so that they could be at par with others in the society, with other sections in the society. Sir, in fact, the Mandal Commission has recognized the BCs are historically marginalized and made recommendations to provide reservations for backward classes whose income is less than the mandated ceiling. Though the mandate others
other BCs whose income is higher than the mandated, the labeled mandated limit were excluded, and they are called as creamy layer and excluded from the reservation, sir. Sir, the creamy layer was introduced and it was first raised to 2.5 lakhs in 2004, revised to 4.5 lakhs in 2008, revised again to 6 lakhs in 2013, and last revision took place in 2017 at 8 lakhs per annum. Sir, the enhancement is done to adjust for the inflation once in 3 years. However, the existing limit for creamy layer has not been revised for the last 6 years. During this time, the inflation increased manifold. Applying 3-year formula, the revision of creamy layer limit is twice overdue till now, sir. The delay in revising the creamy layer limit has denied the reservations to many needy and deserving backward classes, that is BCs. There is an urgent need to revise the income criteria. The Ministry of Social Justice also recommended increase the limit from present 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. Therefore, I strongly urge the Union government to revise the creamy layer limit and ensure that 3-year interval of revising the creamy layer limit is strictly adhered to. This will ensure the true social equality for all BCs in the country. Thank you very much, sir. Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri M. Muhammad Abdullah. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. This is my demand to reduce the beneficiary contribution of 10% while implementing Jal Jeevan Mission at villages with more than 50% of SC and or ST. Sir, the Jal Jeevan Mission, a program of this government, and a crucial step towards achieving the United Nations Substantial Development Goal 6, which aims to ensure access to water and sanitation for all. Sir, what is the basic necessary for any lives? The good governance should ensure that all the citizens in India are getting access to water and sanitation. As per the government press release, 60% of the rural households, that is out of 20 crore, and 11.66 crore rural households are connected through functional household tap connection, and remaining 40%, that is approximately 9 crore households, yet to be connected, sir. Sir, the recent problem in this scheme is the revised beneficiary contribution. While launching this scheme, it is mentioned villages having more than 50% ST and ST population, where community contribution would be 5% of the capital cost. Recently, the ministry has increased the community contribution to 10% of the capital cost, and earlier it was 5% only. This has posed a difficulty in implementing the scheme now. Honorable Deputy Chairman, sir, SC/ST population in our country are the most marginalized and economically weaker section. Good governance should empathize their situation and devise the scheme and guideline in favor of the citizens. Increasing the beneficiary contribution for the villages with 50% or more SC and ST households had reduced the interest of the people to avail this scheme, and no wonder this will be the bottleneck for this scheme implementation. Sir, I humbly request the Honorable Minister via this August House to take necessary steps to reduce the beneficiary contribution at these said villages down to 5% or nil. Thank you, sir. Thank you, Mani M. Muhammad Abdullah ji. Mani Shri Balveer Singh ji, Sant Balveer Singh ji. बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, तुसी ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पर्यावरण ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 21,08,000 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $37.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਦਾ 1.37% ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ की। धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय संत बलवीर जी 3 महीने का 3 मिनट का ही है ये 0 आवर, तो 3 मिनट, इसलिए उससे अधिक आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्लीज माननीय ऑनरेबल श्री P. विल्सन। Sir, there is an attempt to thrust the Uniform Civil Code by the Union government on the people of this country. The Uniform Civil Code proposes a unified set of personal laws applicable to all religions, which would govern marriage, divorce, inheritance, and adoption. If the UCC is implemented, the current separate laws for Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Zoroastrians, Sikhs would be replaced by a common law. The question is whether the Union government is thinking of obliterating customs of all religions and kill secularism. India is a remarkably diverse country, encompassing a wide range of religious, cultural, and linguistic variations. Within Hinduism, numerous subcultures exist, each distinguished by its individual identity, traditions, and customs. Imposing a single set of personal laws on all religions, subsects, and denominations could potentially erode their distinctiveness and rich diversity. Sir, the first casualty of UCC would be the Hindu tribes, especially from states like Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka, who have a unique customs and traditions, who are all protected by Article 371, A to H of Constitution, and the UCC would destroy these constitutional guarantees. The second casualty is freedom of religion, guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution, not only for minorities, but also for the majority religion. Additionally, Article 29, which protects the rights of the minorities to preserve and protect their distinct culture, will erode the unique culture and traditions of minorities. Thirdly, UCC would affect the advantages given to the Hindu undivided family in property and taxation laws. Most religious treat marriages as a holy sacrament. UCC will reduce it to a civil transaction like property transaction and will destroy the sanctity of these sacraments. Tying a thali or mangal shustra or taking 7 steps around the fire or performing Sirdharita self-respect marriages introduced by pair arranger Anna will be wiped out by UCC. Already the 21st Law Commission, after 2 years of consultation, recommended not to bring UCC. The Constituent Assembly itself assured while enacting Article 44 that unless there is a consensus by all citizens of this country, the Uniform Civil Code
should not be implemented. I would like to urge the Honorable Prime Minister through this August House that instead of thrusting a uniform civil code that wipes out customs, we should adopt a rights-based approach to bring in equal rights for women, children and disadvantaged groups by encouraging dialogues, understanding and bring in gradual reforms within communities through social engineering to weed out undesirable practices. It is through these means that we can strike a balance between individual rights, freedoms and communal harmony. I thank the Deputy Chairman for giving me this opportunity. Sir, you should listen to us than shouting, sir. Thank you. Please, no. Manishri Dr. V. Sivasan. Dr. V. Sivasan, please. Please, nothing is going on record. Sir, please. Javadekar ji, please. Please. Manishri V. Sivasan, please. Respected Chair. The painful incident has occurred in Silkyara. You have to speak for tunnel. 2 minutes because Mr. Sri Ajay Pratap Singh, Honorable Employee Associate. Sir, I am not here. Please speak for 2 minutes because Honorable Sri Ajay Pratap Singh will associate for 1 minute on the same issue. Sir, yes, there is time, sir. Sir, the Silkyara tunnel incident, that is a very painful incident, sir. There, all security measures and the rule and norms are violated in that area. The company has violated, sir. Why this sad incident was happened? What was the inquiry report after the incident? Sir, this was not in the first time in that area. Earlier, 17 times it was reported. The workers already told that. So, the transparent inquiry, the fair inquiry is very necessary there. Sir, the entire world, in that day, 17 days, the 41 persons, 41 workers, they were in the tunnel. Sir, entire world was watched the incident. In that Silkyara tunnel, the security violations, lot of violations are there, sir. There was no safety exist. Basically, the plan it was there, but really it was not there, sir. Then another thing, sir, the escape route was planned, but it was not it was not executed, sir. No trench gauges or safe tubes were not there, sir. Workers working in unprotected parts of the trench, so it should be ensured. The workers say that the fume pipes which were required per safety norms were not there. Sir, this gross negligence of the part of the company, it should be ensured. Sir, please. 59 Honorable seconds. Ajay Pratap Singh will associate on the same issue. Sir, Honorable Ajay Pratap Singh, please, on the same issue for 1 minute. Please. आप लोग प्लीज, आपको मालूम है कि जो एसोसिएट करते हैं उन्हें 1 मिनट और जो मुख्य बोलने वाले होते हैं उन्हें 2 मिनट सेम इशू पर. दिस हैज बीन द प्रैक्टिस. प्लीज, यस, ऑन द सेम टाइम, सेम इशू, 3 मिनट्स. प्लीज आप बोलें. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे साथी पी शिवदासन जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है उस विषय के संदर्भ में उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में पहले दिन पहला कदम रखा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और इस घटना ने यह दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको चरितार्थ करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को, जनरल रिटायर्ड श्री वीके सिंह जी को और इस बचाव कार्य से जुड़े हुए सभी तकनीकविद, सभी सलाहकार, सभी रैट माइनर्स और सभी पक्षों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बचाव कार्य को संपन्न कराया है और सारे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है. प्लीज. Honorable Shri A.D. Singh, Honorable A.D. Singh, Honorable A.D. Singh, Honorable A.D. Singh, Mani absent, Mani Shri Ajodhya Rami Reddy, Mani Shri Ajodhya Rami, Mani A.D. Singh, please. Priyanka ji, please sit.
आपका नाम नहीं है लिस्ट में. It's not accepted. It is not going on record. No. Mani AD Singh, you speak. That will go on record. आप बोले. आप बोले. The National Green... Please. Ministry AD Singh ji, please speak. The National Green Tribunal in 2014 banned all diesel vehicles. Please, nothing is going on record. Sri AD Singh ji, please. The Priyanka National ji, Green do not Tribunal in obstruct. 2004 banned Please, all diesel your name vehicles is not here. Please. older than 10 years and petrol ones older than 15 years. The ministry has also issued a notification in 2023 for deregistration and scrapping all vehicles owned by the central and state government that do not comply with NGT order. Delhi government has issued orders for deregistration and scrapping vessels. Further, we know that older vessels are at risk to road safety, consumes more fuel and pollute the environment. To tackle the problem, the government has come out with a vehicle scrapping policy. Under this scheme, the persons opting for scrapping the vessels get incentive in the form of reduced registration fee and road taxes besides the incentives from the auto industry. As per government estimate, at present there are more than 1 crore vehicles that are required to be deregistered and scrapped across the country, for which government has approved 70 registered vehicle scrapping facility, out of which 38 are operational. However, the situation on the ground level, particularly in NCR, is totally different. There are lakhs of vehicles, including government vehicles flying, which has breached the 10 years diesel and 15 years 10 years petrol and 15 years diesel mark, adding to the cause of pollution. The whole purpose of NGT order and the government efforts are defeated by this omission on the part of the concerned department to take action. It is high time that all end-of-life vehicles should be deregistered and scrapped. Thank you. Thank you. Please. Manya Priyanka ji, your issue is a state subject. It has been not allowed. Please, it's not going on record. Please. Manya Sri Ajodhya Rami Reddy, not present. Sri Niranjan Vishi, Honorable Sri Niranjan Vishi, not present. Honorable Sri Vaiko, yes, you have given your issue. It's on concern for frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lanka Navy. You have given a subject for... Please. Sri Vaiko, please. You do not want to speak? So, Honorable Sri Alaram Karim ji, your issue is there. Mani Sri Alaram Karim, need to increase share of central government in various important government schemes like PMAY, etc. Please. Sir, Mr. Chairman, sir. I have submitted please, an important issue related with the financial position of Kerala. My colleague Santosh presented here that matter. With the development activities and other things, Kerala is facing acute shortage of finance. Sir, we request the Government of India to revisit the Financial Commission's definitions and the principle of fund allocations. Now, our borrowing limit is drastically reduced. And some public sector companies, those who have taken loan for their purpose, it is also calculated as state borrowing. Sir, that is a unfair practice. So far, such attitude was not taken against any state. Government of India's public sector, certain departments, particularly National Highway Authority, has taken huge loan. It is not calculated as the loan of Government of India. So these principles are to be revisited. And also the amount spent by the state towards land acquisition for National Highway, that is also introduced, taken by, borrowed by the KIFBI, a company constituted by the company. It is also calculated as a state borrowing.
that is to be exempted from that calculation. And the decision... Question hour now. Question hour. Honorable members, the multimedia devices, MMDs, may not display the list of questions due to some technical glitch. Though it will be resolved very soon, the mics of honorable members may be switched off for a moment to reboot the system. Honorable members may kindly bear with the inconvenience. So now question hour. ठीक Those of the members who have an impression about it, I would be happy to receive them in my chamber and discuss the matter today itself. Question number 1, Shri Kartikeya Sharma. Please. Question number 1. Shri Kartikeya Sharma. Honorable Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Honorable question number 1, please. Honorable Minister, Honorable Member Shri Kartikeya Sharma, Supplementary 1. Thank you, Chairman, sir. So I'd like to ask the Honorable Minister if the Ministry is considering to take any steps to safeguard the rights and the interests of the passengers of airlines, just like the rights of airlines and airline crews are defined. As there have been many instances that have come to light where passengers are mistreated, and especially older people and people who are first-time flyers coming from rural areas. So in the name of safety and procedure, if the government and the ministry is planning... Be pointed. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाएँ। और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है, 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं, और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफ़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफ़र को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे दूसरे राज्यों में, इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था बीकैस, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है, और सेफ्टी के लिए डीजीसीए जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है, ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है, और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। Second supplementary, Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honorable Minister whether the Ministry has considered opening of or increasing the number of pilot training institutes in the country given the increase in demand in the aviation sector. Honorable Minister. सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे,
आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे हैं। हमने इस संख्या को दुगना से ज़्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में, और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the Udan scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister, and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. Sir, I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we take to come to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है, और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है। प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था। कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे। पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस के तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है, और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फ़ीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी, उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी, और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी, नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवॉर्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं, और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम वहाँ प्रचलित कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री वी विजय साई रेड्डी। So close and so far. Sir, according to the CAG report, under Udan scheme, only 54 routes or 7% of the awarded routes managed to sustain the operations beyond 3 years concession period. Sir, can the government explain what steps are being taken to resolve the problem in respect of the other routes unable to finish their concession period? Honorable Minister. Sir, Vijay Sai Reddy ji, as always, has raised a very erudite question, and I shall endeavor to try and satisfy him. In every situation, sir, you can always look at a glass half full
or a glass half empty. Vijay Sai Reddy ji proposes to look at it from a half empty viewpoint. We in government look at it from a half full viewpoint. These were routes and airports that had been wiped off the civil aviation map. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji that today under Udan Yojana, 76 airports that were never on the civil aviation map of India in its history have today reappeared on those maps. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi and the government that today 1.30 lakh passengers have travelled through Udan Yojana who could never ever dream of travelling on a plane before. It is only because of his vision that today 2.75 lakh flights have operated in India due to the viability gap funding that has been proposed and given by the central government for this scheme in particular. And it is only because of his vision that the northeast that was looked at as always Purvottar, the furthest point of India, from the periphery has been brought into the mainstream. And 9 new airports have been constructed in the northeast of India, of which 6 have been possible only because of the Udan scheme. As far as his question is concerned, I'd like to correct his data. This scheme has been proposed as a VGF scheme for 3 years, where viability gap funding is given for 3 years for an airline. We hope that post that, the route sustains itself. If it doesn't, then we have to look for new routes to add on to these schemes. That's why we have a target of 1,000 routes over the period of the scheme. Today, 517 routes have been operational. His data is slightly dated because he relies on the CAG report. The current data, I'd like to correct him, is 78 routes are still continuing after 3 years. 40% of the routes are operational, 15% of those are continuing after 3 years, and it is our endeavor that as India grows, as people grow accustomed to air travel, this will only increase in the days to come. Our projection is that from 144 million travelers in 1920, by the year 2030, India will have 42 crore travelers by civil aviation in the days to come. Sri Rajiv Shukla, fifth supplementary. मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती हैं। दूसरे, अभी फॉग आ गया है और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से ही। ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उड़ान योजना के साथ नहीं, लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहाँ तक कैंसलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसलेशन होती है 1-2 घंटे फ़्लाइट के पहले, तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ़्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ़्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की ज़िम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफ़ंड देना, उनको अगले फ़्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहाँ तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट न हो,
उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर स्केड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर स्केड्यूल करीब करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर स्केड्यूल में हर एक एयरलाइन का स्केड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहाँ से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर स्केड्यूल में और 21-22 के विंटर स्केड्यूल में फॉग के ज़रिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो स्केड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है, और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320 कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर पानी की क्वालिटी को जांचने के लेकर, मापने को लेकर के कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जल शक्ति, अब जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद में देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक तरफ जहां देश के सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। और जो काम प्रारंभ हुआ 2019 से लेकर के अब तक जो 16% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी जाता था, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के 71% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। और पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है, इसके कारण से माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम कल देखा आपने कि प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये जो पीने के पानी की गुणवत्ता और आर्सेनिक के को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही हैं कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़ करके 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है, पानी की लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है। मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं, जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहां जो है
कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था देश में नहीं थी माननीय सभापति महोदय, कि देश में पीने का पानी जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय, उसको जांचने का कोई किसी तरह का जो है देश में व्यवस्था ही नहीं थी। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज़्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की, और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता के विषय पर समाधान हो सके। लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रांत से आती हैं, मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य से कहूंगा कि अपने प्रांत में उस विषय पर बात करें। आज देश में, पूरे देश में केवल एक मात्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बचा है जो आज भी 40% से नीचे जल जीवन मिशन पर है। उस पर गति बढ़ाने की नितांत रूप से आवश्यकता है, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती मौसम नूर। Sir, I would request the Honorable Minister to give a specific answer on what is the total financial investment made by the Ministry in establishing community water purification as part of the arsenic mitigation efforts. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हमने क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए जहां क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जो जल जीवन मिशन का जो फंड एलोकेशन का जो हमने बेंचमार्क बनाया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज़ को 15% का प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के क्वालिटी को लेकर के चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से ऊपर उपबंध करती हैं और कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग अलग तरह के जो है प्रदूषण को लेकर के उसके मिटिगेशन के लिए अलग अलग तरह के उपबंध उसके लिए किए जाने की आवश्यकता होती है। Honorable Minister, it's a very pointed question. I know, I'm replying so direct pointedly. Response. She wished to understand about, she wished to know about the community water treatment water plant to mitigate the arsenic. मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी सूचना राज्य सरकार से मंगवा करके हम जो है माननीय सभा सदस्य को शीघ्र भेज देंगे। The Honorable Minister would get in touch with the Honorable Member to get all the details he wants. Supplementary, Dr. Fozia Khan. I'm so surprised. Sir, according to the risk of antimicrobial resistance, this is a significant global concern today. This issue extends beyond medical overuse, encompassing factors like water contamination from the pharmaceutical industry. Water waste treatment plants are pivotal in addressing AMR, which is a big concern. They serve as reservoirs and sources of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic-resistant genes. So recognizing various sources as potential routes for AMR spread, including recreational water, specifically in the rural areas, sir, in light of these challenges, what proposals or initiatives has the ministry put forth or intends to propose to prevent water seepage into this declining groundwater? Additionally, are there steps taken to monitor the levels of AMR in groundwater? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मैंने अपने पहले प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि भारत में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल और व्यवस्था ही पहले नहीं थी कि पीने के पानी की जांच की जा सके। और व्यवस्था न होने के चलते हुए सामान्यतया शहरी परिवेश में लोग अपने घर में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और RO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य थे। लेकिन क्योंकि इस तरह की व्यवस्था आप खड़ी की और पहली बार देश में सारे बेसिक पैरामीटर्स पर और सारे जो है सेकेंडरी पैरामीटर्स पर टेस्टिंग की व्यवस्था खड़ी हुई है, देश की सरकार
इस पर अपनी दृष्टिकोण से निरंतर निगदृष्टि बनाए रखती है, लेकिन क्योंकि पीने का पानी और इसके इतर पानी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है, तो प्राथमिक रूप से इस विषय पर काम करने की, इस विषय पर निगरानी रखने की जो है वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर राज्य सरकारों के सहयोग के लिए तत्परता के साथ में खड़ी है। Well, I can appreciate monitoring of the Honorable Minister. His team came to me. I put them to a very strict test about my own village, my own house, and inquired, is there a null there? They could give details of my entire village. Question number 3, Sri Irana Kadadi. Honorable Minister, first supplementary. धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार भूजल स्तर और पानी के प्रदूषण के आकलन के लिए तकनीक का प्रयोग करके पूरे देश में तालुका स्तर पर भूजल सेंसर्स का एक नेटवर्क बनाने का क्या प्रावधान करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन साहब, नितांत ही गिरता हुआ भूजल का स्तर हमारे देश के लिए अत्यंत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि भूगर्भ के जल पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत की, और हमारी कुल मिलाकर के विड्रॉल जो है वो दुनिया में हम सर्वाधिक करते हैं। 25% दुनिया के विड्रॉल का अकेला हम भारत में करते हैं। हमारे पीछे खड़े हुए पंक्ति में अमेरिका और चाइना दोनों को अगर साथ जोड़ दें तो उनका भी 1.5 गुना पानी हम विड्रॉल करते थे, और उसके चलते हुए निरंतर भूगर्भ का जल हमारा जो है वो कम हो रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ कर के हर एक प्लेटफॉर्म पर इस पर से बात करना प्रारंभ किया, पंचायतों के सरपंचों को चिट्ठी लिखने से लेकर के जिस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स उनके लीडरशिप में लिए गए, और उसके कारण से एक जल चेतना का व्याप जो हुआ है, उसके चलते हुए भारत सरकार के जल शक्ति अभियान, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए अमृत सरोवर अभियान, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने जिस तरह से अपने अपने यहाँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने अपने यहाँ पे गुजरात में जो इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार ने जो जल युक्त शिविर प्रारंभ किए, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश में हुई, इस तरह की सारी योजनाओं के चलते हुए अब भूगर्भ का जल का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है। मैं माननीय सभी सदस्यों के माध्यम से देश को बहुत प्रसन्नता के साथ में ये विषय सूचित करना चाहता हूँ। ये 2019 से पहले जब जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री के रूप में बनाया, उससे पहले देश में कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में भूगर्भ के जल को मापने के लिए जो देश भर में नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी, और 3-3, 4-4 साल बाद में जो रिपोर्ट पब्लिश होती थी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती थी, क्योंकि 3-4 साल में जो है उसके ऊपर कोई उसमें बहुत सारा और एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता था। लेकिन पिछले वर्षों में पहले हमने 2 साल पर किया, और पिछले साल से अब हम प्रतिवर्ष जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित करने की क्षमता हमने डेवलप की है। और मैं इसके साथ ही अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहना चाहता हूं कि 2023 में 2020 के बाद में जो डाउनवर्ड्स हमारा हमेशा घटता हुआ भूगर्भ जल का आंकड़ा आता था, जो 6000 से ज़्यादा ब्लॉक्स में मॉनिटर करते थे, हर साल हमारे क्रिटिकल जो है ब्लॉक्स, सेमी क्रिटिकल और जो है ब्लॉक्स और ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। पिछले 4-5 साल के परिणाम हुए कि अब जो है पिछले साल में 2023 की तुलना में, अगर 22 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो 2023 की रिपोर्ट जो हमने 3 दिन पहले पब्लिश की है, आज उसके चलते हुए सेफ जोन जो है, सेमी क्रिटिकल से सेफ जोन ऐसे 127 जोन है। ओवर एक्सप्लॉइट से क्रिटिकल की तरफ आकर के पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, ऐसे ओवर जो है 27 ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल से सेफ हुए 127 ब्लॉक हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेफ हो गए ऐसा 1 ब्लॉक है, और ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेमी क्रिटिकल हुए ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं। इस तरह से 224 ब्लॉक्स में पॉजिटिव
Rami Reddy. Provide an assessment of the impact of artificial structures for groundwater recharge in Andhra Pradesh and share plans for scaling or modifying these efforts based on observed outcomes. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को ही इसमें इनिशिएटिव लेकर के अपने प्लान्स बना करके और अपने योजनाओं को धरातल पर उतारना है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसके लिए जो है वो सहयोग करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस पर निवेश करने के लिए जैसी योजना का प्रारूप है उस पर हमेशा ही उसके लिए जो है वो आगे बढ़ करके काम करने के लिए आतुर है। Fourth supplementary, Dr. Fozia Khan. Sir, the government aims to double ethanol blending in petrol by 2025. However, challenges are recently being faced in the ethanol supply chain, including disruptions in the rice supply. This is impacting ethanol manufacture, and projections are a 3.3% fall in sugar production. Honorable Member. Sorry, sir. You had given me supplementary for question number 3. Okay, sir, I'm sorry. No, it does happen sometimes. I was not paying attention. Sir, India is the largest global user of groundwater, extracting 4.92 billion cubic meters annually, with 63% of Indian districts experiencing declining groundwater levels. This decline is directly correlated with higher poverty rates, estimated to be 9% to 10% higher in areas where groundwater tables fall below 8 meters. In light of this given situation, what specific measures has the ministry undertaken to identify regions at risk of low groundwater levels? And additionally, what initiatives has the ministry taken to raise awareness among farmers about the challenges associated with excessive groundwater use, considering the invisible nature of groundwater and the potential for unscientific extraction and over-exploitation? Honorable Minister. हालांकि मैंने अपने पहले प्रश्न के मूल प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तार के साथ में इस विषय पर उत्तर दिया था कि प्राथमिक रूप से ये राज्य सरकारों का दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को लेकर के, ग्राउंड वाटर की बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर के, मुझे लगता है माननीय सदस्य का उस समय उनके संज्ञान में नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में जिस तरह से प्रारंभ से लेकर अब तक इस विषय को लेकर के जन चेतना का जागरण किया है, आज उसके चलते हुए निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव ग्राउंड वाटर पे रिचार्ज जिस तरह से बढ़ा है उस पर हुआ है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि अटल भूजल योजना के माध्यम से हमने पहली बार देश में सप्लाई साइड से इतर हट करके जो है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करना प्रारंभ किया है। उसका प्रभाव भी अब ऐसे 7 प्रांत जहां चुनौती ज़्यादा बड़ी थी वहां दिखाई देने लगा है। मैं एक उदाहरण माननीय चेयरमैन साहब आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर जो है स्थानीय सरकार किसी शहर की तय करती है और वो अगर ग्राउंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, रिचार्ज एक्टिविटीज़ पर काम करे, मेरे प्रदेश में डूंगरपुर एक शहर है जहां बहुत बड़ा तालाब आपके संज्ञान में आप जो है शहर के बीच में लेक होती थी जो सूख करके फुटबॉल का मैदान बन गई थी, क्योंकि पानी आज विज्ञान मानता है और 5000 साल पहले की भी हमारे जो है जो लेखों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जमीन का पानी, सतह का पानी, जमीन के भीतर का पानी और नदियों का पानी सब आपस में कोरिलेटेड है। तो वहाँ पानी, क्योंकि जमीन का पानी विड्रॉल ज़्यादा हो रहा था इसलिए वहाँ की लेक सूख गई थी। वहाँ के स्थानीय नगर पालिका ने ये तय किया और तय करके हर एक घर की छत के ऊपर होने वाले रेन वाटर को डायरेक्टली ड्राइड अप हैंडपंप्स के साथ में जोड़ा, एक छोटा सा फिल्टर लगा करके, और जब उस पर काम करना प्रारंभ किया तो वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि आज उस लेक में जो है बढ़िया नौकायन किया जा सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर सब राज्यों में, सभी शहरों में लिए जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें मैं एक कॉशन भी रखना चाहता हूँ कि
कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज़ के साथ में सेफ्टी को भी सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो, ताकि सेफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। हम एक्विफर्स को इस जल्दबाजी में कहीं कंटामिनेट न करें, लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में अगर समन्वित प्रयास होते हैं तो हम एक बहुत बेहतर भविष्य इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्री पवित्र मार्गेरिटा। Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House. Supplementary 1, Shri Pavitra Margeta. Yes, sir. My first supplementary is that the state of Assam has been producing oil for the last century. And now my question is that how the people of Assam, the state of Assam, are getting benefit resulting from the oil production in the state of Assam along with the CSR activities in our state. Honorable Minister. Sir, I'm particularly pleased that the honourable member has asked this question about the history of oil exploration in the state of Assam and its current state. I'm happy, sir, because Assam is the state where all this began. In fact, sir, it was in the year 1886 that the first oil well was dug at a place called Digboy. And sir, the name Digboy is also very interesting because, as you will recall, sir, 1886, we were under the domination, governance of an alien dispensation, and it was the white master who was shouting, "Dig, boy." So from that Dig Boy came the Digboy oil wells, 1886, 1889. Sir, the first commercial scale oil well was produced and oil extracted. I think it was 20,000 gallons per day at Digboy, 1889, sir. And in 1901, the first refinery in Asia, not in India, but in Asia, came up in Digboy, sir. So I'm very happy, sir, because today we've come a long distance from there. Today, the state of Assam produces 4.2 million metric tons of crude oil, which accounts for something like 14.38% of the total crude oil produced in the country. Equally, the state of Assam produces 3.6 BCM, billion cubic meters of natural gas, which accounts for 10.43% of the country's natural gas production. Sir, it is axiomatic that whenever oil is stuck in any state, both the state government, the state revenues, the people of the state benefit from it, and equally the country as a whole benefits from it. Oil and natural gas and other forms of energy which we are producing, biofuels, compressed biogas, soon green hydrogen, they will all contribute to enhancing our energy mix and to save precious amounts of foreign exchange on account of importation. On the crude oil front, sir, we are, because the economy is booming, is growing. Last quarter, sir, 7.6%. Overall, everybody estimates we'll have a rate of growth of over 6.5%. We still import 85% of our crude oil and, sir, about 50% of our gas. The state of Assam, sir, in the year 2019 to 20 and 2022 to 23, the state government's revenues from the production of natural gas, and every state government gets revenues from energy production, it was 9,291.17 crores for the revenues which accrued from the production of crude oil, sir, and 851.28 crores respectively, sir, from natural gas. Sir, these are the revenues which came on account of the royalties that the state government got. But, sir, there are other attendant benefits which also accrue. For instance, there is economic activity, both direct, indirect employment creation. There are thousands of local people get jobs. Sir, and I've been Minister for Oil and Petroleum and Natural Gas only for 2.5 years or so. I can say that different states would like now to enter the energy ecosystem because there is revenue for the state, there is employment for the people, etc. Sir, I think the honourable member also asked about the
CSR which accrues from this kind of activity. Sir, I'm going to check the overall figure, but I do remember that recently I was in Assam where I had the privilege of inaugurating a hospital which has been made by CSR funds, sir, Corporate Social Responsibility Funds, by ONGC. This is a hospital in Shivsagar, sir, and it cost 483 crores. Sir, the total amount of CSR activity which has come to the state of Assam from 2014 to 23 as a result of this is 1,600 crores, which has been spent by the oil and gas PSUs on CSR activity. And one hospital alone, which has CT scan, MRI, modular, OT facilities, 483 crores. So, but the beauty of it is, this is a hospital situated somewhere, and it will cover a vast catchment area. Large number of other adjoining districts will also benefit from it. So the answer, sir, which I now have, the figure is 1,600 crores for the period between 2014 and 23. We have had in the country 8 governments that didn't have this period also. I was part of one. Second supplementary, Sri Pavitra Margarita. Thank Pradhan Mantri Narendra Modi ji for earmarking and investing more than 40,000 crore rupees in the oil sector in Assam. My question is, second supplementary question to Honorable Ministers, is that what are the major projects are undertaken right at this moment in the state of Assam in the field of oil sector by the PSUs, especially the city gas connection and ethanol production, etc. Honorable Minister. Particularly pleased that the honourable member has chosen to ask this question because particularly after 2014, there has been an acceleration and more so in the last few years of the kind of projects which have been undertaken by the oil and gas PSUs or as OMCs as we call them. Sir, amongst the various major projects with overall project cost, these are about 44,000 crores as the honourable member says. Out of this, sir, Numaligarh refinery expansion project itself is about 18,968 crores. The Northeast gas grid is 9,265 crores. The Paradeep Numaligarh crude oil pipeline is another 9,058 crores. And the NRLS, that is Numaligarh biorefinery, is another 4,200 crores, sir. Sir, these are the projects which have already been sanctioned and where work is going on. The second component of the question related to ethanol. Sir, on ethanol as well, as the honourable member and others would be aware, sir, our ethanol or biofuels blending up to 2014 was about 1.5%. Sir, I was personally involved in the efforts which were made earlier. We had decided, rather the government of that day had decided that they wanted 5% ethanol blending in at least 10 or 15 of our states and union territories. But with the best efforts in the world, sir, we didn't proceed beyond 1.4, 1.5% for a variety of reasons. I think in order to succeed in ethanol blending, you need to put in place an ecosystem which will make it viable both for the feed providers, for the production of ethanol and for its use. Today, sir, I'm very happy we had a target of 10% blending by November 2022. We were able to achieve that target 5 months in advance. Our second target, sir, was 20% ethanol blending by 2030. The Honorable Prime Minister, because of the success of this and his leading up front, we were able to bring that target of 2030 to 2025. Today, we are in a situation, sir, we are already doing 12% blending. We will achieve the 20% blending 5 years in advance. For that, we need 1,000 crore litres. And, sir, we are already at about 580 or 600 crore litres. Insofar as Assam is concerned, sir, the oil marketing companies have signed 7 long-term offtake agreements for setting up dedicated ethanol plants with total production capacity of 1,150 kiloliters per day. The total financial outlay of these projects, sir, is 1,370 crore.
In addition, sir, NRL is setting up a commercial 2G ethanol plant at Numaligarh, which is expected to be commissioned by 2024, that is next year. The capacity of this plant is 185 kiloliters per day, and its feedstock will be bamboo. The project cost, sir, is 4,200 crores. Sir, I would like to conclude my response to this supplementary by saying one of the most reassuring and heartwarming aspects of our biofuel program is that we have gone from this traditional sugarcane-based feedstock thing to now second generation, that is to make ethanol from agricultural waste, parali, to make ethanol from bamboo, and Assam is leading the way in the production of 2G from bamboo, sir. Supplementary 3, Birender Prasad Basse. Your Thank you, supplementary, Honorable Chairman, sir. Thankful to Honorable Minister to give him the detailed history of Assam oil producing state. Thank you, sir. You are very right. Asia's first refinery was established in Digboi, Assam, and it was built by British rule. Sir, direct question. Sir, Supplementary. I'm coming to the question, sir. Assam is an oil producing state. It is known to you, sir. When British was ruled Assam and India, at that time, Digboi refinery was established, sir. But after long back, sir, when Congress was ruled in our country, to get a refinery in Assam, when India was got freedom, we have to fight, we have to come to street, and we got the refinery in Guwahati, a mini refinery with production capacity only below 1 million tons, sir. But when this Narendra Modi government is coming, this government has taken lots of initiative, and now they have invested more than 80,000 in Numaligarh. Please ask your supplementary. Yes, Numaligarh refinery, 86,000. We are thankful to the Honorable Minister. Sir, by producing oil, Assam is getting royalty from the Union government. India is a oil deficit state, sir. We are importing crude oil from the abroad, sir. Now, I'd like to know from Honorable Minister, is Government of India seriously thinking about the increase of the royalty of crude oil production, which compare with the international? Honorable Minister. Very happy that the honorable member has decided through this supplementary to go deeper into the issue of earnings. And he wants serious response. And I'm going to give him a serious response with serious underlined. With serious underlined. Sir, the earnings of a state come from a variety of aspects of the ecosystem dealing with energy. Royalty is one aspect. Yes, as we increase our capacity, as more oil gets produced, as more oil gets refined, as the refinery expands. By the way, refinery expansion, we have currently 252 million metric tons per annum. We are going to take it up to 400. The Honorable Prime Minister met 450. So when you refine more, you'll get more royalty, without any doubt. But there are other aspects to this earning also. For instance, when we were able to complete 10% of biofuel blending by 2022, 5 months in advance, we were able to save 41,400 crores of rupees from the import bill. That enabled us to give 42,400 to our farmers. When we do 20% blending, it will be even more. Insofar as the state of Assam is concerned, I am not serious. I'm 100% sure that with the efforts which are being made to expand capacity, the efforts which are being made to produce and refine more, we just did an expansion of one of the Honorable Chief Minister tied me down in a public meeting. I agreed. We are expanding that refining capacity. So the more royalty will come definitely. But the issue is, there is more potential, including in other states of the Northeast. In fact, there is one issue between Assam and another state where there are some issues which we need to resolve. I myself feel that perhaps we have not exercised our, within quotes, our margin of persuasion, because oil is something, if you dig it somewhere, somebody, your neighbor may say कि ये आप तो निकाल रहे हैं oil, तो हमारी field से आ रहा है. We need to resolve these issues. But as I see this issue developing, the developments which have taken place, the expansion,
The earlier honorable member also from Assam, he spoke about 44,000 crores, but that is now. Even more is going to come, and I'm sure I can sit down with the honorable member you can, as the representative of the people, tell the state government, I have an excellent rapport with your chief minister, with the other chief ministers. We are all working towards enhancing both the oil production, natural gas production, which will ultimately benefit both the people of the northeastern states and their union. Sir. Fourth supplementary, Kamakhya Prasad Tasa. सर मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्या वो विस्तृत से इसका आंसर दिया। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ओएनजीसी एंड ऑयल इसका प्रोडक्शन कितना है और प्राइवेटाइजेशन कितना ऑयल फील्ड को क्या हुआ है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन देने का मतलब है उन लोग का प्रोडक्शन, उन लोग को सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओएनजीसी और ऑयल को क्या इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ने दिया? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, the petroleum and natural gas sector has the benefit of both the private sector in exploration and production, and it also has our OMCs, the marketing companies. Sir, how much is produced? I think we already have in the body of the answer, sir, I have stated that the production of crude oil in India, million metric ton, just now is 29.2 million metric tons. Sir, oil typically, oil and gas, these are capital-intensive sectors which have a large gestation period. Now, very often in the past, and I'm not looking at anyone or pointing fingers at anyone, when crucial decisions on investment could not be taken because there was this counterpoint of view that instead of putting in so much of capital expenditure, you're probably better off importing a cheap oil. Then of late there has been this other narrative, sir, which has emanated from the climate change discussions, the transition to sustainability. Globally, the investment in traditional fossil fuel, the entire system has dropped. But I can assure you, sir, we are doing things differently. There's now a concerted attempt along with the international oil companies with which we have signed the MOUs, our own OMCs, they're all collaborating, and we now have a situation where hopefully this figure of 29.2 million metric tons, I hope that by the time, whoever is the minister at that stage from the BJP government, after 2029, he will be able to give a figure with the multiplier of that, because I'm sure, I'm confident that the work which has been set up now and the exploration and production, all the incentives we've taken. To give you one example, sir, we have about 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. But we never, for some reason I don't understand, we never exploited more than 6 to 7%. We are now taking this 6 to 7% exploitation of the sedimentary basin to double the amount. And the answer to the question, the body of the answer provides, in fact, specific details on what have been done in that, and I'll read out to the honorable member. It says specifically that we are taking increase the net geographical area under exploration from 2.5 lakh square kilometers to 5 lakh square kilometers. This plus the opening up of 1 million square kilometers, which used to be part of the no-go areas for a variety of reasons. Sir, and it's only the Honorable Prime Minister who could have taken this decision to free this up from resident objections of security agencies, defense ministry, etc. Today we are in the situation, we are looking at towards the period ahead where this figure of 29.2 million metric tons will be much higher, and that we will be able to reduce our import dependence even as our consumption is increasing. Shri Santosh Kumar P. Explaining the improvements made in these fields. So may I know, will the government take any initiative to control the petroleum and natural gas prices? Honorable Minister. The honorable member has asked this. There are two ways of controlling prices, and clearly the model that we have been following
we have ensured that in the last 2 years, prices of petrol in India have come down by 11%, and of diesel, they've also come down, but by a smaller amount. Why have we been able to do it, sir? Because the central government, because of the initiative and decision of the Prime Minister, we reduced central government excise on 2 occasions, in November 21 and in May 2022, and we brought down the price by 13 and 16 Question rupees. number 5, Mr. Shri Binoy Vishwam. Question number 5. Honorable Member, question number 5. Shri Binoy Vishwam. I raise it. Honorable Minister. Yes, sir. Yes. Honorable Minister. Sir, reply is laid on the table of the House, sir. The House will meet again at 2 p.m. today. ना डॉक्टर की सुविधा है, और रोड का ये हालत है सर कि हम लोग जो है, मेरा ये हाथ छिल गया है सर कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से भी मैं वहाँ चढ़ नहीं पाया सर। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाला मेरे इलाके में जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, यहाँ से केंद्रीय टीम को भेजा जाए और बच्चे जो मर रहे हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के, उनकी जान बचाएगी। थैंक यू वेरी मच। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
a bill passed by both houses of parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a completion by improving the quality of evidence and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023 respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त
सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication, or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity, and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing, or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops.
Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these three bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18th August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all three bills is in English language, and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Sanhita has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Sanhita for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to Clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under Clause 104 on causing death by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years, as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Sanhita. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Sanhita. A recommendation has also been made to retain Section 497 of IPC on adultery in the Sanhita by making it gender neutral. This is 75th year of our independence. Now, the salient features: the Bharatiya Nyaya Sanhita, number of sections have been reduced from 511 to 356, and the chapters from 23 to 19. This is regarding Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Old Indian Penal Code. We have used the word Nyaya, not a dand, not a penal, because this is a democracy. We are giving justice, not dand.
not a penalty. 24 sections have been deleted from old Indian Penal Code, 22 have been added, and a large number of sections have been rearranged. The existing laws stemming from the colonial era no longer represented the present-day dynamics and aspirations of Indian society. The existing laws have often been criticized for being outdated and not in tune with the present-day needs. The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita seek to change the nature of law towards providing justice rather than punishment, and would be a step forward to remove traces of colonial mindset. It was a mammoth task of drafting comprehensive amendments to the criminal laws and 4 years of intense discussions for making new laws that imbibe Indian thought process and the Indian soul. A comprehensive review of criminal justice system in our country was the need of the hour to bring it on par with the contemporary aspirations of the people of India. Well viewers, that's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में सेना गठित की थी। 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने आजादी की रक्षा ही नहीं की, बल्कि आजादी हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना दिवस। भारत की तीनों सेनाएं, थल, वायु और जल सेना हर तरफ से देश की सुरक्षा में तत्पर हैं। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में हमारी तीनों सेना आती है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जब भी दुश्मन ने जल सीमा से हमारी सुरक्षा में सेंध करने की कोशिश की है, तब भारतीय नौसेना के आगे उन्हें हार मानना पड़ा है। भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि, साहस के कारण देशवासी उन्हें सलाम करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। कैसे हुई नौसेना दिवस की शुरुआत? भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत मई 1972 में वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में हुई थी, जिसमें 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। हम 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं नौसेना दिवस? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारतीय हवाई अड्डे पर हमला कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण हमले का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात हमले की योजना बनाते हुए सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना के जवानों को मार गिराया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना की कमान थी कमोडोर केपी गोपाल राव के हाथ में। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नौसेना के 3 क्षेत्रीय कमांड हैं: ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड। हिंद प्रशांत क्षेत्र में
भारत का एक अलग रुतबा है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी की गिनती होती है। इंडियन नेवी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी से कदम उठा रही है। उम्मीद है भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगी। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर भी मानवीय सहायता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा के अलावा हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है और इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना की ताकत को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। हमारी नौसेना लगातार मजबूत हो रही है, ताकतवर हो रही है। हमारी गिनती दुनिया भर की नौसेनाओं में होती है। हम सबसे आगे निकल रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि 2047 तक हमारी नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि पूरा जो सफ़र है अब तक का, वो इतना भी आसान नहीं था। तमाम चुनौतियां आई, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत होने जा रही है सक्षम भारत की इस खास कड़ी में। यूं तो देश की रक्षा में तैनात हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन बात अगर भारतीय नौसेना की करें तो इनकी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। लेकिन भारतीय नौसेना इनसे निपटने में सक्षम है। अथाह समुद्र में देश की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र में खुद को रेस में सबसे आगे कर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक अलग रुतबा है। हिंद महासागर में चीन का सैन्य दखल बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए इंडियन नेवी हर तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया भर की टॉप 10 नेवी में होती है, जो कि काफी पावरफुल नौसेना है। 250 से अधिक विमान, 130 युद्धपोत और पनडुब्बी, 23 विध्वंसक फ्रिगेट्स, 4 फ्लीट टैंकर, 18 ASW और मिसाइल कॉर्वेट शामिल हैं। अटैक सबमरीन के अलावा और भी काफी शक्तिशाली हथियारों और युद्धपोतों से लैस इंडियन नेवी के आगे दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं
नहीं टिकती हैं। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर मानवीय सहायता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इस लिहाज से इंडियन नेवी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आंतरिक सुरक्षा और समुद्री व्यापार से जुड़ी चुनौतियों से इसे निपटना आता है, जिसकी तैयारी भी नौसेना की जबरदस्त है। आज की इस खास कड़ी में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम आपका परिचय उनके साथ में करवाना चाहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं सुनील मिश्रा, डीजी SIDM से, वाइस एडमिरल रिटायर्ड सतीश सोनी जी, कमोडोर गोपाल सोरी रिटायर्ड सीनियर फेलो हैं ये VIF से। सर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहेंगे सर हम आपके साथ में। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे सशक्त नौसेना की बात आती है तो ये अब हम सबको पता है कि अगर मैं तीनों सेनाओं में बात करूं और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले नौसेना खुद को रख रही है। विथ 75% to 95% हम पहुंच चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? पहले तो संसद टीवी को बहुत बधाई इस खुले एनवायरनमेंट पे हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। पीछे बहुत अच्छा नया बैकड्रॉप है, नया पार्लियामेंट है और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया हम लोगों को, तीनों सेनाओं को और इंडस्ट्री को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि हमें अपनी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं और नीड्स हैं उसमें अपनी सेनाओं की ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, एक आमूलचूल परिवर्तन है जो हम लोग पहले जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा से बिल्कुल हट करके है। पिछले 6-7 सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया, कई तरह के बदलाव किए और वो जो बदलाव हुए उसका असर अब इंडस्ट्री में दिखने लगा है। क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुफीद है और नौसेना मेरे ख्याल से चूँकि तीनों फोर्सेस में उसका साइज़ छोटा है और बड़ी निम्बल फुटेड है, बड़ी फ्लेक्सिबल है और स्पीड ऑफ रिस्पांस उनकी बहुत तेज़ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे और नौसेना ने के पास एक एडवांटेज और पहले से था कि ये बिल्डर्स नेवी है। ये पहले से अपने जहाज़ बनाने के इनके पास शिपयार्ड्स हैं और जो अपने शिपयार्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत फ्रूगल इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत अच्छे कम रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं। सतीश सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखा जाए तो जब नौसेना प्रमुख ने बहुत पहले बता दिया है, 2047 का एक टारगेट निकाला है नौसेना ने कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्या मतलब आपके नज़र में क्या मायने हैं, आपका अनुभव क्या कहता है सर? देखिए, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उस वक़्त हमें थोड़े से जहाज़ रॉयल नेवी से मिले थे। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी 1962 तक हमें रॉयल नेवी के जहाज़ मिलते रहे जो उनके एक्सेस में थे। 1967 में हमने पहली बार गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स ने एक छोटा सा जहाज़ बनाया था, INS अजय। उसका इस जर्नी में बहुत महत्व है। 300-400 टन का होगा, एक गन थी उसके ऊपर। बट उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन ब्यूरो था वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहा, नए डिज़ाइन शिप के बनाता रहा, बड़े शिप के बनाता रहा और 1972 में हमने कमीशन किया था INS नीलगिरी। जो नीलगिरी था वो एसेंशली ब्रिटिश डिज़ाइन था, रॉयल नेवी का डिज़ाइन था, बट वो माइज़गांव डॉक लिमिटेड ने वो शिप बनाए थे, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। उसके बाद हमने अपना पहला इंडिजिनस शिप डिज़ाइन था गोदावरी।
वो गोदावरी हमने 1980s में कमीशन किया था। वो इतने बड़ा था जहाज़ नीलगिरी से, बट इतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं था। जब वो शिप सेल भी करते थे वो थोड़े ज़्यादा मूव करते थे समुद्र में, इतने सेटिस्फाइड नहीं थे हम। बट उसके बाद हमने और एम्बिशियस कदम उठाए। हमने INS दिल्ली जैसा बड़ा जहाज़ इंडिजिनसली डिज़ाइन और बिल्ड किया मैज़ागढ़ डॉक्स में। और उसके बाद जैसे कहते हैं कि बाकी तो इतिहास है, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, शिवालिक क्लास, कदमत क्लास और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और ये OPVs, ये जो जहाज़ हैं, अगर इन जहाज़ों में आप जाएंगे आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये किसी एडवांस्ड कंट्री में बने हैं कि इंडिया में बने हैं। कुल मिला के सतीश सर, जो आपका भी अनुभव रहा है नौसेना में, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। गोपाल सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल मैं जाना चाहूँगी। हम आज बात कर रहे हैं नौसेना की, तो ये रिकॉर्ड पर है, हम 75% जो हमारा जो कंटेंट है वो मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है, और 67 जो शिप्स हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है। फिर भी हम बात कर रहे हैं कि अभी 100% बाकी है। तो मुझे क्या समझा सकते हैं कि अब बचा क्या? हम इतना आगे तो बढ़ चुके हैं मेक इन इंडिया के तहत, तो अब क्या बचा है सर? ऐसा है, जब हम जहाज़ की बात करते हैं, इसमें 3 पार्ट है। एक हम कहते हैं टू फ्लोट, टू मूव एंड टू फाइट। तो पहले जहाज़ सेफली पानी में रहे, फिर मूव मतलब वो चले जैसे कोई और जहाज़ की तरह। और चूँकि ये नेवी की जहाज़ है तो जायज़ है कि लड़ाई करने के काबिल रहे। तो अभी जैसे आपने बताया 70%, तो हर एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए टू फ्लोट में सिंपल चीज़, जहाज़ का स्टील पहले हम रशिया से लाते थे, अभी हमारा स्टील अथॉरिटी पूरा बनाता है हमारे लिए। वैसे ही प्रोपेलर सिंपल चीज़ है, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। प्रोपेलर वो भी हम खरीदते थे, अभी हम खुद डिज़ाइन करते हैं। तो ये इस हिसाब से हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये कंटेंट है, जिस कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ। अभी जैसे हो गया टू मूव, अभी उसका इंजन, अभी आप ब्रह्मपुत्रा क्लास देखिए, उसकी पूरी इंजन हमने बनाई। शिवालिक क्लास का इंजन हमारा है, किर्लोस्कर का है, BHEL बनाता है, जो कि अभी जायज़ है। अभी जैसे गैस टरबाइन है जो कोलकाता क्लास में है, दिल्ली क्लास में, हम अभी भी अब इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अभी देश में अभी तक उसके बनाने की काबिलियत आई नहीं है, जो कि उसमें डेवलपमेंट चल रही है। तो विच इज़ व्हाट CNS टॉक्स अबाउट अचीविंग 100%। कल जब हम ये हर चीज़ जो हम बनाने लगे, इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूर ऐसी चीज़ें एक आध होंगी जो इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में नहीं है। लेकिन गोपाल सर, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, ये भी एक सवाल यहाँ पर उठता है कि बहुत सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हुए, लेकिन कई जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हुए और काफ़ी हद तक आगे भी निकल गए। जैसे कि अगर मैं 17 अल्फा की अगर मैं बात करती हूँ, 19 में देखिए शुरू हुआ, 2023 तक जो 6 जो हमारे जो 7 जो फ्रिगेट्स हैं वो अभी लॉन्च भी हो चुके हैं, जल्द ही कमीशन भी हो जाएंगे। लेकिन क्या बाकी जो पहले जो डिले हुए हैं उसका असर अगर आप हमें ब्रीफ करना चाहें? ये आप डिले देख रही हैं और मैं देख रहा हूँ डिले में कितनी हाउ वी बिल्ट अप आवर कैपेबिलिटीज, क्योंकि एवरी मिस्टेक और एवरी डिले इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये आप मत भूलिए कि ये जो टेक्नोलॉजी हम प्राप्त किए हैं, ये किसी ने हमें दिया नहीं है काफ़ी हद तक। इफ़ यू गो बैक टू फॉर एग्जांपल से 98 व्हेन वी कैरिड आउट अ न्यूक्लियर टेस्ट, इतने प्रतिबंध लगाए थी दुनिया हमारे ऊपर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली, तो हमें डेवलपमेंट करना पड़ा। जैसे अभी ISRO है, ISRO ने पूरी टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप की उस समय, तो वही हमारे ऊपर भी ये कई प्रतिबंधों का असर, कई जगह टेक्नोलॉजी डिप्रिवेशन हुआ। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम सेल्फ रिलायंस पे जा रहे हैं, ताकि ये चैलेंजेस हम इन फ्यूचर ना झेल पाएं। सुनील जी, क्या आप सर की बातों से अग्री कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारा अगर डिले भी है तो हमें वो एक सीख मिली है हमें उससे, लेकिन उसका फ़र्क तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा। नहीं, इसमें मैं एक और नज़र से देखता हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक बदलाव ये आ रहा है कि पहले हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर में थी, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में थी, या शिपयार्ड्स में खाली थी।
अब जो एक बदलाव ये 5-6 सालों में आ रहा है और जिसको कि भारत सरकार बहुत बड़ा पुश दे रही है, सीरियसली गंभीरता के साथ कर रही है और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कराना चाहती है। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो एंटरप्रेन्योरियल इंजेक्शन आ जाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है और चूंकि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करता है तो वो टाइम बाउंड करने लगता है। दूसरी चीज़, जो जब सहभागिता होगी, पार्टनरशिप होगी, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा जो शुरू हो गया है प्राइवेट सेक्टर और एग्जिस्टिंग डीपीएसयूज़ का और डीआरडीओ का भी। डीआरडीओ बिल्कुल, डीआरडीओ के पास इतने बरसों की टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर कर रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो ये जो बदलाव आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, और आने वाले समय से मेरा मतलब है ये कल नहीं हो जाएगा लेकिन परसों ज़रूर हो जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 91 में जिस तरह के हमारे देश में चेंजेस लाए गए इकोनॉमिक पॉलिसी में, ग्लोबलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में, उसके असर हमको 2000 के आसपास देखने को मिले। आज या 5-6 सालों में जो बदलाव लाया गया है पॉलिसी फ्रेमवर्क में, इम्पीटस दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को, उसके रिजल्ट्स हमको आने वाले कुछ सालों में ग्राउंड पे विजिबल होने लगेंगे। सतीश सर, अभी हम शिप की बात कर रहे थे। नो डाउट हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट व्हाई नॉट इन एयरक्राफ्ट? हम क्यों अभी भी एयरक्राफ्ट में बहुत अभी भी पीछे हैं? क्या ये जो पिछले टाइम, अगेन मैं कहूँगी कि इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया या इस तरफ सोचा नहीं गया? अभी सारे अगर आप एयरक्राफ्ट उठाकर देख लें तो सब हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस तरफ अगर हम अभी से भी अगर काम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि कई साल लग जाएंगे। देखिए, जो टेक्नोलॉजीज़ इजी होती हैं, आसान होती हैं, उसमें आप उसमें शीघ्रता से काम कर सकते हैं। बट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एयरक्राफ्ट के स्पेशल इंजन्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जिनकी मुल्क के पास हैं वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है R&D में। तो आपको बातें करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह की, पर जब टाइम आता है कुछ देने का तो वो इतनी आसानी से नहीं देते हैं। तो मेरा ख्याल उसी के कारण। बट अगर आप एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को थोड़ा एनालाइज़ करेंगे तो उसमें कई हमने भी शायद कोई भूल चूक हुई होगी, कोई हमने जो चीज़ें हैं वो अपना ठीक तरह से अप्रोच नहीं की हैं। बट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इज़ सर्टनली मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे अभी नेवी ने अपना इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाया है तो हम जैसे टू मूव और टू फ्लोट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमने इम्बाइब कर दी हैं। जो बट फाइट वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस रेडार्स, वो हम इतना अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। अभी भी हम जैसे ब्रह्मोस ही है, ब्रह्मोस एक और बराक मिसाइल है, ये हमने कोलैबोरेशन के साथ की है बाहर के मुल्कों के साथ। और आगे भी अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनका ये अप्रोच है कि किसी तरह स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो, क्योंकि जैसे माइन स्वीपर टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी मुश्किल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, उसको अब आत्मनिर्भर के स्टेज पे लेके आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सोचा तो जा सकता है गोपाल साहब। जब हम शिप बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं, तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी आगे जो है वो सोचा जा रहा होगा, या फिर आगे कोई ऐसी तो प्लानिंग होगी इसे लेकर के भी? अभी आप ही ले लीजिए, तेजस है, तेजस का नेवल वेरिएंट हमने ऑलरेडी LCA नेवी, आपने देखा होगा पिछले साल उसकी ट्रायल्स हुई हैं विक्रांत पे। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर ऑलरेडी इट इज़ इन द पाइपलाइन। तो लाइक द एडमिरल सेड, वो टाइम लगता है इसका, जो इफ़ यू कैन कॉल इट द टाइम, डेवलपमेंट टाइम इज़ मोर सिंपली बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म। बट इसका मतलब ये नहीं, अगर हमने तेजस बना लिया है तो जायज़ है कि हम तेजस का नेवल वेरिएंट तो टेस्ट कर लिए हैं, अभी जो नेवी को चाहिए एग्जैक्टली वो रिक्वायरमेंट, वो थोड़ी और देर लग रही है। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, रादर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ।
सतीश, अभी हाल तक हमने 113 देशों के साथ में एक्सरसाइज की है। क्या इसका फ़र्क पड़ता है सर, जब इस तरीके से हम ग्लोबली, खास करके अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं, तो अगर आप इस बारे में मुझे समझा सकें। देखिए, जो नौसेना है इसका एक तो डिप्लोमेटिक रोल होता है, भाईचारा बढ़ाना, और हमारे जो नेबर्स हैं वो जैसे लैंड नेबर्स तो जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, पर मैरीटाइम नेबर्स तो अक्रॉस द सीज़ हैं। तो जितने भी समुद्री देश हैं वो हमारे नेबर्स हैं। तो हमारा जहाज़ उनके तट तक पहुंच सकता है और उनका जहाज़ हमारे तट तक पहुंच सकता है। तो ये जायज़ है कि हम एक दूसरे से अपना भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे से सेम इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है ये समझें। तो नेवी का स्पेशली लास्ट 15-20 साल से ये रहा है कि हम अपनी जॉइंट एक्सरसाइजेज़ इंक्रीज़ करें, स्टाफ टॉक्स इंक्रीज़ करें, कैसे लोग सेम एक्सरसाइज करते हैं उनसे सीखें, कैसे लोगों के जहाज़ काम करते हैं ये भी उनसे सीखें। बट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे थोड़ा दोस्ती बढ़ाएं। वेरी इम्पॉर्टेंट, सुनामी 2004 में आपको याद होगा जब आई थी, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ में सबसे पहले कौन आया था? आपके नज़दीकी देश ही आएंगे। सो इंडिया हेल्प बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, और ये लोग तब भूले नहीं हैं कैसे हमने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया था। तो और इस पार्ट में, इस वर्ल्ड के इस पार्ट में सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिज़ास्टर रिलीफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समुद्र से जो इकोनॉमी आ रही है और भारत को जो हम तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, पूरे अगर वर्ल्ड वाइज, अगर मैं पूरे दुनिया में अगर मैं बात करूं भारत की, तो अर्थव्यवस्था को लेकर के मुझे क्या आप समझा सकते हैं कि नौसेना का क्या योगदान होगा भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में? नौसेना का एक योगदान ये होगा कि जो हमारी ट्रेडिंग लाइंस हैं, ट्रेड रूट्स हैं, जिस पे हमारे मर्चेंट शिप्स चलते हैं, उनको तो सुरक्षा प्रदान करती है और एक कॉन्फिडेंस देती है मैरीटाइम रूट्स के ऊपर कि हमारा माल और हमारे जहाज़ और हमारे आदमी सुरक्षित हैं। इसमें खाली भारतीय नौसेना का योगदान नहीं रहता है, बल्कि जो ये 113 देशों की आपने बात कही और मैरीटाइम डिप्लोमेसी की जो बात हुई, उसमें वो कंट्रीज़ भी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी और जगहों पर हमारे लिए कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। क्योंकि जो ट्रेड रूट्स हैं उसमें बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं। नेचुरल रिस्क हो सकते हैं कि कहीं पर डिज़ास्टर हो गया, और दूसरा है मैन मेड हो सकते हैं, जैसे पायरेट्स हैं और दूसरी और हॉस्टाइल कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस हो सकता है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में और इजाफा होगा, क्योंकि हमारी ट्रेड लाइंस अभी बढ़ रही हैं, हम उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है लोगों से। हम दुनिया की नज़र में एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए उभर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें नौसेना का सिक्योरिटी और सेफ्टी और कॉन्फिडेंस देने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आपका रिएक्शन इस पर? बिल्कुल सही। अभी अगर आप याद करें, सन करीब 80s में जब ईरान इराक की लड़ाई हो रही थी, तब वो टैंकर वॉर की बात हुई थी। उस समय आते जाते टैंकर्स को निशाना बना लिया था दोनों ने, वो एक था। अभी जो चल रहा है हमारा, जो मैंने बात किया मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का, उसमें एक डिप्लॉयमेंट है गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी की। ये नहीं है कि भारतीय नौसेना अकेले कर रही है, बट बाकी सारे नेवीज़ के साथ मिल के जो ये कर रहे हैं, ये काफ़ी मुआयना रखता है वर्ल्ड ट्रेड में। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ ऑफशोर एसेट्स, ये भी बड़ी चीज़, जैसे हमारे बॉम्बे हाई पे जो हमारे ऑयल रिग्स हैं। सो ऑल दिस पुट टुगेदर, अब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सागरमाला,
which is to increase the GDP of this country by more than 1%, which is going to be contributed by the maritime sector. तो उसमें maritime security बहुत मायना रखता है. वो कौन देगा? वो तो नौसेना के ऊपर निर्भर है. ज़रूर कोस्ट गार्ड का भी रोल है, नौसेना का काफ़ी बड़ा रोल है. तो ये सब मिला के दिस इज़ हाउ, लाइक आई कम्प्लीटली एग्री विथ व्हाट संजय जी सेड, कि जो कॉन्फिडेंस देता है पीस टाइम में, और जब लड़ाई जब होगी तो खैर है तो है ही. सर, नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि हम हर जिले से, हर गांव से एक अग्निवीर लें, और हम लगातार अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं. उनकी इस लाइन का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि एवरी विलेज हैज़ ए नौसैनिक. आने वाले दिनों में मे बी क्या फ़ायदा है इसका, क्या मायने हैं इस बात की, और हर जिला, हर गांव को जो टारगेट बनाया गया है, जो लक्ष्य है अग्निवीरों को लेने का, इसका क्या फ़ायदा आप देखते हैं? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देश के हर कोने का विल हैव अ स्टेक इन द मैरिटाइम सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेवी. ये सोच ली. वैसी फॉर एग्जांपल मेरे जहाज़ पे जब मैं कमांड कर रहा था, प्रैक्टिकली हर मणिपुर से भी थे, केरला से भी थे, जम्मू कश्मीर से भी थे. तो every citizen will now have a stake in the nation's security, specifically so maritime security. क्योंकि कई हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ किसी ने नेवी के बारे में सुना नहीं है. जायज़ है ये, क्योंकि हर एक कोस्टल स्टेट तो है नहीं. इस प्रोजेक्ट का सर, इस जो अग्निवीर जो हमने लॉन्च किया है तीनों सेनाओं के लिए, इस प्रोजेक्ट के तहत आप क्या फ़ायदा देख रहे हैं सर? ये तो खैर ये नेवी से, ये सिर्फ नेवी के लिए ही तो नहीं है, ये तो पूरी देश के लिए है. तो one end point is a stake in the national security for every, let's say every part of India practically. आप एक तरफ वो समझ सकते हैं. दूसरा, the age profile will be lowered, which is good. We always want a lower age profile. So ये फायदे हैं. सोच समझ के ही तो गवर्नमेंट ने किया है ये. सर, क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, हमारा देश बहुत विशाल है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, और सही फिगर तो मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल से 700-750 ज़िले हैं. 700 ज़िलों में से अगर हम ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा है, तो एक नौसेना प्रमुख ने, हाँ, नौसेना प्रमुख ने कहा है, माफ़ कीजिएगा, तो एक डाइवर्सिटी जो है पूरे नेशन की वो रिप्रेजेंट होएगी. और ये अग्निवीर, चाहे वो नौसेना में काम कर रहे हों, चाहे थल सेना में काम कर रहे हों, चाहे वायुसेना में काम कर रहे हों, इनका योगदान ये रीढ़ की हड्डी रहेंगे. और ये रीढ़ की हड्डी उतने दिन तक ही नहीं रहेंगे जब तक ये सेना में काम कर रहे हैं. सेना से निकलने के बाद ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं. सतीश सर, एक छोटा रिएक्शन आपका भी अग्निवीरों के ऊपर. हर जिला, हर गांव को सीएनएस टारगेट बना रहे हैं. क्या वजह, मतलब क्या विचार हो सकता है नौसेना? मेरा ख्याल सबसे इसका महत्व ये है कि नेवी सब जिला तक पहुंचेगी. अभी देखिए आप, हमारी अगर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा जो नौसैनिक अफसरान और सैनिक हैं वो बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से होंगे. कई जगह, कई स्टेट्स रिप्रेजेंटेड नहीं हैं. तो अगर ये आप अपना मन बनाते हैं कि हम हर ज़िला तक पहुंचेंगे, इसका मतलब ये है कि वो जो अग्निवीर है वो आपकी नेवी में सर्व करके, शिप और सबमरीन में सर्व करके जब वापस जाएगा तो बताएगा लोगों को कि नौसेना में क्या होता है, नौसेना क्या है, और उसके साथ वो लोगों को मोटिवेट करेगा. सो एक जो सर्विसेज हैं ये बड़ा पूरी देश को इकट्ठा करती हैं. उसमें बहुत महत्व उनका योगदान रहता है. तो उसमें जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा, और उसमें अग्निवीर जो हैं एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, बड़ा अच्छा योगदान दे सकते हैं. और सतीश साहब, और आप लोगों की जानकारी के लिए कि बहुत अच्छी खबर ये है कि सब पहली बार अब एक महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है वो नौसेना को मिलने जा रही है. कुछ ही दिनों में उनका नाम भी हमारे सामने होगा. उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरुआत हो चुकी है. खुद सीएनएस ने इस बात की जानकारी जो है वो पूरे देश को दी है. एक बहुत अच्छी खबर. इस पहल के बारे में भी अगर आपका रिएक्शन हमें मिले कि इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कमांडिंग ऑफिसर, एक महिला अधिकारी कमांड करेगी पूरी शिप को. मैं भी
जहाज पे मेरे भी थे. Navy, we do not make a difference between male and female commanding officers. While you would look at it, or male or female officers, bilkul, the achievement is great, but do not forget that that is a commanding officer. It is a challenging appointment. I would say all the very best to that lady and hope she does well, as you would expect of any commanding officer. सतीश सर, आपका रिएक्शन, पहली कमांडिंग ऑफिसर महिला में मिलने जा रही है नौसेना से। सबसे पहले महिलाएं नेवी में ही आई थी। नेवी वाज द फर्स्ट सर्विस टू इंडक्ट विमेन एंड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो हमने सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग की है। एक बार जो आ गया वो हमारे लिए ऑफिसर है, वो लेडी ऑफिसर है या मेल ऑफिसर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये है कि हम उनको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही हैं और हम इससे इनकरेज कर रहे हैं कि एक विमेन ऑफिसर्स भी आगे आएँ और सर्विसेज ज्वाइन करें। मेरे ख्याल से महिला ऑफिसर का कमांडिंग ऑफिसर बनना ये बहुत ही फ़ख्र की बात है, और ये देश जो है वो सीता का उतना ही है जितना दुर्गा का भी है। तो मेरे ख्याल से महिलाओं को कमांडिंग पोजीशन पे लाना ये बहुत अच्छी पहल है। हमारा टॉपिक आज का जो था वो सशक्त नौसेना था। मैंने शुरुआत में कहा हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी तक का जो सफ़र था, कोई भी चीज़ शुरू करने में एक इनर्शिया ओवरकम करना पड़ता है, तो ये इनर्शिया ओवरकम हो चुका है। एक्सेलरेशन भी है, दिशा और गति दोनों ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की नीयत ठीक है इसमें। गोपाल सर, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, कहाँ से कहाँ, बट ये इतना आसान भी नहीं था जैसे आपने बोला था। बट व्हाट वी हैव टू गिव इज क्रेडिट टू द फाउंडर्स ऑफ द नेवी कि 1950s में हमने ठान लिया था कि वी विल हैव अ नेवी which will be self-reliant, indigenous. Satish sir, your last comment on सशक्त नौसेना। I would say that हमें आगे बहुत दूर जाना है। जितने चैलेंजेस अभी भारत को होंगे आने वाले समय में, वो समुद्र से ही होंगे और ये हमें पहचानना है। और सर, हमारी तैयारी इतनी तो रही है कि कम से कम जल मार्ग से अभी तक तो जब भी किसी ने हमसे पंगा लिया है सर, तो फिर उसे झेलना पड़ा है, चाहे वो 1971 ही क्यों ना हो। वो हमने दिखाया है उनको कि जल मार्ग से अगर आप दुश्मनी ले रहे हो या फिर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका बदला हम नौसेना कैसे लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों से बातचीत करने के लिए, और इतनी उम्दा जानकारी जो है वो आप लोगों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और आज के लिए इतना ही। निश्चित तौर से नौसेना प्रमुख का ऐसा कहना है कि आगे अब हमारी जो सोच है वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और एक्सक्लूसिव फॉर इंडिया तक है, और हम जल्द ही अपनी इस सोच को धरातल पर भी उतारेंगे और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी नौसेना कितनी मजबूत है। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, report of the Committee of Privileges, Sri Ilamaram Karim. Honorable Chairman, sir, I rise to present the 75th report in English and Hindi of the Committee of Privileges on questions of alleged intentional and deliberate act of presenting misleading facts to the media, misrepresentation of the proceedings of the Council, and affront to the authority of Chair, and for including the names of members in the proposed Select Committee without their consent in violation of rules by a member. Thank you. Honorable members, the committee, after deep and thoughtful consideration, finds Sri Raghav Chadha, Honorable Member, guilty for both the charges. Charge 1, that he intentionally and deliberately presented misleading facts to the media, misinterpreted proceedings of the Council, resulting in affront to the authority of the Chairman, Rajya Sabha, and engaged in outrageous defiance of the resolutions of the House and directives of the Honorable Chairman, Rajya Sabha. And charge 2, for including the names of members in proposed Select Committee without their consent in blatant transgression of Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. As regards the sentence, the committee finds the suspension suffered by him since 11th August 2023 from the House thus far as sufficient sentence that will meet the ends of justice. The committee stands committed to upholding the sanctity of parliamentary proceedings and safeguarding the integrity of the institution. The committee expresses hope that Sri Raghav Chadha, member, will reflect and introspect. The committee expects Sri Raghav Chadha to uphold the expected standards of conduct and decorum befitting a member of parliament. Honorable members, Sri GVL Narasimha Rao, Honorable member, to move a motion in the matter. Sir, the mic is not on, sir. Can I go ahead, sir? Okay. Sir, I move the following motion under proviso to Rule 256(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, that this House resolves that Sri Raghav Chadha, member, be held guilty of breach of privileges and the suspension suffered by him so far be taken as sufficient punishment, and the House may consider discontinuance of suspension of Sri Raghav Chadha, member, from the service of the Council from this day. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Raghav Chadha may attend the proceedings of the House. The Post Office Bill 2023, Shri
Ashwini Vaishnav to move a motion for consideration of the Post Office Bill 2023. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. माननीय मंत्री जी, आप बोलना चाहेंगे? Honorable Chairman, sir, 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेके आया गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जैसा हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है। 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररिलेवेंट हो जाएगा। विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था, उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में डाक और डाकघर और डाकिये को इसको मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है। डाकघरों का विस्तार 2004 से 14 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, आज आपको जानकर खुशी होगी माननीय सभापति महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच में करीब 5000 डाकघर नए खोले गए और करीब 5746 और नए खोलने की प्रक्रिया में। 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के जरिए से कनेक्ट किया गया है। जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्जन का विजन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 434, जिसमें अब तक करीब 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी है। डाकघर आधार सेवा केंद्र 13,500 खुले जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते, जो बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है, उसमें 1,41,000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि बैंक को पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, बहनों के 3.5 करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। सभापति महोदय, आपको एक और बहुत जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है जिसके जरिए से एक रिमोट एरिया से भी साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। और इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कर्नाटक के बेलगांव से एक बहन सृष्टि करंजनी घर में बने वाटर कलर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर से भाई श्री आदिल अहमद खान गलीचे रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आसाम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं। और कोट्टयम केरला से मैथ्यू जोसेफ नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरह के ऐसी सुविधाएं डाकघर के जरिए से मिल रही है आज, उसका ग्लोबल रिकग्निशन भी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू, उसने अभी रिसेंटली स्पेशल जूरी अवार्ड दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव टेंडर, इंक्लूसिव ट्रेड इंक्लूजन के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीओ से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने
देखा होगा कि एक 3 डायमेंशनल प्रिंटेड डाकघर बना बेंगलुरु में, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून की एवज में जो नया कानून लाया गया है अति सरल भाषा में बना है। छोटा सा कानून है, 17 क्लॉजेस का, और सारा का सारा फोकस है मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज पे शिफ्ट होने का। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together. Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha: first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24, and second, demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूं कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी। 15 मिनट जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज़ के ज़रिए, किसी झंडे के ज़रिए, पंछियों के ज़रिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया। आज़ादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए
पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए। और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए। वो सोच थी और उसी सोच के चलते आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे। कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा। क्या वो कच्छ के, अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया। डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि यूपीसी से गई हुई डाक है, मीन्स इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया? यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विस इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों के सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP, also known as the Indian Post, has been backbone of the country's communication and has played a crucial role in country's social and economic development. बहुत क्रूशियल रोल इसने किया है। आप इसको कोरोना काल आया, समझ सकता हूँ, सभी को लॉसेस हुआ और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं हुई होगी तो वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुई होगी। आप दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। मैं आपके जरिए मंत्री जी को कहना चाहता हूं
पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा स्पोर्ट्स का कोटा रहता है। इस देश के नाम रोशन करने वाले हमारे रमतवीरों को इस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती थी। मुझे खुशी होगी मंत्री जी जवाब देंगे कि कितने वक्त से आपने वो स्पोर्ट्स कोटा के उन हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को जॉब में नहीं लिया है, और क्यों नहीं लिया है। और आप जब लेते हो किसी को तो थोड़ी निगाह उधर भी रखिए कि अगर आपने एक नेशनल प्लेयर जो टेबल टेनिस की है और उसको नौकरी दी है, और अगर उसकी पोस्टिंग आपने ऐसी जगह की है कि जहां पे टेबल टेनिस के बच्चों को वो प्रशिक्षित नहीं कर सकती या खुद की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, तो उसका क्या फायदा होगा। आप रखिए उसको उस जगह पे जहां टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड बच्चे हों। उस तरह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेस यहां डिस्कस नहीं करता हूं, पर मंत्री जी कहेंगे मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको जरूर दूंगा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो नया कानून लेके आए हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स wherever the central government established posts, it will have an exclusive privilege conveying letters by post as well as incidental services such as receiving, collecting, sending, delivering letters. The bill does not certain such privileges. The bill also states that the post office will have the exclusive privilege of issuing postage stamps. मैं एक और प्रावधान पे माननीय उपसभापति महोदय आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो आप प्रावधान कर रहे हो उसमें प्रावधान है इस नए कानून की वजह से, द एक्ट स्पेसिफाइज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग लेटर्स, postcards, parcels, money orders. The bill provides that the post office will provide services prescribed by the central government. आप क्यों नहीं क्लैरिटी करते हो कि आप ये इनसे करवाना चाहते हो। कानून बनाना संसद का अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसा ग्रे एरिया ना रखे कि कानून बन गया है तो बाद में मुझे जो ठीक लगेगा वो सर्विसेज लूंगा मैं इनसे। कल कोई पॉलिटिकल पार्टी है वहां से सोचेगी कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के ये पैम्फलेट्स भी इनसे बंटवाना है और इसके लिए मुझे ये रूट करना पड़ेगा, तो मैं रूट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो, कम विद अ क्लियर हैंड, come with a clear proposal. We are here to discuss and then we'll either pass or reject the bill, but we'll have an opportunity to express ourselves. आप इसका ग्रे एरिया, आज एक बार बार ऐसे बिल्स आते हैं मैं देखता हूं, हम पास तो करते हैं पर उसमें क्लैरिटी नहीं होती और बाद में नोटिफिकेशन के जरिए, बाद में कुछ अमेंडमेंट के जरिए सरकार उसको अमेंड करती रहती है। Now the another provision by this bill is power to intercept shipments. साहब, privacy, right of privacy is a fundamental right. मैं जानता हूं सिक्योरिटी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं लोगों की सुरक्षा के लिए आप करो, बट ऑन नेम ऑफ सिक्योरिटी, अभी अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में जिस एक कंपनी का नाम है कि जिसका सॉफ्टवेयर कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, हमारे जैसे मुझे भी मिला एमपीज को कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स आर ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल। किस दिशा में हम जा रहे हैं? और अगर आप राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हो ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, मैं मानता हूं इस बिल के इस प्रावधान को। और आप पावर्स कैसे देते हो सर? आई विल टेक यू टू दोज प्रोविजंस, आई विल रीड व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस बिल।
powers to intercept shipments. The Act allows the interception of a shipment being transmitted through the post on certain grounds. Now just look at what are the grounds. An interception may be carried out on the occurrence of any public emergency. Is there any clarity? What is public emergency? When you have objects and reasons, I fail to understand why government in objects and reasons not clarifying what is the public emergency. Thereafter, or in the interest of public safety और ट्रैंक्विलिटी, एक वाइड रेंज आपने दे दी। उसके बाद आगे आप कहते हो सच इंटरसेप्शन मे बी कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय देम। व्हाई डोंट यू क्लैरिफाई? किस लेवल के ऑफिसर को आप स्पेसिफाई करोगे? क्या एक छोटे लेवल के अधिकारी को आप करना चाहते हो या किसी जिम्मेवार आदमी को करना चाहते हो? An interception of shipment can be detained or disposed of by the officer in charge. The officer also have a powers to open, detain or destroy the shipment. डाकिया के ऊपर का भरोसा आपके ऐसे प्रावधान से चला जाए। आज एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड के ऊपर भी लोगों को भरोसा होता है कि मैंने लिखा तो ये पहुंचेगा। आप ये प्रावधान करके आप क्या करने जा रहे हैं? हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और हम विश्व गुरु जहर की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बात को गौर से देखें और मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे प्रावधानों में आप क्लैरिटी लेके आइए कि किसको आप कब, कौन, कहां और कैसे करेगा। मैंने पहले ही कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आप जब छोटी जगह पे नौकरियां देते हैं, लास्ट एक ही मिनट में तो वहां पे अगर आप पोस्टमैन को, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में गांव में किसी को नौकरी देते हो तो वहां के लोकल यूथ को आप प्राधान्य दें। उसी गांव का डोमिसाइल है, वहीं का रहने वाला है, उसको आप अग्रिमता दें। शहर से नौकरी ले लेता है, फिर कोशिश करता है ट्रांसफ़र और करवाने की, वो गांव में टिकता नहीं और छोटा गांव परेशान होता है। तो उसी गांव का या विद इन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स नहीं मिलता है तो स्टेज बताइए आप और वहीं के लोकल को रखिए, तो जहां पे रहेगा वो वही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मेरी बात मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, 12 मिनट आपके पास। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि पोस्टल बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सरकार ने जो पोस्टल बिल 2023 लाई है, ये गरीबों के लिए और सेवा सुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लाई है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जनता के प्रति समर्पित सेवाएं हों, इस दृष्टि से ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये विषय भी इसे पोस्टल बिल का केंद्र में है। महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों, जिसमें सभी जाति वर्गों के लोग आते हैं, इस व्यावसायिक वर्ग में, उन सबको ये पोस्टल बिल लाभकारी होगा, लाभ देगा, ऐसा मेरा मत है। अभी मैं इसमें कह पोस्ट ऑफिस बंद किए गए थे, इस सरकार ने
अपने कार्यकाल में अभी तक 5000 से ऊपर पोस्ट ऑफिस खोले हैं। यही बता कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार समर्पित है। अब 5000 कुछ और खुलने जा रहे हैं, तो कहां 700 बंद करने वाली सरकार और कहां 10,000 बैंक को, पोस्ट ऑफिस को खोलने वाली सरकार। रोजगार का सवाल बताया गया है। ये अगर नए डाकखाने खुलने हैं तो किसी बिना मैन पावर के तो नहीं खुलेंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी 5000 डाकखाने खोलने पर मिली है, तो जब ये 5700 डाकखाने खुलेंगे तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक होगा। ये तथ्य भी समझ में हमको आना चाहिए। डाक निर्यात केंद्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति अपने निर्यात करने वाली सामग्री को लेकर डाकखाने में जाता है, डाकखाना उसको उसके लिए बॉक्स प्रोवाइड करता है, बॉक्स में उसका सामान रखकर टेपिंग करता है, पता लगाता है और उसके निर्यात वाले सामान को उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी कल्पना भी कभी हिंदुस्तान में नहीं थी कि डाकखाना भी निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र ठीक है कि 7-8 साल पहले हुए थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट की सुविधा, क्योंकि डाकखाना हर जिले में है। पहले पासपोर्ट सेंटर के लिए हमको जाना पड़ता था, मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ता था और अदर जिलों में जाना पड़ता था। आज मेरठ के पोस्ट ऑफिस में सुविधा मिली है, तो उस सुविधा को और मजबूत करके 1.5 करोड़ लोगों का पोस्टपार्ट जारी करने का काम किया गया। टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग की दिशा में ले जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। डिजिटल पेमेंट योजना ये भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसी सरकार के द्वारा चालू की गई है। श्रमिकों के बारे में जिसकी चिंता बहुत कम लोग किया करते थे, उन श्रमिकों का भी बीमा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है और लगभग 1.5 लाख श्रमिकों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है और अब इसके सफल होने के बाद इसका विस्तार करने का संकल्प भी सरकार का है। मैं कुछ बातें और उस बिल को सहमति नहीं दिला पाई थी सरकार और वो बिल वापस हो गया, ना उन्होंने संसद को वापस किया गया। उसके बाद जब अगले महामहिम राष्ट्रपति जी आए तो जनवरी 90 में उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया और 2002 में वो बिल वापस हो गया। वर्ष 2002 में भी इस प्रकार का एक प्रयास हुआ पोस्ट ऑफिस के सेवाओं में सुधार के लिए एक बिल कानून लाकर, लेकिन वो भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये बिल भी लैप्स हो गया। 2006-2011 में 2 ड्राफ्ट बिल जारी किए गए सदन के विचार के लिए, लेकिन वो ड्राफ्ट बिल भी स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच गए और उसके बाद सदन में उसका मतलब वो बिल का रूप में परिणित नहीं हुए मान्यवर। ये बिल 2023 सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लाई है और पास भी होगा। पास होगा तो पिछले इतिहास को अगर हम देखते हुए कहें तो इस सरकार की संकल्प शक्ति मजबूत संकल्प शक्ति है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस बिल को जब पास कराएगी तो ये पोस्ट ऑफिस सेवाएं आम जन का भाग बनेंगी, ऐसा मुझको कहना है। सारी चीजें सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। इस बिल के बाद महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा और उसको प्रभावी बनाया जाएगा और महानिदेशक के जो निर्णय होंगे उस निर्णय को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। डाक सेवा के महानिदेशक जब भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा तो सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति के मामले में नियम बनाने की शक्ति भी उसमें निहित होगी। महानिदेशक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि का नियम बना सकेंगे। डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के भी नियम बने जाएंगे। मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्जेज और दरें तय की जा सकेंगी। डाक घर को डाक टिकट जारी करने का भी अधिकार हो जाएगा। आधुनिकीकरण को बढ़ावा होगा और ड्रोन के जरिए पार्सल और लेटर भी पहुंचाए जाएंगे। हमने अपने बचपन में सुना था कि कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाया करती थी किसी युग में।
आज ड्रोन के जरिए पत्र भेजने का संकल्प इस बिल के माध्यम से सरकार का है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था वर्तमान आतंकवाद के युग में और निजता, इसके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित तरीके से हो, ये मेरा इस संबंध में निवेदन है। लेकिन सरकार इस बात की सावधानी रखेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। केंद्र सरकार वस्तुओं को पते पर पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। आइटम एड्रेसिंग मानकों, पते की पहचान और पोस्टल कोड के उपयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा, जबकि डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है। ये छटाई की गई प्रक्रिया को सरल बनाएगा और मेल और पार्सल डिलीवरी की सटीकता भी बढ़ाएगा और उसमें शीघ्रता भी लाएगा। सबसे बड़ी बात इस बिल की ये है कि ये नागरिक केंद्रित सेवाओं को विकसित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए विधेयक लाया है। मोबाइल और फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ये विधेयक और भी अधिक प्रासंगिक रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जहां योगदान देगा। भू-स्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल को कुरियर करने की क्षमता में होगी। भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के निर्धारित किसी भी दायित्व के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं लेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुलनात्मक अध्ययन पिछले अधिनियम में और वर्तमान अधिनियम में। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में 77 धाराएं थीं। डाकघर विधेयक 2023 में केवल 16 धाराएं। पत्र डाक पर एकाधिकार था पिछले अधिनियम में, डाकघर विधेयक 2023 में अब एकाधिकार नहीं। दंडात्मक प्रावधान की 23 धाराएं थी पिछले एक्ट में, इस एक्ट में कोई दंडात्मक धारा की व्यवस्था नहीं है। फोकस है पहले था मुख्यतः मेल पर, डाक पर, अब डाक द्वारा जनता के उपयोग की सुविधाएं उसके मोहल्ले में और उसके गांव में देने पर केंद्रित है नया विधेयक 2023। रिजर्व एरिया में पहले पत्र रहते थे, अब डाक टिकट, डाक लेखन सामग्री भी उपलब्ध होगी। भाषा पहले जटिल थी, अब इस विधेयक को सरल करने का काम किया गया है। दायरा पहले सरकार केंद्रित था डाकखाना, अब नागरिक केंद्रित है डाकखाना। ये इस विधेयक पोस्टल बिल 2023 के माध्यम से जनता को उपहार के रूप में मिलेगा। डाक शुल्क सीमित, डाकघरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को देय राशि को कवर करने का काम करेगा। और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि पता सूचकों और पोस्ट कोडों का प्रावधान होगा। पहले दरों को तय करने की शक्ति शासन में थी, अब महानिदेशक में होगी। कुल मिलाकर इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने पोस्टल सेवाओं को जन उन्मुखी बनाने में जो प्रयास प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के जिनके बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाकर या लैप्स होकर चले गए, सरकारों को कोई चिंता डाक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की नहीं थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार में और आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार का विधेयक लाए हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं। और इस बिल के माध्यम से डाक सेवाएं जनता के दरवाजे पहुंचेंगी, जन उपयोगी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नाउ ऑनरेबल श्री सुखेंदु शेखर राय जी। थैंक यू सर। आज मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच का माहौल ऐसा है, शायद उनका मन में ये पुराने गीत गुनगुना रहे हैं कि कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल के ए धड़कन ठहर जा, मिल गया मंजिल मुझे। मैं बधाई देता हूं उन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को भी, जो भी सफलता जिनको मिला है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। और आज के दिन एक ऐसा बिल लाया गया जिसके लिए मेरे मन में बहुत अफसोस है। मैं वो अफसोस जताना चाहता हूँ। पहले तो एक बात है कि
मैं सिर्फ दो क्लॉज का रेफर करूंगा। क्लॉज 9 सब क्लॉज 1, शक्ति सिंह जी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट may empower any officer to cause any item in course of transmission by the post office to be intercepted, opened, or detained in the interest of the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency, or public safety, or upon the occurrence of any contravention of any of the provision of this Act or any other law for the time being in force. Now, before I come back to this, if we look at clause 16, subclause 1, it says, the Indian Post Office Act 1898 is hereby repealed. तो रिपील हो गया वो पुराने एक्ट, लेकिन फिर क्लॉज 16 का सब क्लॉज 2 में बताया जा रहा है, notwithstanding the repeal of the Act, all rules, notifications, and orders made or purported to have been made under the Indian Post Office Act 1898 shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made under this Act, and shall continue. So, on the one hand, it is repealed. On the other hand, the other provisions which are not inconsistent with this Act shall continue. So, हाँ भी है, ना भी है. Sir, I am coming back to clause 9(1). This section, according to me, fails to specify the procedures to be followed for interception by the authorized postal officer. What is the procedure that shall be followed by the postal officer while intercepting? National security, everyone, every citizen of this country is concerned. We are also concerned. Had there been any provision that based on the information received from central agencies who are dealing with the national security point, then also we could have agreed to this provision. But mere suspicion, on the basis of suspicion even, that authorized officer can intercept, open, destroy, anything he wants to do. Sir, this is arbitrary. This is arbitrary. And in plethora of cases, the Supreme Court has held that arbitrariness in executive action is antithesis to law, antithesis to rule of law. This government has not even shown any respect to the hundreds of cases, case laws, which have established this point. So the grounds specified for interception is absolutely vague, that anything and everything can be brought under this provision. For example, the expression emergency, one of the expressions is emergency, other than national security. But the expression emergency has not been defined in the definition clause, that is clause 2 of this bill. So what is emergency? Nobody knows. Sir, this provision has given unbridled powers to the authorities concerned. And I remember one of the Supreme Court verdict, which was given in 1996, in the case of interception of telecommunications, where the Supreme Court held, that was a 1996 case, that a just and fair procedure to regulate the power of interception must exist. Otherwise, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) as a part of the right to life, the freedom of speech and expression, and Article 21
right to privacy as a part of the right to life and liberty. It was reiterated in the People's Union for Civil Liberties versus the Union of India in 2004. Sir, in this context, I would like to refer another act passed in this year, the Jan Biswas Amendment of Provisions Act 2023, which removed all offences and penalties from many acts, including the Indian Post Office Act 1898, in the name of ease of doing business and ease of living. And virtually, in my opinion, the Act has turned to be Jan Avishwas Act inasmuch as it has ensured a free-for-all situation for the wrongdoers in detriment to public interest. Sir, in this bill also, Clause 10, Subclause 2 provides, and I quote, "No officer of the post office shall incur any liability with regard to a service provided by the post office unless the officer acted fraudulently or willfully caused loss, delay, or misdelivery of service." However, what would be the consequences if any postal officer fraudulently act or willfully cause loss to service? There is no such provision. Sir, kindly, 1 minute. In the Parent Act of 1898, there was provision for imprisonment up to 2 years and fine or both. That has been removed. This bill does not whisper about the private courier services, and they have been excluded from the purview of the bill. This undermines the equality before the law. This is too much of laissez-faire. Sir, finally, I submit that this bill, if passed, shall create another avenue in transforming our democracy into a surveillance state after the Pegasus Gate. And this is why I oppose this bill in its entirety on behalf of my party, All India Trinamool Congress. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mani Chandrasekhar Roy ji. Now, Honorable Sri P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. I raise to express my strong opposition to the Post Office Bill 2023 in its current form, as it will lead to winding up of post offices and its services in India. Bill is a step to privatize and encourage private players in postal services. The bill is introduced without studying the services required in the competitive world. It lacks a complete blueprint on infrastructural upgrades, technological intervention for sorting and facilitating accurate delivery of mails and parcels, and appears to be a hasty exercise just to replace old colonial laws. Our prestigious India Post, which is the world's largest postal network, has its presence across every nook and corner of our country, serves as a vital link connecting urban and rural India. Often viewed as a lifeline for 1.4 billion Indians, it plays a crucial role in our daily lives. The proposed bill, aimed at replacing the India Post Office Act 1998, needs an immediate reconsideration, as certain provisions could have far-reached implications. Under Clause 9, the central government can empower any postal officer to intercept, open, detain any postal article on the grounds of security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency of public safety. The provision grants unfettered powers to the union and officers to arbitrarily intercept, open, or detain any postal article in the garb of national security or public safety. In the absence of any procedure or yardsticks or guidelines to be followed by such officers, such powers are nothing but another steps towards the surveillance state, which is violation in the teeth of Article 14, 19(1)(a) and Article 21 of the Constitution.
it is pertinent to mention that the Honorable Supreme Court in a catena of judgments has upheld the ethos of right to privacy. I ask myself the question as to how any officer of the post office is qualified to undertake such functions which are in the nature of the search and seizure. By granting such powers, the privacy of all the citizens who use services of Indian Post is severely compromised, since there is no provisions in the bill which injuncts the officer from leaking any contents of the intercepted postal articles. A son will be writing to his mother, a husband will be writing to his wife, brother to his sister, a client to his lawyer, lawyer to the client, cabinet communications to the other departments. Can you intercept these communications as stated in clause 9? Will it not affect the privacy, or it will affect the confidential privileged communications which are protected under the law? Clause 10 exempts the post office from any liability with regard to the service provided by the post office. This provision is severely vague and suffers from the ambiguity on the phrase such liability in section 10(1) can be interpreted to be anything. The provision makes no regard to the value of the articles to be dispatched through post. Many private players, in case of any lapse of services, will provide options such as the value of the articles in the transit or money back guarantee. However, the Indian Postal Department seeks to absolve itself from compensating from any loss caused due to the lapses in services. This indeed can open the way for abuses, as the party empowered to impose such rules is an interested party. Though it prescribes liability for postal officers who are acting fraudulently or willfully causing losses, delay or misdelivery, the consequence of such action is not provided in the bill. This dilutes the provisions of the earlier Act 1898, which prescribes imprisonment, fine or both in the above cases. Clause 10 thus is highly arbitrary and discriminatory and push the people to skip the Indian postal services. The bill under the statement of objects and reasons aims to provide for a simple legislative framework to facilitate evolution of the post office for delivery of citizen-centered services. However, the provision shows that such evolution is only backwards. The bill grants the parallel powers to both the Union and also to the Director General to frame rules and regulations for conducting any functions essential for running of a post office. This highlights the ambiguity and overlapping powers of central government and the Director General in framing the rules and regulations for delivery of several postal services. I request this House, while we recognize the importance of modernizing our postal services to be competitive with the private players, and it's crucial to strike a balance that upholds constitutional principles, protects fundamental rights, and ensures accountability. Our rich postal heritage, serving millions across the nation, deserves a legislative framework that reflects the spirit of transparency, fairness, and citizen-centric governance, and not another source for surveillance state and affect the fundamental rights of speech and reputation. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you. Thank you, Mani P. Wilson ji. Mani Sri Raghav Chadha. सर, अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूं और इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूं, तो आपका संरक्षण चाहूंगा सर। 5 मिनट समय आपका। आप इसे मेडन स्पीच भी मानकर मुझे अधिक समय दे सकते हैं अगर चाहें तो। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें 2 बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।
और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपनड और डिटेन्ड in the interest of 1. security of state, 2. friendly relations with foreign states, 3. public order, 4. emergency, and 5. upon the occurrence of any contravention of any provisions of this act or any other law for the time being in force. यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है कि जो अफसर इसको इंटरसेप्ट करेगा या कॉन्फिस्केट करेगा, अगर वो अफसर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सर इसके साथ एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ, जब हमें अपने स्मार्टफोन पर, एप्पल के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने आपके फोन को इन्फेक्ट कर दिया है और इसके जरिए वे आपके कैमरा, आपके माइक, फोन का जो माइक होता है और फोन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है उसके निगरानी में आ जाते हैं, उसकी पोजीशन में आ जाते हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं सर, देश के कई सांसदों के साथ हुआ। और दिलचस्पी की बात यह है और खतरनाक बात मैं कहूं वो ये है कि ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसा जानकारी आई और इसमें एक शायद सत्ताधारी पक्ष के भी सांसद थे। ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके मुताबिक विपक्ष के या सरकार के आलोचक थे। ये एक बड़ा खतरनाक हमला फोन्स पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें जांच करे, आपके अध्यक्षता में सर वो जांच हो सके तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो कि किस प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पेगासस नाम के और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जो लोग आप कह सकते हैं आलोचक हो सरकार के या विपक्ष के नेता हो, उनके फोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं और चाहूंगा कि ये जो एप्पल का नोटिफिकेशन यहां बैठे कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार कुछ अपनी बात भी रखे और इस पर जांच भी बिठाए। थैंक यू राघव जी। माननीय श्री निरंजन विसी, माननीय निरंजन विसी। Thank you, Honorable Vice Chairman sir, for giving me an opportunity to speak on the Post Office Bill 2023. Sir, the Post Office Bill will abolish the 125th year old the Indian Post Office Act 1898.
By virtue of this bill, the work of the post office can be easier. The bills aim to modernize postal services and match them with Digital India. This includes offering online shopping, e-commerce solution, and digital payments. For this, I would like to congratulate our Honorable Minister of Communications, Sri Ashwini Vaishnav ji. Sir, the bill seeks to utilize the wide network of post offices to provide banking and insurance services closer to the poor, ST, SC, women, and farmers, which will boost rural development. There is a possibility of creation of jobs through expansion of postal and financial services, especially in rural areas, which can contribute to economic growth and reduce unemployment. But sir, the central government will appoint the officer if that officer feels that any parcel is against the security of the nation or can disturb the peace, then that officer can stop the parcel, open it and check it, and can confiscate it, and later such items can also be destroyed. But law and order is a state subject, sir, so the state government should empowered to verify the articles. The bill makes India's postal services globally competitive and will boost trade and facilitate international delivery and logistics, and also promote financial inclusion in rural areas, which will promote rural development. But sir, there are 272,000 Gramin Dak Sevaks in India, working in 156,000 post offices, branch post offices. They call the GDS Gramin Dak Sevak, also known as postmaster, branch postmaster, and Dak master in our rural areas. But sir, they perform the duty of postal life insurance, rural postal life insurance, India Post Payment Bank, Sukunya Samruddhi accounts, Mahila Samman accounts, delivering letters, parcel, articles, collecting and depositing of premium regularly. The Gramin Dak Sevak also distributing pension, stipend, wages of NRGS, wages of candle leaf pluckers in rural areas. But sir, the Gramin Dak Sevaks are not provided with traveling allowance or dinner's allowance or house rent allowance or pension or medical allowances, educational allowances for their children, leave benefit like regular employees of postal department. Sir, the GDS, Gramin Dak Sevak, those who are working in rural areas, they are doing more than 8 hours duty, but in some areas, some villages, there are no internet service, and most of our Odisha, in our Odisha also, in rural areas, in western Odisha and southern Odisha, there are no post offices in various big villages and panchayat offices, and also, sir, there are no internet connectivity. So the postmasters are the postmaster, branch postmaster, Dak masters, they are facing a lot of problems because they are using the digital mode services. So therefore, sir, I request our Honorable Minister to conduct survey in rural villages, rural areas, to provide better service for the farmers and women self-help groups and the students living in the forest villages, rural areas, and to make provision of internet connectivity and also communication facility. Sir, I draw the kind attention of Honorable Minister of Communications, Sri Ashwini Vaishnav ji, through you, sir, that the GDS, the Gramin Dak Sevak, the postmaster, branch postmaster, should be provided with departmental status and their service should be regularized. Also, their insurance benefit, group insurance
unutilized leave bill for 180 days, and increase service discharge benefit scheme from 3% to 10%. Sir. And sir, of the recommendation of Kamalesh Chandra committee report in favor of Gramin Dak Sevak, the committee observed that the postal department depends on the successful management of the Gramin Dak Sevak. So the Gramin Dak Sevak are the soul of postal department, sir. And it is difficult to survive without a soul. So their demand be fulfilled, sir. With this, on behalf of my party BJD and my leader, Honorable Chief Minister, respected Sri Naveen Patnaik ji, I support this. Thank you. Mani Sri Ajodhya Rami Reddy Ala. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to share a few of my thoughts on the proposed amendments to the Post Office Bill 2023. Sir, there haven't been any amendments to this colonial act in the past 125 years, and I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in Parliament. There are few positives of this amendment. This bill increases the authority of the central government to intervene in such situations involving vital aspects such as security, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorized transportation of drugs and contraband products via postal services. Thus, I applaud this positive approach in addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network. Flexibility in pricing. There is also an enhanced pricing flexibility is considered in this bill, which is critical, especially in the context of an increasingly competitive business, which lets the postal services promptly respond to the market's ever-changing expectations. Furthermore, the service's independent pricing allows it to stay adaptable in the face of changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the department to ensure that its service remain affordable, accessible, and sustainable, even with economic conditions getting changed. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services. Also, generalizing the nomenclature of interception of parcels. Sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the bill introduces significant shift in its approach to the interception of objects within India's postal system. The key distinction is in the usage of technology, wherein the present Act explicitly defines seized postal products as those carrying explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances, while the new bill, on the other hand, has broader and more inclusive phrasing. Recent data shows an increase in security threats and illegal activities related to postal system, not only in India but also globally. This purposefully change in terminology serves an important purpose as it broadens the scope of interception beyond the constraints of specified items, embracing a broader range of potential security threats and criminal activity involving mail shipments. By taking a more general stance, the measure recognizes the changing nature of security concerns. However, there are certain problems pertaining to this bill, and I would like to highlight a few of them, and I provide my suggestions to this. Powers relating to interceptable postal articles. It lacks procedural safeguards, raising concerns about potential violation of individuals' freedom of speech, expression, and privacy. Additionally, the ground of emergency as a basis for interception may surpass reasonable restrictions outlined in the Constitution. The term emergency lacks a precise definition, providing a broad scope for interception. This goes against constitutional principles established by the Supreme Court and requires more clarity.
exemption from liability for lapses in services, that also need to be looked at. The removal of offences and penalties. The absence of provisions for offences and penalties as they were removed in Jan Vishwas Act 2023 remains another issue. As per the earlier Act, various offences committed by officers of a post office, which included the illegal opening of postal articles by a postal officer were punishable. However, now such actions would have effectively no consequences. It raises questions about ensuring the privacy of individuals and may have adverse implications. Regulation of courier enterprises. Although the bill gives India Post Authority to improve its postal service operation, it is critical to recognize that regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. This regulatory void presents a number of significant questions. Issues faced by the employees of the department, my other colleagues have mentioned, I want them to be taken note of that. The key issues affecting the functionality of the system also need to be taken into consideration, the post offices lack necessary infrastructure to function successfully as points of service and information transformation. Issues such as intermittent power supply, outdated manual operations, limited accessibility shall still remain a problem. The revenue deficit also need to be taken into account. So, while I see that there are few issues that where we have given suggestions, but we strongly believe that this amendment is coming at the right time. The passage of this bill is an important step in the restructuring of India's postal services. By repealing outdated restrictions, this act guarantees that India's postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the encouraging changes of requirements of its varied population. With this support from YSR Congress Party, we support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manya Ajodhya Rami Reddy ji. Honorable Shri A. Rahim. Honorable A. Rahim. Thank you, sir. Thank you for this opportunity, sir. I express my deep concerns and critique over Post Office Bill 2023. My objections against this bill are very specific. Sir, my first point is that this bill is against the Constitution and breaching the fundamental rights provided by the Constitution. Secondly, this bill is against the federal principles. Thirdly, through this bill, government is giving up the liabilities invested upon them. My fourth and final point is about the concern over the privatization of the postal services. Sir, I would like to start from my last point. Sir, I am bringing your attention to the objects and reasons for this bill, which states that this bill facilitates the evolution of postal services. In the light of this line, through you, I would like to ask the Minister that what the Modi government has done for the prosperity of the postal services. Sir, I would like to expose that since 2014, not even a single post has been created in the postal services. Sir, also I would like to remind, I would like to remind all of you that as of now, 90,000 existing posts are lying vacant. Sir, is this the evolution and prosperity of the postal services, sir? Sir, in this context, I have a deep concern over the privatization of the postal department. Sir, it is evident that when it comes together, non-creation of posts, lack of recruitment, with the introduction of this bill, paved the way for the privatization. Sir, now I am coming to my next point, is that according to clause 10 of this bill, sir, which states the bill has a significant omission concerning the consequences for officers who misappropriate or damage postal items, which used to be punishable offences, but is not addressed in this bill. Sir, this oversight will negatively impact the department's efficiency and the integrity of the officers involved, eroding trust in the services provided. Sir, my third point was that the bill is against the federal principles. Sir, this is the new normal phenomena of the Man Ki Baat era. Under the Modi regime, against the federalization, trying to
this is new normal. This is new normal in the Man Ki Baat era. The bill removed the authority of state government or their authorized officers to intercept a shipment, vesting this power entirely on the union government or its designated officers. Time is over. Sir, this is a direct attack on a federal principle. Sir, just 1 minute. Sir, I am going to my first and my prime point. Sir, this bill, according to the existing law, sir, this bill intentionally trying to breach the privacy. Sir, as we know that, according to the Constitution of India, privacy is part of our life. So privacy is the main thing, the fundamental right. So fundamental right. Sir, I would like to add one more thing, that the government is trying to change the grounds for interception. Sir, the interception of the shipment and the government, according to this bill, intentionally trying to breach the privacy. So this government, I would like to conclude my saying that we have to right to protect our privacy, and urging this Augusta House to omit the centralization and privatization tendencies of the Post Office Bill 2023. Thank you. Thank you, sir. Honorable Sri Abdul Wahab. Honorable Abdul Wahab ji, not present. Susri Kavita Patidar ji. Susri Kavita Patidar. माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, जैसा हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस बहुत समय से पुराने धर्रे पर चले आ रहे थे। डाकिया डाक लाया वाला गाना भी हमने सुना था, हमने देखा भी है, और वर्तमान समय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो काफ़ी नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा इस बिल को सदन में लाया गया, और इस बिल में ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं जिसके कारण लाखों लोगों का भरोसा पोस्ट ऑफिस की तरफ और बढ़ेगा। माननीय महोदय, हम जानते हैं कि पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। आज पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ लोगों तक डाक पहुंचाने का नहीं रह गया है, बल्कि आधार सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, पार्सल पहुंचाना, पेंशन पहुंचाने का, ऐसी कई सुविधाओं को देने का काम भी आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं, खासकर पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया जाना। इस बिल के माध्यम से उन्हें सेवाओं से जुड़ी जरूरी नियम बनाने की छूट होगी। वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे। अभी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बिल से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा है, जबकि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस बिल में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल के माध्यम से अगर अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी के पास ये शक्ति होगी, वे खुद पार्सल को खोलकर देख सकेंगे और उसे रोक सकेंगे और जब्त भी कर सकेंगे। ये किसी प्राइवेसी पर खतरा नहीं, बल्कि इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया गया है। साथ ही यदि किसी पार्सल को डाक का अधिकारी अगर संदिग्ध पाते हैं या उसकी ड्यूटी नहीं भरी गई हो या उसमें किसी तरह का कोई गैर कानूनी सामान हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा, जिसके बाद कस्टम विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में डाकघर को माननीय मोदी सरकार द्वारा एक जीर्ण होती संस्था से ट्रांसफॉर्म करके विकसित बनाया गया है। न सिर्फ डाक सेवाएं बल्कि 100 से अधिक सिटीजन सेंट्रिक और वित्तीय समावेशन सेवाएं डाकियों द्वारा आज नागरिकों के घर द्वार पर दी जा रही है। जहां 2004 से 2014 तक
660 डाकघरों को बंद किया गया था, वहीं मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर खोलने का काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5746 और नए डाकघर खोले जा रहे हैं, जिससे देश के कोने कोने में जन सामान्य तक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सुगमता से पहुंचाई जा सके। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में डाकघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वह बेटी बचाओ अभियान के तहत लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हो, या महिला सम्मान बचत पत्र हो, या डाकियों द्वारा घर घर जाकर खोले गए खाते हो। आज डाकघर महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। 26 करोड़ बचत खातों के साथ डाकघर आम जनता के लिए बचत की एक भरोसेमंद संस्था बन गई है, और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। डाकघर बचत केंद्र और डाक जीवन बीमा में जनता के कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपए जमा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में ही 8 करोड़ खाते खोलकर मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। इसके विपरीत पिछली सरकार द्वारा खोला गया भारतीय महिला बैंक हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के कारण मात्र 3 साल भी नहीं चल सका। डाकघर विधेयक 2023 एक बहुत सरल लेजिस्लेशन है और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को सुनिश्चित करने का प्रयास है। यह डाकघर को और अधिक सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, ऐसा हम सब आश्वस्त हैं। पुनः मैं माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री कविता पाटीदार जी। ऑनरेबल वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you for giving me an opportunity. And we should appreciate the Honorable Union Minister for Communication for introducing this bill, Ashwin ji. Sir, this bill is a step towards 3 pillars of good postal service. One is reliable, and second is reach, and third is relevance. Sir, however, I have 3 suggestions to be made to the Honorable Minister, if Minister permits me. The first one is rethink pricing to increase the profitability. Sir, over the last decade, the loss incurred by the postal service has increased at least 9 times. Sir, the postal rates must be reconsidered to ensure that the subsidies for the poor do not go. Ensure that the subsidies what you are offering in so far as postal services are concerned do not go to the rich, and it will get into the profit arena. Sir, the next point is pricing structure has to be rethought. Differential pricing, it is now uniform pricing. The differential pricing based on the location, there has to be a differential pricing, those post offices which are located in the rural areas, and differential pricing those post offices which are located in urban areas. Sir. And the subsidy only those post offices that belong to the rural and economically weaker sections. So these sections and also regions. This will ensure the profitability, improve the profitability. Next point is digitization of services. Sir, the government should try to replace as many traditional services offered through digital solutions. For example, mobile transfer can replace money orders, and small saving activity can be redirected to the payment bank, and computers must be installed, must be provided to all the post offices, and centralized software throughout the country for postal, banking, insurance and retail services in the post offices, which will facilitate insurance of train reservations, tickets, Aadhaar enrollment, updation of services. All these things will improve the profitability and also the quality of service to the rural areas, sir. Rural people. Sir, the third point which I would like to suggest, third suggestion which I would like to make to the Honorable Minister is payments bank and financial services in rural areas.
The conception of India Post Payments Bank is a sound step and must be expanded through the training of the existing staff, thorough training of the existing staff to sell financial products like insurance, mutual funds, and in the rural areas. This proves our commitment to sustainable financial inclusion and citizen empowerment. Post offices can be integrated with ENAM, E-N-A-M, that is E-National Agricultural Market Initiatives, where terminals can be kept in these offices for use by the farmers. So this is very important suggestion, sir. Sir, further, sir, dog sevaks can be used to also form a link with the agricultural markets, that is ENAM markets, that as they have direct interface. These dog sevaks have a direct interface with the farmers and can be given the responsibility of spreading awareness as well as being the link with the markets, sir, market prices, sir. With these aspects, suggestions, we support the bill and I commend the bill, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Honorable Sri Kanak Medla Ravindra Kumar ji. Please. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I am very thankful for giving this opportunity to participate in the discussion. Sir, at the outset, I extend the support and welcome the bill. Sir, this bill intends to replace the earlier Indian Post Office Act passed year in 1898. Section 16(1) of the bill provides for repealing the earlier act. Sir, over the period of time, post offices across the country are providing a variety of services. People approach post offices for making Aadhaar card. Post offices are extending financial services. ATMs operated by post offices are in nowadays. Sir, the earlier act mainly deals with mail services provided by the post offices. In the modern world, mail services are replaced by email services. Postcards are used rarely. Telegram service has been winded up by the government. Nowadays, only the government offices and its attached organizations, postal services are used for communication, official intimations, decisions, orders, etc. Under these circumstances, also with a necessity to appropriately use the existing human resources with the Postal Department, the government has brought this comprehensive bill. I welcome and support it. Though I welcome and support the bill, I have concerns which I hope that Honourable Minister, who has an able administrator, earlier take into consideration and resolve them. Section 3(1) says, what the services of the post office has to render will be decided by the central government. This section gives sweeping power to the central government. This, in view of the federal structures, this type of trend has to be checked out. Then Section 9(1) empowers the officer of any central government to intercept, open or detain any item or deliver item to customs authority. Such power will hamper the administration and will lead misuse of power and also the privacy of the public. So this section needs a relook. Sir, the bill aims at revamping the entire postal system. All the necessary arrangements that are proposed has to be kept in the bill itself instead of making the rule in this regard by the executive. I earnestly appeal the government to consider the above suggestions and take appropriate decision, make necessary amendments. With these vital submissions, I once again extend my support and felt gratitude for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Honourable Member. Shri Ghanshyam Tiwari ji, 12 minutes. माननीय उपसभापति महोदय, आज ये बिल जो लाया गया है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी युग प्रवर्तक हैं। एक युग से सैकड़ों सालों से जो कानून पड़े हुए थे और जिन कानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, युगानुरूप उन कानूनों में परिवर्तन करने का साक्षी ये राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। और उसी प्रकार से इस बिल को लेकर आए हैं माननीय अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार का अर्थ है
देवताओं के चिकित्सक। तो ये देवताओं के चिकित्सक होने के साथ साथ रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के और बीएसएनएल के चिकित्सक बन गए हैं। ऐसा बढ़िया बिल लेकर आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बिल में दूसरी जो बहुत बड़ी बात अच्छी है, जिसमें उन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण ने तो ये कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि 4 वर्ण की मेरी सृष्टि है, लेकिन मोदी जी ने कहा है चातुर्जाति मया सृष्टम, कि मेरी सृष्टि में 4 जातियां हैं, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियां उनकी है और ये चारों जातियों को ये हेल्प करने वाला बिल है। उदाहरण के लिए माननीय मैं सभापति, उपसभापति महोदय में कहना चाहता हूं कि एक बात की, केवल इस बिल के एक बात की प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आलोचना की, वो सेक्शन 9 और 10 के बारे में। वो कह रहे कि इंटरसेप्ट करने का अधिकार क्यों है, ये प्राइवेसी पर हमला है। और इससे भाई इस देश में प्राइवेसी है, पर इस देश की सुरक्षा भी है। अपने बहुत बार देखा है, जब पार्सल बम जाते थे और जगह जगह बमों के धमाके होते थे, इस देश में अब बमों के धमाके होना शहरों में बंद हो गया है, पार्सल में धमाके होना बंद हो गया है। तो आइंदा आगे धमाके नहीं हो, इस काम के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए इस बिल में प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, आज जब जन धन खाते खोले गए थे तो कहा गया था ये बिना उसके खाते खोल रहे कहां से पैसे आएंगे। आज उन खातों में कितने रुपए जमा हो गए। आज गांव का गरीब आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में जाकर अपना खाता खोल सकता है, अपना काम कर सकता है। उसके पहले तो उन्होंने तो इस पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को बंद करने का मानस बना लिया था, पोस्ट ऑफिस बंद करने लग गए थे। तो एक जो मृतप्राय संस्था हो गई थी, उस संस्था को जीवन दान देकर उसको नया स्वरूप दिया है, उसको परिष्कृत किया है। उसके परिष्कृत करने को ये बिल है, इसमें 16 प्रावधान किए गए हैं। तो 16 श्रृंगार होते हैं अपने यहाँ पर शास्त्रों में, तो 16 उपबंधों के साथ इसके श्रृंगार किए जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के। तो ये श्रृंगार करने का जो ये बिल है, उसको वो श्रृंगार से भी बचाता है। तो मैं इसलिए श्रृंगार बोल रहा हूं कि इसके पहले कहा गया कि कबूतर पहले प्रेम का संदेश लेकर जाता था, हमारे यहाँ पर गाए जाते कुर्जाएं थारा भंवर मिला दे, मेरा भंवर मिला दे, तो कुर्जा गाई जाती थी, तो कबूतर के गाए जाते थे। यहाँ तक होता था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। लेकिन अब तो वो खत जाता ही नहीं। इसलिए अब ये लोग कई बार चर्चा करते कि साहब इसमें प्राइवेसी खत्म हो जाए। भाई ईमेल का इनका जमाना, लोग ईमेल करते रहते थे, रोज चैटिंग करते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं, इसमें किसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है। ये तो बिल्कुल एक इस प्रकार का बिल है जिस बिल में इसके बाद में सरकार के आने के बाद में 1 लाख लोगों को नया रोजगार इसमें दिया गया है। 5,000 से 7,000 ज़्यादा नए खोले गए हैं। इसके बाद पासपोर्ट बनाए गए हैं। गांव में पासपोर्ट बनने की कौन सोचता था। पासपोर्ट बनने के लिए शहर में जाकर लाइन लगाओ, एमपी की सिफारिश कराओ, एमएलए की सिफारिश कराओ, इतना नाटक करो, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, मानसिक विकृति की समस्या है। लगातार कोई आदमी हार का सामना करे और लगातार उनकी बातें उनके खिलाफ आए तो वो बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद में वो बोलता है फर्जी डिग्री। अरे किस पर चर्चा हो रही है? ये चर्चा हो रही है पोस्ट ऑफिस के बिल पर। लेकिन जो प्रहार हुआ है कल, जो राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ने जो प्रहार किया ना, उससे विचलन हो गया है। उस विचलन के कारण से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने केवल ये एक बिल लेकर नहीं आई, अब 3 बिलों की भी आज चर्चा की गई जो अपने यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। सारे कानूनों में संशोधन होना है। जन विश्वास कानून लाया जिसमें 43 कानूनों में संशोधन किया, और उनमें जो आपराधिक सजा के प्रावधान थे
वो खत्म किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग लाइफ, इसको करने के लिए सारा काम किया गया है और ये सारा युग परिवर्तनकारी काम है और युग प्रवर्तक के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए सदन इस बात का साक्षी है कि इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से हम आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात करेंगे, हम गांव में पासपोर्ट बन जाए उसकी मांग करेंगे, गांव में खाता हो जाए। अब आप गांव से एक्सपोर्ट हो रहा है, कई नाम माननीय मंत्री महोदय ने बताए, इस प्रांत के इस गांव से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 40 देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसलिए ये सारा बिल मैं समझता हूं कि सब योग्यताओं के साथ और बहुत संक्षिप्त विधेयक और आगे के लिए आगे की बातों को ध्यान करने के लिए दूसरी बात ये कही गई कि ये कंपटीशन का नहीं है। आज कोरियर सर्विसेज हैं, आज कई लोग कहें ये पीएसयू आवश्यक है, सरकारी कुछ होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए रेलवे में कितना सुधार हुआ आज। रेलवे के प्रोडक्शन में जब प्राइवेट भागीदारी बढ़ी तो रेलवे का कितना सुधार हो गया, पोस्ट ऑफिस में कितना सुधार हुआ है, डाक सेवाओं में कितना सुधार हुआ है। ये सुधार के लिए आज कोरियर सर्विसेज हैं, तो कोरियर सर्विसेज से भी बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए ये सारा जो विस्तार का काम है वो विस्तार का काम करने का जिम्मा इस सरकार ने लिया है, क्योंकि पिछले बारों में जो सरकार थी वो तो लीक पीटती थी कि ये बिल बना हुआ है, इसमें ये अमेंडमेंट कर दो। ये सरकार जो है वो बिलों को नए स्वरूप में लेकर आ रही, आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के समय के अनुसार, और भारत का बढ़ते हुए स्वरूप और भारत की आगे की आवश्यकताएं, उन सब कामों को लेकर ये बिल लाया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में माननीय उपसभापति महोदय 11,000 से अधिक पंचायत और 44,000 से ज़्यादा गांव हैं। उन गांवों तक कोई बैंक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस गांव-गांव तक पहुंचा गया है और उस पोस्ट ऑफिस में गांव-गांव का आदमी अपना सेविंग बैंक का अकाउंट खोलकर, अपना पासपोर्ट बनाकर, अपना रुपया लेकर अपना एक्सपोर्ट करने का काम कर सकता है। इस प्रकार का अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। Yeah, I was attending a parliamentary committee meeting, that is why I was delayed, sorry for that. And during the time also the committee meeting is coming, there is also another problem. Anyway, I am opposing the bill for the reason that after a long time such a bill came and it was needed and warranted, but some provision in that one is the bill allows employees to open postal parcels in the interest of national security. But all other agencies, then it is people will allow to go to other agency because we are sure that they will open, and even if security, non-security, that will be a practice. And there is no provision which says the post office and its officers shall be exempt from any liability by any reason of any loss, misdelivery, delay or damages in the course of providing service. How can you give this completely open hand? Give some restrictions somewhere. And flexibility to post service to fix prices, compete with the fiercely competitive industry. Definitely there is competitive industry, courier service and all. So government should be, this is not a governmental business, it should be for the benefit of the public. So there should not be such what you call private, in the name of competition, they cannot fix any right. Indian Postal Service is known for its service before, and it should continue. The reason for I am opposing the bill is no privacy on the letters and parcels sent by clients. There are no consequences for unauthorized opening of postal articles, no liability on post offices on loss. The price of Indian Post Service may go unaffordable to common people. That's why I am opposing this bill. Thank you very much. माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी।
Thank you very much, sir. So the intent of this bill ought to have been the strengthening of the network of the postal services framework in India to make it more robust, modernized, and speedier. But the legislative intent of the bill doesn't seem to be anywhere near these objectives, sir. It's like trying to fit a giraffe into a mailbox. It aligns more with the plan to turn us into the most surveilled nation. Sir, in the current scenario in India, there has been an erosion of trust in almost all government-provided services. The diminution of this trust has led to more inclination towards private services. Sir, the proposed bill should not solely focus on transforming post offices into financially viable entities, but it should also emphasize the need for operational efficiency. It is important to position them as the preferred choice of the public. Sir, ज़माना अब बदल गया है और जैसे घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि अब हमारे पत्र कबूतरों के माध्यम से नहीं जाते हैं यहाँ वहाँ। मिर्ज़ा गालिब ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, क़ासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। तो ये जो धीमी धीमी रफ्तार थी वो अब नहीं है, क्योंकि ज़माना तेज़ हो गया है। अब जीवन जितना गतिमान हो गया है, पोस्टल सर्विसेज को भी उतना ही गतिमान होना होगा। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के स्पीड को मैच करना होगा। Sir, private services, by the way, have not been brought within the purview of this act, and I wonder why. My point number one is, why do we need these services? I think the department has to make proper utilization of the growing needs of digital banking services. That's why this has come in. But we still have to talk a lot about infrastructure, how to modernize this infrastructure. Nothing like this has been mentioned in the bill. Then why is the burden of pricing being shifted entirely to the postal department? Do we have any ceiling on this? The bill specifies no mechanism on how the prices are going to be regulated by the department, sir. Our focus ought to be improving services for the public and not making money. Sir, the Act exempts the government from any liability related to theft, misappropriation, etc., which has been expressed by many of us. Officers are also exempt from all liability. In fact, the Jan Vishwas Amendment Provisions Act 2023... Honourable Member, please conclude. Please conclude. Take 30 seconds, conclude. All right, sir. So, what I want to say is that officers have got an immunity shield and they may indulge in corrupt practices through it. And we are left with our privacy dancing in the monsoon rain without an umbrella. So I think, sir, it is important that we are concerned about privacy, we are concerned about security concerns are all right, but we cannot undermine the need for privacy. Thank you, sir. माननीय श्री लाहर सिंह सिरोया जी। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस बिल पर बोलने के लिए बुलाया और मैं पार्टी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया है आज। ये बिल, अध्यक्ष जी, मैंने देखा है जो 125 वर्ष पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून लाए जा रहे हैं। और आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस संस्था हमारे दिल से जुड़ी हुई है वर्षों से। आज उसको उन्होंने बचाए रखते हुए उसको आधुनिकीकरण पे ले जा करके आज उसका मैं आपको एक दो उदाहरण देके बताना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं उपाध्यक्ष जी, मैं वैसे तो आईटी सिटी बेंगलोर से रह रहा हूँ 50-55 वर्षों से, और आईटी सिटी बेंगलोर से आया हूँ जो देश की आईटी राजनीति के रूप में जानी जाती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हमारा शहर बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरा बचपन
राजस्थान के गाँव में बीता है। और मेरा बचपन विशेष तौर से जो 6 वर्ष का जब तक था, मैं मेरे ननिहाल में रहा, तो एक हफ्ते में एक बार डाक आया करती थी और पूरी एक लाइफ लाइन थी पूरे गांव के लिए। और वो डाकिया इतने समर्पित होते थे कि जो गांव में जो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते थे। तो ये डाक संस्था जो है हमारे दिल से जुड़ी हुई है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है और गांव की लाइफ लाइन है। जो मेरी उम्र के जो लोग हैं इस बात को मैं समझता हूँ, जानते होंगे। तो ये और एक और बताना चाहूँगा, आज जो हमारा चरित्र निर्माण हुआ है, आज जो इस सदन में जिस वजह से मैं पहुँचा हूँ, उसमें हमारे बचपन में जो हमें साहित्य मिलता था, मुझे याद है कि गोरखपुर में जो हमारी संस्था है गीता प्रेस, वहाँ से कल्याण नाम की पत्रिका आया करती थी और हमारे पिताजी उसके ग्राहक थे, नियमित ग्राहक थे। तो हर महीने वो कल्याण पत्रिका हमारे घर पर आया करती थी और उस पत्रिका को हम पढ़ते थे बचपन में। और कोई हमारे पूरे से देश के जोड़ने का में कोई और तरीका नहीं था हमारे पास में। तो उस कल्याण में हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में तिरुपल्ली कुंड्रम नाम का कोई पक्षी तीर्थ है, तो पूरे देश से जोड़ने का हमें अवसर मिलता था। और जो पत्र पत्रिकाएं जो महीने की आती थी वो डाक से आया करती थी और चिट्ठी आती थी जो से डाकिया डाक लाया, आपने सब कुछ कहा है, तो उसका तो मैंने भोगा है, अनुभव किया उस बात को। तो ऐसी डाक संस्था को जो करीब करीब समाप्त होने जा रही थी विकास ऑफ आधुनिकीकरण की वजह से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से, को जोड़ा गया, जिसका वर्णन हमारे लक्ष्मीकांत जी ने कहा है और भी हमारे साथियों ने कहा है। चाहे ये पासपोर्ट वाला हो, ये डिजिटल पेमेंट वाला हो, सेविंग बैंक्स वाले हो, इंश्योरेंस हो, कई तरह की चीज़ें पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया। और आपने देखा होगा 1.5-2 वर्ष पहले जब पूरे देश के पोस्टमैनों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब उनको उद्बोधन दिया था, उनको संदेश दिया था, उस समय मैं भी उस एक किसी कार्यक्रम में मौजूद था। तो जो उस जमाने के जो हमारे पोस्टमैन आते थे, हमें चिट्ठियां पढ़ के सुनाते थे, उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिला है। जब मैं अभी बेंगलोर आ रहा था 2 दिन के पहले, मैं मेरे घर के बाहर खड़ा था, एक स्कूटी में एक बालिका आई, पीले ड्रेस में थी। मैंने कहा कौन है, तो वो एक चिट्ठी देने आई मेरे को, पोस्ट हमारे कोई सरकारी चिट्ठी या पता नहीं कोई चिट्ठी थी, जो मेरे को देखा, मेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी की। तो महिलाओं को और इस तरह से जिनको रोजगार इतना मिला है उसका साक्षी हैं हम। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो उसमें हमने आंखों से देखा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना का ये है कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस जो इस संस्था को इसको बहुत आगे बढ़ाया और आधुनिकीकरण के रूप में लेकर के आज इसका जो लाखों कर्मचारियों को एडिशन किया। और पोस्ट ऑफिस में जो आज जो चहल पहल दिखाई दे रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अपने नए इस धरोहर को नए युग के साथ जोड़ने का जो उनका हमेशा ये कल्पना रही है, हमारी हर धरोहर को हर जगह उसको कैसे आधुनिकता के साथ जोड़ करके उसका कैसे देश के लिए उपयोग किया जाए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विषय रहा है। और ये जो मैंने इसको विस्तार से इसको देखा है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, इसको आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने जो संजोग से मेरे पड़ोस के जिले के ही गांव के हैं, हालांकि लोग उनको उड़ीसा का भी समझते होंगे, लेकिन उनका जो जिला है मेरे पड़ोस के उस गांव के हैं। और उन्होंने बड़ी मेहनत से, मैंने एक का एक देखा है और हमने पहले भी स्टडी किया है, जो हमारे कमेटी में चर्चा में भी आए हैं ये विषय। तो जिस विस्तार से उन्होंने ध्यान रखा है, अपनी इनको जिम्मेदारी सतर्कता की ध्यान रखा है, जिम्मेदारियों का ध्यान रखा है और उसके पोस्ट ऑफिस के अधिकारों का ध्यान रखा है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और वो नियमावली कैसे बने। अब ये कुछ लोगों को बाद में इमरजेंसी दिखती है, ये कि ये इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी में क्या किया नहीं हुआ। चिदम्बरम साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनको पता है क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या किसने किया। और उसमें तो आर्टिकल 356 भी प्रावधान है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में कई लोगों की मांग होते हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने मांग की थी कि उसमें वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कई जगह से मांग उठी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए
अपने आज़ादी का ध्यान रखते हुए आज तो एक दिन भी किसी भी राज्य में 356 जरूरत होने के बावजूद भी नहीं लगाया और संयम रखा। और कांग्रेस कितनी बार 356 का उपयोग किया है। आज खड़गे जी साहब नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज तो होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो कितनी बार उन्होंने 356 का उपयोग किया, बिना कारण के किया। और ये हार जीत चलती रहती है, उनको इतना ये डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना को कंसोलेशन दे दिया गया है, वो हमारी गलतियों से, और समझो कि वहाँ भी जो भ्रष्टाचार का वो चल रहा था उसके चलते वो सरकार को जाना पड़ा। कोई ये इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है, इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है। तिवारी साहब, आप आगे, तिवारी जी आगे बढ़िए, आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए। मैं समझता हूँ आपका आपके नेतृत्व में ज्यादा सीटें आएगी। माननीय सदस्य, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज 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 एड्रेस द चेयर प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अधिकारियों ने वैष्णव जी के नेतृत्व में बहुत विस्तार से इस बात का ध्यान रखा है, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रोविजन का इसके लिए किसी का अधिकारों का हनन नहीं होगा। ये सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और ये कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने वाली है। आप विश्वास रखें। आपको चोर की दाढ़ी में तिनका दिखता है, उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। आपका वहम का इलाज तो नीम हकीम के पास भी नहीं होता है। आप ये वहम करना बंद करें। और हमारे मित्र चले गए हैं शक्ति सिंह जी, वो जहर कर रहे थे बार बार। अरे अब तो जहर उगलना बंद कीजिए। बहुत देश में जहर फैला चुके थे आप, उसको हम दोते हमारे को इतने वर्ष हो गए, अभी पुरानी तौर। अब ये जहर फैलाना बंद कीजिए। ये जातिवाद का, क्षेत्रीयतावाद का, भ्रष्टाचार का, इस जहर को अब अपने तक रखिए और उसको कम से कम सदन में तो नहीं फैलाएं। किस जहर की बात कर रहे हैं? ये पूरा देश एक, मैंने कहा ना, मेरे बचपन में जब मैं 5-7 साल का, 10 साल का था, तब हमने तिरुक्कली कुंड्रम का नाम, पक्षी तिरुक्कल का नाम हमने राजस्थान के गांव में सुना। वो किसकी वजह से सुना? ये डाक संस्था की वजह से सुना। अगर डाक के सिवाय कोई हमारे गांव में कोई लाइफ लाइन नहीं था, किसी चीज़ का कोई हमारा संपर्क नहीं हो सकता था, तो उस जमाने से हम आए हुए हैं। तो इस डाक संस्था को आज उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर उन्होंने जो संस्था को आधुनिकीकरण करते हुए आज पोस्ट ऑफिस को घर घर में प्रचलित किया है। कितनी सेवाएं मैं गिना सकता हूं, अगर आपके पास मुझे समय दें तो कितनी मैं सेवाएं गिना सकता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कई कानूनों को चेंज किया, जैसे हमारे घनश्याम जी जिक्र कर रहे थे। इन सारी बातों को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो है इसमें कहना उल्लेखनीय यह है कि इस पोस्ट ऑफिस में जो सेवाएँ चल रही है उसमें आज भी आप देखो, हम सब लोग शहर में बैठे हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाला आज भी इस पोस्ट ऑफिस के आश्रय पर जी रहा है। तो इस पोस्ट ऑफिस की संस्था को हमारे को बनाए रखना है और पोस्ट ऑफिस का अवांछित तत्व, इसका दुरुपयोग नहीं करें, इसका ध्यान रखते हुए। हाँ, गोयल जी आ गए हैं, मैं गोयल जी का जिक्र कर रहा था। गोयल जी ने मेरी भावनाओं को छेड़ा था, पुराने बात की, कबूतर की बात की, तो मुझे भी लगा कि आज ये क्या हो रहा है। और गोयल जी, आप तो मेरे मित्र हैं, मैं आपके बड़े आदर करता हूं और आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी का आदर करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये जहर कहना बंद कर दीजिए, जहर उगलना बंद कर दीजिए। जहर आपके अंदर में है, उसको आप बचाइए, लेकिन जहर मत घोलिए। आज देश में इतना अच्छा वातावरण है, आज पूरे विश्व में आज हमारे भारत की प्रशंसा हो रही है। मैं कई लोगों को बताता हूँ, कई लोगों को मिलता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। आज इस जगह इस हॉल में मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता, मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि देश, विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बड़ी है। आज जो भी मुझे फॉरेनर्स मिलते हैं, जो एनआरआई जो आके मुझे मिलते हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज में विश्व में हमारी भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। अब पूरा जब विश्व हमारा सम्मान कर रहा है, हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे मोदी जी का आदरपूर्वक चरण छूने की प्रयास करते हैं, ऐसे समय में आप कम से कम, आप तो गुजरात के हैं, आप तो इस बात को ध्यान रखें कि मोदी जी कितना समर्पण से ये देश की सेवा कर रहे हैं। और आप बार बार जहर की बात करके, गोयल साहब, मैं आपका मित्र हूं और आपका भला चाहता हूं। आप ऑपोजिशन आप इधर आइए। तो मेरा कहना है, तो मेरा इसलिए कहना हो कि मैं
इस पूरे सदन से ये उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं, इस पूर्ण बहुमत से इस बिल को आप पास करेंगे और इतना जो सुंदर बिल आया है, उन्होंने अधिकारियों ने जो मेहनत की है, अश्विन वैष्णव ने जो मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया है, इस बिल का आदर करते हुए इस बिल को 2-2 में पास करें और यही मेरा निवेदन है। और मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों को उनकी तेलंगाना की जीत की बधाई भी देता हूं कि आप वहाँ जीते हैं। चिदम्बरम साहब का मैं आदर करता हूं, आपको भी बधाई। और मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी सीटें अगले चुनाव में इंप्रूव करें। आज 55 से कुछ 70 तक पहुंचे, लेकिन जिस तरह से आप ये जहर घोलने की बातें करते हैं, जिस तरह से आप विघटन बातें करते हैं, मुझे लगता है कि आप 55 से कहीं 27 में नहीं आ जाएं। आप जनता का आदर करना सीखें और जनता के जो उन्होंने निर्णय दिया है उसका आदर करें और देश के प्रधानमंत्री का भी आप आदर करें और जो देश में अच्छा वातावरण बना हुआ है उसको जहर से उसको दूषित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Dr. M. Thambidurai ji. Chairman sir, thank you very much for me giving the opportunity to participate in the discussion on the bill brought by Honorable Minister regarding the Postal Services Act. Sir, it is many members spoke about the history of the postal system, how it developed in India from 1766 onwards. East India Company when they started, then afterwards in 1854 how the act it came, then after independence how it served for the whole human our Indian people. Sir, this is very important service which requires for the rural people especially. Modern days nowadays we are having so many systems for delivering our goods or letters and everything. At the same time, but still rural areas, we are depending on the postal department. Without that, we cannot do it. The postal department, according to the minister, not only serving the letters, Honorable Prime Minister's program also regarding giving the help for the poor people, bank accounts, everything, financial transaction also, the bank is going to do that. It's very essential. Therefore, the postal, even though so many private people have come in courier service, still we are proud of that the postal department as serving for the common man, especially not only delivering, as I said, other activities also, which very essential thing. So regarding, sir, I want to make one important thing to the Honorable Minister. Most of the post offices still has the old building. It is not at all fit enough to have, sir, Honorable Minister, sir, I want to, sir, Minister, sir. Yes, sir. Sir, I want to make an important suggestion, especially regarding the buildings which the post office is still having is an old building. It is not at all good condition. We have to modern days how we developed our system. We need a good atmosphere and the office must be the proper way. That is not having. Second thing, the rural areas, we have to give employment opportunities for those people through postal department. That has to be taken seriously. Because of courier system, what is happening? They are the competitors. Because postal department lose the income. But if you are modernized and quick delivery system, you make it is more profitable. For example, speed post we are telling, it's not a speed post. Even if you put a speed post, it take 1 week or 10 days. That is happening there. Therefore, these are things where people are facing because you are so many legal remedies are there. Postal department, this sending letters or any confidence thing, it also requires for our legal system also. That is the authenticate thing, what are the letters we are sending. And also, secondly, regarding that privacy thing, whatever democracy is, what everybody said, interception of the postal things for some kind of emergency thing or democratic system and security thing, whatever the minister said. Sir, that may be there. I accept that there may be fact also. At the same time, you have the confidential thing also because one person is writing a letter, you cannot interest with such kind of letters. There may be so many things, but his views we are expressing to others means that is there is no using the emergency thing. You cannot interpret that. That is not a fair. That is one important telling, sir. Therefore, what I am requesting once again, our Honorable, because I don't want to make much of the time,
because the postal is our great thing. It's still, our India has a good prestige. During the Prime Minister period also, so many reforms that took place. I am appreciating that. At the same time, what I requested Honorable Minister to see that give the employment opportunity to rural area people to serve there, and also modernize their buildings also, office also. These are things I am expressing. With these words, I am VIDMK party, I am speaking. Thank you, sir. Honorable Shri Santosh Kumar P. Thank you, Vice Chairman. Sir, I am so delighted on reading the name of this bill. That is the Post Office Bill 2023. The Honorable Minister did not attempt to change the name into Hindi. He could have done it, I mean, like this Gadishakti Vidyalaya or Nyaya Samhita. So I am so thankful to him for retaining this English name, which is understandable to each and every Indian. Now, let me add a few more points. Sir, all initiatives to modernize the post office system, which is the largest in the world, is welcome, no doubt at all. But we are not in a position to support this bill in the existing form, especially with the provisions of Section 9 and its subclauses. This Section 9 and its subclauses will turn our post office into Pegasus offices. That is the most important point which I would like to raise. Why you link each and every aspect of life, each and every institution with the security of the nation? The security of interest of the security of the nation is a concept which can be misused, and the government has misused it many times. So please leave these poor post offices from the scope of this operation of this concept. So I would like to request the minister to delete this particular provision. Secondly, sir, to modernize the post office system, the postal system, we have to think about the unused postal land also. This department is having acres of land in various parts of the country. For example, if I say in Cochin, they have more than 1 acre of land which is unused. So there must be provisions and plans to make use of this unused postal land. And thirdly, what about the private players in this field? The India Post is having just 15% of this business in this industry, in this area. Just 15%. Others are in the remaining 85% is in the hands of private players. So, do you have anything to control these private players? If you are going to implement this Section 9, then it will be the secrecy has no value, privacy has no value. Then obviously, these customers will move towards private players. So there must be something to control the private players also. So even though we are in favor of modernizing our postal system, this network, we have to take into account all these concerns. And as far as the postal workers are concerned, sir, more than 90,000 posts are still vacant. So you have to take steps to fill up these vacancies as early as possible. Moreover, the wages of these grassroots level workers must be enhanced. And these are the points which I would like to raise, and I hope the minister will take care of these things. Thank you. Honorable Dr. Anil Sukhdevra Bode. पूरी गुलामी की मानसिकता बदलने का काम किया। यानी वो अमृत पथ रहे, सुभाष चंद्र जी बोस की स्टैचू लगाना रहे, या 1898 में बनाया हुआ इंडियन माइक्रोफोन प्लीज। या 1898 में बनाया हुआ इंडियन पोस्टल एक्ट रहे। 1898 से मोदी जी को आना पड़ा कि वो गुलामी की मानसिकता से निकल के नया इंडियन पोस्टल एक्ट, पोस्टल बिल 2023 लाना पड़ा। पोस्ट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, हालांकि अभी व्हाट्सएप है, ईमेल है, सभी चीज़ें हैं,
लेकिन वो बैंक है, लेकिन गरीब लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए पोस्ट की बहुत ही अहमियत है। लेकिन 2004 से 2014 तक आपको पता है कि 600 डाकघर बंद कर दिए गए थे, यानी ये डाकघर बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर शुरू हो गए, यानी ये डाकघर को पुनर्जीवन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में हमारे काबिल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव, इनके माध्यम से 5746 और डाकघर खोले जा रहे हैं। अब 5746 और पहले बने हुए 5000, यानी इतने डाकघरों में गरीबों के लड़कों को, लड़कियों को, उनको नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ डाकघर का काम चिट्ठियां पहुंचाना, पार्सल पहुंचाना इतना नहीं है, तो 100 सुविधाएं उसमें ऐड कर दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं मानता हूं कि वित्तीय सुविधाएं उसमें ऐड की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी यानी महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी है, उनकी आत्म सुरक्षा की गारंटी है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने की गारंटी है। अब इसमें अहम भूमिका जब डाकघर निभाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने लाई सुकन्या समृद्धि योजना, या पिछले ही बजट में महिला का सम्मान बचत पत्र, या डाकिये द्वारा खोले गए, घर घर जाकर खोले गए खाते, ये सब महिलाओं को दे रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई भी व्यक्ति को मिलती है तब उसका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। और आज हमारे तीनों राज्यों में भारतीय जनता पक्ष ने जो विजय हासिल की उसमें सबसे बड़ा रोल नारी शक्ति का है। यानी पूरे भारत में पूरी नारी शक्ति का भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर है। ये इसलिए है कि हर महिला को, जिसको समझा जाता था वो दबी है, वो है अबला है, उसको सबला बनाने का काम। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने तो मध्य प्रदेश में जाके देखा, मैं चुनाव के प्रचार में था, पहले ऐसा होता था कि हस्बैंड बोलता था महिलाओं को यहाँ का बटन दबाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो मैंने देखा कि महिला ने बोला, बेटे को भी बोला कि बटन दबाना है तो कमल के फूल का ही दबाना है। उसके हस्बैंड को भी उसने मजबूर किया कि घर में आना है, खाना खाना है तो कमल का ही बटन दबाना पड़ेगा। तो ये नारी शक्ति की पहल जो हो रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के माध्यम से हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आरडी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। आरडी के माध्यम से हर महीने में घर घर जाके वो आरडी की प्रतिनिधि पैसे जमा करती है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और उसके बाद में वो प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में जमा किया जाता है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में 8 करोड़ खाते खोलकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यानी इसका फायदा किसको होता है? गरीब को होता है, महिलाओं को होता है, किसानों को होता है, किसानी मजदूरी करने वाले को होता है, विश्वकर्मा लोगों को होता है। इसका फायदा कोई इंडस्ट्री वाला नहीं ले रहा, इसका फायदा कोई बड़ा अधिकारी नहीं ले रहा, सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे रहने वाला जो आदमी है उसको बेनिफिट हो रहा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ये डाकघर का विधेयक जो है ये सिटीजन सेंट्रिक है। मुझे सौभाग्य मिला एक सांसद के नाते से कि अमरावती जिले में एक एरिया में जहाँ जेवट नगर का एरिया है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पे डाकघर खोला गया। और मैंने देखा कि ये डाकघर मैंने पहले बचपन में भी देखे थे, और डाकघर ऐसा रहता था कि अंधेरे रूम में डाकघर चलता था, वहाँ ठप्पे मारे जाते थे, और डाकघर का
नौकरी करने वाला भी दिन रात वही काम करके परेशान होता था। लेकिन जो मैंने डाकघर देखा वो स्मार्ट डाकघर देखा कि स्मार्ट डाकघर यानी टोटली कंप्यूटराइज था, टोटली डिजिटलाइज था, बैंक के जैसा था। वहाँ बैठने की सुविधा अच्छी थी, वहाँ एयर कंडीशन लगा था, वहाँ की तिजोरी अच्छी थी। यानी अच्छी तरह से जब डाकघर निर्माण होता है तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहा और एक ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। मुझे तो आशा है कि इतना बड़ा नेटवर्क हमारे डाकघर का है और हमारे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इतने उनकी कल्पना शक्ति भी आगे है कि कल हो न हो अमेज़न जैसा डाकघर के माध्यम से डिलीवरी सिस्टम भी शुरू हो जाए, अमेज़न जैसी डिलीवरी सिस्टम भी शुरू हो जाए और लोगों को डाकघर के माध्यम से हर उनके घर तक कोई भी सामान पहुंचाने की सुविधा भी निर्माण हो सकती है। अब जो दिक्कत है, जो विरोधी पक्ष के सम्मानीय सांसद लोगों ने जो दिक्कत पेश की है कि पार्सल फोड़ा जाएगा, जो किसको डर है कि जो गलत काम करने वाला है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको ये डर रहना चाहिए। कुछ डर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डर सरकार का डर निश्चित ही रहना चाहिए। जो दहशतवाद करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, आपको पता है कि ब्रुसिलिस नाम की बैक्टीरिया के माध्यम से बीमारी फैलाने का काम भी एनवेलोप के माध्यम से किया गया था, बैसिलस एंथ्रैक्स करके। तो एंथ्रैक्स के बैक्टीरियाज भी पोस्ट के लिफाफे में से भेजने का काम वेस्टर्न कंट्रीज में भी किया गया था। और ईच एंड एवरी जो भी पार्सल रहता है आज के ज़माने में, वो उसका एक्सरे भी होना चाहिए, उसकी स्क्रूटिनी भी होना चाहिए और सस्पेक्टेड रहा तो उसको खोलना भी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट पहल देश की सुरक्षा के लिए, कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए। मुझे लगता है कि किसी की प्राइवेसी उसमें कुछ डिस्टर्ब होने की संभावना नहीं है। उसको ही डर लगेगा कि जो गलत काम, देश के विरोधी काम कर रहा है, उसको ही गलत लग सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बिल, जो रिवोल्यूशनरी बोल सकते हैं हम, पोस्टल एरिया के और पोस्टल डिपार्टमेंट के पूरे लाइफ में, जो 1898 के बाद में पहली बार आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा मंत्री जी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लाए हुए बिल के लिए सभी ने समर्थन करना चाहिए, ऐसी विनंती भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पे बात करने का अवसर दिया है, तो मैं आपकी आभारी हूँ। 125 साल बाद एक रिफॉर्म आ रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। पोस्ट ऑफिस बिल 125 साल बाद आ रहा था। मेरी उम्मीद ये थी कि अगर हम बात करें कि किस तरीके से उसका मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, किस तरीके से हम सर्विसेज को पुख्ता करेंगे, किस तरीके से रीएलोकेशन ऑफ एसेट्स करेंगे, किस तरीके से हम घर घर तक पोस्ट ऑफिस को पहुंचा पाएंगे, ये उम्मीद थी इस बिल के माध्यम से। पर अनफॉर्चुनेटली क्लॉज 9 और क्लॉज 10, मैं मानती हूँ रिफॉर्म के आड़ में हम ऐसे क्लॉजेस डाल रहे हैं जो सर्वेलेंस से कम नहीं है। जिस तरीके से एक महीने पहले मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, जब हमारे फ़ोन्स पे एक मैसेज आया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस, जिसका मतलब है एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस अटैक हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ है, आज तक मुझे उनकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला है। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में सर्वेलेंस, इसके आड़ में सर्वेलेंस। और सर्वेलेंस यहाँ पे क्या इंटरसेप्शन क्या क्या कह रहा है, किस किस चीज़ों पे इंटरसेप्शन कर सकते हैं, अंडर विच रूल्स, सिक्योरिटी ऑफ द इंटरसेप्शन क्या क्या कह रहा है, किस किस चीज़ों पे इंटरसेप्शन कर सकते हैं, अंडर विच रूल्स, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, contraventions of the provision of this bill or any other laws। इमरजेंसी को गाली देने वाले आज इमरजेंसी की आड़ में आपका वो कर सकते हैं, इंटरसेप्शन कर सकते हैं पार्सल्स का। दूसरी चीज़ क्लॉज नंबर 10 कि कोई लायबिलिटी नहीं है,
सर्विसेज में अगर दिक्कत हो, फॉल्ट हो, कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार करेगी, उस बिल में प्रावधान है। तो इस बिल में हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं देयर विल बी लायबिलिटीज इफ देयर इज लैक ऑफ सर्विसेज? ये मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है कि सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके से लायबिलिटीज डिसाइड होंगी। खुली छूट दी जा रही है डायरेक्टर जनरल साहब को और उनके ऑफिसर्स को कि इंटरसेप्शन के नाम पे वो गुड्स को डैमेज भी कर सकते हैं, लेटर्स खोल सकते हैं, प्रिवेसी का हनन हो सकता है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ मैं लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉजिटिवली इसको लेंगे और इस पर काम करेंगे। पर साथ ही साथ मैं लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ सर कि सर्वेलेंस हो, इंटरसेप्शन हो, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ऑपोजिशन को दबाने का काम किया जाए, लोगों को चुप कराने का काम किया जाए, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसको मैं इन 2 क्लॉजेस के अलावा मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसमें किसी तरीके की अमेंडमेंट्स लाई जाएगी। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। Mahoday, the Post Office Bill 2023, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लाया गया है। इस बिल में बहुत सारी विशेषताएं हैं और आज ये आवश्यक है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो बेहतर काम करें और उनकी पहुंच दूर दूर तक हो। मेरे मित्र ने जब अपना शुरुआत की, शक्ति सिंह गोहिल जी ने, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब सुदूर गांव में तो पोस्ट ऑफिस ही काम करेगा और कोई जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। ये सत्य बात है, लेकिन वो ये जानना भूल गए शायद, या उन्होंने जानबूझ के इस बात का उल्लेख नहीं किया कि जब उनकी सरकार थी तो पोस्ट ऑफिसेज बंद हो रहे थे। उस समय एनडीए की सरकार जो आज इसको काम को कर रही है, यूपीए सरकार ने नहीं किया। आज उसके उलट स्थिति है। आज पोस्ट ऑफिसेज नए नए खुल रहे हैं और उसको एक पूरी तरह से इस प्रकार से संचालित किया जा रहा है कि देश की जनता उसके ऊपर विश्वास करे। कुछ हमारे मित्रों ने क्लॉज 9, क्लॉज 10 पे अपनी आपत्ति की है। आज देश की पूरी जनता माननीय मोदी जी पे विश्वास कर रही है। आप भी उस पर करना शुरू करिए, नहीं तो जो स्थिति आपकी है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप ये क्यों मान के चलते हैं कि इसमें किसी प्रकार को, किसी व्यक्ति को दिक्कत होगी? आज मोदी की गारंटी है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मानता है। आज गरीब आदमी के खाते पोस्ट ऑफिसेज में खुल रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में रकम है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच गई हैं और उन सर्विसेज को न केवल गांव तक, व्यक्ति तक पहुंच गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके घर तक पहुंच रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छे अकाउंट्स खुले हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और उसी का एक रिज़ल्ट है कि इतने अल्पकाल में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मुनाफे में आना शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। एक समय था कि एक सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ बिल को पोस्ट ऑफिसेज की सर्विसेज देनी शुरू करी, महिलाओं के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रचारित किया गया, लेकिन सरकार का ध्यान सर्विसेज की ओर नहीं था, इसलिए उसमें घाटा हुआ और अंततः बंद कर दिया। आज जहां ये बिल हमारे सरकार का स्पष्ट मैंडेट दिखाता है कि किस प्रकार से हम गरीब आदमी के लिए प्रतिबद्धता है हमारी,
वहीं ये स्पष्ट भी करता है कि किस प्रकार से सरकार हर जन जन का खाता खुलवाना चाहती है जहां बैंक भी नहीं है, और उसका कितना बड़ा फायदा हुआ है कि आज देश में भ्रष्टाचार मिनिमम हो चुका है और इसको धीरे धीरे जीरो की ओर ला रहे हैं। मेरे कुछ मित्र इस पे बड़ा अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद उस बात को भूल गए जब देश के एक बड़े प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 15 रुपये केवल पहुंचते हैं। 85% का घोटाला होता था। आज इन बैंक्स के खुलने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने से ये घाटा पूरी तरह से समाप्त की ओर है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी साथियों को इसमें किसी ना किसी प्रकार से रोड़े अटकाने की जो उन्होंने अपनी पुरानी चाल है उस पर काम करना शुरू किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने विपक्षी साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराएं। देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार उनके अच्छे कार्यों में आप लोग रोड़े अटका रहे हैं और उसी का परिणाम 3 दिन पहले आपको देखने को भी मिला। पुनः आपसे अनुरोध कि इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल श्री देवू सिंह चौहान जी। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मुझे इंटरवन करने का मौका मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का हमेशा ये आग्रह रहा है कि देश की जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, बिजनेसमैन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इस देश की प्रगति में हर सिटीजन अपना कंट्रीब्यूट करे और इसी के चलते यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे काबिल एमओसी आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में हमारे मिनिस्ट्री ने भी कई रिफॉर्म्स का काम प्रारंभ किया है और इसी रिफॉर्म के चलते हमने ये पाया कि जब ब्रिटिश के शासन के दौरान जो व्यवस्था पोस्टल विभाग की थी और आज बदलते समय के साथ ये देश के नागरिकों की आकांक्षा और अपेक्षा के हिसाब से इस नेटवर्क का, जो नेटवर्क आज पूरे भारत में सबसे बड़ा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है, भारत सरकार का सीधा चेहरा अगर डोर स्टेप पे है, कोई चेहरा अगर कोई नेटवर्क है जो डोर स्टेप पे दिखता है तो वो पोस्टल विभाग का है। इस पोस्टल विभाग के नेटवर्क को हमने हमारी पार्टी की फिलॉसफी के हिसाब से, जो हमारे पूर्वज ने हमें संस्कार दिया है, अंत्योदय की भावना, जो लास्ट माइल पे, जो अंतिम छोर पे जो बैठा है, उदय करने की जो भावना के साथ सरकार काम करे, तो हमने यही सोचकर अंत्योदय की भावना से ये जो ट्रस्टवर्दी नेटवर्क अंतिम छोर पे है, बदल के समय के साथ हमने उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया और इसी रिफॉर्म्स का एक भाग है 1898 का ये ब्रिटिश राज का कानून को बदलना। ये जो कानून बनाया गया था तब हम सब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में थे और उनका ये हैबिट था और उनका ये माइंडसेट रहा कंट्रोल करने का, और इसी मानसिकता का कंट्रोल करने का माइंडसेट आफ्टर इंडिपेंडेंट 70 साल तक इस देश ने महसूस किया। हमने इस कानून में सुधार लाकर इस नेटवर्क को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देकर, लास्ट माइल में बैठा उस आदमी को कनेक्टिविटी, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक चेंज का एक बहुत बड़ा टूल बना दिया। हमने इस नेटवर्क के चलते
जो पहले केवल मेल और लेटर देने का काम करती थी, आज उस नेटवर्क से बैंकिंग फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल और पूरा ट्रांसपेरेंटली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट को काम करना है तो टेक्नोलॉजी को आधार बनाना पड़ेगा, और इसी टेक्नोलॉजी का आधार बना के हमने इस नेटवर्क के चलते हमारी सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हमने प्रदान करने का प्रारंभ किया है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देता हूं कि इस सिटीजन सेंट्रिक की सेवाओं से हमने क्या क्या काम किया है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का रूरल में अंतिम छोर हमारी पास 1,64,000 पोस्ट ऑफिस है। इस 1,64,000 पोस्ट ऑफिस में 4 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का अकाउंट ओपन किया है, और इस अकाउंट में हर लाभार्थी को जिसका राइट है वो सीधा इसका अकाउंट में मिलता है। हमने आधार का प्रोविजन किया है, हम पेंशन देते हैं। मैं कई बातें इस बारे में बोल सकता हूं, लेकिन कुछ साथी सांसदों ने सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के बारे में अपनी कुछ विचार, अपने सजेशन, अपना कुछ एक तरीके से ऑपोजिट भी बताया है। मैं सेक्शन 9 में ये बताना चाहता हूं कि सेक्शन 9 केवल नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए ही है, और ये सेक्शन 9 नया नहीं है। पुराने एक्ट में भी आपके समय में भी ये सेक्शन था, लेकिन हमने उसको जनता के हित में, देश के हित में उसको सिंप्लीफाई किया है। और सेक्शन 10 जो है, जो लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस समय पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं था। हमने उस सर्विस को आधार बना के लिए, और जो अगर लायबिलिटी की बात करते हैं तो हमारी पास रूल्स एंड रेगुलर सर्विस रूल्स है। अगर कोई विलफुली कुछ मिसचिफ करता है और काम करता है तो उस पर हमें कंडक्ट रूल के हिसाब से पनिश करने का प्रावधान भी है। मैं ये मानता हूँ कि जब ये 1,60,000 पोस्ट ऑफिस, 1,64,000, पहले के ज़माने में आपके समय में 660 पोस्ट ऑफिस बंद हो गए थे, हमने 5,000 नए खुले हैं, और आगे 5,746 पोस्ट ऑफिस नए खुल रहे हैं। एक तरीके से नए बैंक खुल रहे हैं हर 5 किलोमीटर्स में। एवरी 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस बैंक की तरह सेवा देगा और इंश्योरेंस का काम करेगा। हर सिटीजन को सिटीजन सेंट्रिक सेवा देने का कोशिश करेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज हम जो बिल लेकर आए हैं और हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि पार्सल रिफॉर्म्स हमने जब शुरू किया करीब करीब 36 एक्टिविटी थी। आज पार्सल रिफॉर्म्स हमारा इतना अच्छा हुआ गया है कि अभी अभी एक सांसद जी बोल रहे थे कि अमेजॉन, अरे अमेजॉन ने ऑलरेडी हमारे साथ एमओयू किया है, और आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट और पूरा हमारा एक वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, हमारा सर्कल है, उसमें अमेजॉन भी हमारे साथ फ्यूचर में काम करेगा। आने वाले समय में ये सब जानते हैं कि पोस्टल नेटवर्क का स्ट्रेंथ क्या है। हमने प्रसादम योजना शुरू की है, हमने गंगा जल योजना शुरू की है। हर कस्टमर अगर कहीं अपने घर में बैठकर कहीं से भी बाबा विश्वनाथ का, सोमनाथ का, द्वारका जी का, कहीं से भी वो प्रसाद मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। कोविड में हमारा विभाग ने जो काम किया है कभी नहीं सोचा था। आज हमने जो सेक्शन लेकर आए हैं वो इसी के कारण ही लेकर आया था कि फ्यूचर में अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी में वैसे ही कोई वायरस आ जाता है फ्यूचर में, या कुछ जो इलीगल ड्रग्स है, ओपीएम है, ऐसा अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको देखने का अधिकार सरकार का है, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है। आने वाले समय में ये रूल्स बनेंगे, रूल्स में भी पार्लियामेंटेरियन अपना सजेशन दे सकते हैं। हम केवल एक्ट लेकर आए हैं, और ये एक्ट नया नहीं है, जो आपका एक्ट था उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इसी बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल श्री मिथिलेश कुमार जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज आपने हमको पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
उपसभापति महोदय, इस बिल ला करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और यहाँ पर माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो पुरानी ब्रिटिश सरकार के बिल का खात्मा किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हमारे देश में डाकघर का बहुत बड़ा महत्व है। अभी सभी ने बताया, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि हम लोग देहात क्षेत्र से आते हैं, तो देहात में डाकघर का बहुत बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि वहां पर व्हाट्सएप और मेल इनके माध्यम से सूचनाएं बहुत कम पहुंच पाती हैं, लेकिन आकर के जाकर के साइकिल से, मोटरसाइकिल से जब पोस्टमैन एक दूसरे को पत्र लेकर के जाते हैं तो उससे एक व्यवहारिक समानता और सामाजिकता भी बढ़ती है कि आकर के मिले, चाय पी, हालचाल पूछा, गांव में क्या हो रहा है। अभी आपने देखा, एक हमारे देश में बहुत बड़ा त्यौहार होता है भाई बहनों का, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पे हमारी बहुत सी बहनें नहीं पहुंच पाती हैं किसी कारणवश, तो उनकी राखी डाक के माध्यम से पहुंच जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वार्ड में न्याय पंचायत स्तर पर एक डाकघर जरूर खुलवाएं, जिससे उनकी भावनाएं उनके तक पहुंचती रहें। दूसरे, अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात जो बताई है बैंकिंग वाली, तो 4 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से नेतृत्व में पूरे देश में हर व्यक्ति को सीधा पैसा डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। और डाक खाने की तरफ से जिस तरीके से आपने पासपोर्ट बनाने का काम जो डाक खाने को दिया है, ये बहुत ही अपने में सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमें मालूम है ये मंडल स्तर पर होता था। हम शाहजहाँपुर रहते थे, बरेली में पासपोर्ट ऑफिस जब तक पहुँचते थे तब तक बंद हो जाता था, या दलालों के माध्यम से वहाँ पर पासपोर्ट बना करते थे, तो बहुत से नवयुवक और महिलाएं इससे वंचित रहती थी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा हर क्षेत्र में विशेष रूप से काम किया जाता है। इसमें नई क्रांति ला करके डाक खाने हर जगह स्थापित किए जाएंगे, ऐसे बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री संजीव अरोड़ा। Thank you, Chairman Saab, for giving me time to speak on this important bill which affects almost all of our population. And I appreciate bringing an act after 125 years. However, I have some suggestions and some apprehensions in the bill which I would like through you, Honorable Minister, if he can go over them and see if these can be changed, or in the bill it says that any change can be made through rules. So even if it can be made through rules, first of all, I suggest that post offices should be given level playing field vis-a-vis other companies like FedEx, like Blue Dart and all. So if some provisions of legislations are for post office, some similar legislation should be brought for them also, so that it's a level playing field for all the agencies. Secondly, many members have spoken regarding interception, but what I feel is there are no safeguards from interception. So I request that the powers for the same should only be given to high-ranking officials to avoid arbitrary actions against individuals. Sir, past Honorable Prime Minister Shri Vajpayee, only on this issue had not got the bill passed in 2002. So I request that this point may be taken care of. Further, Consumer Protection Act does not apply to post offices.
It applies to railways, which is one of your ministry, oil companies, many other organizations. So that should be applied to post offices also to safeguard consumers. The bill says that it does not involve recurring or non-recurring financial expenditure, whereas post office regularly gets budgetary support, which is fine, but is contradictory to facts presented to the bill, as long as I don't see what is behind the lines. Lastly, my suggestion is, my personal view is that post office should be involved in B2B logistics also as much as possible. There are lands available with all the post offices. They can be converted into warehouses. So that, because now online ordering is very popular. So if these companies open the warehouses in the post offices, it will bring them nearer, and the time of order delivery will be quicker. Plus, it will increase the income of post offices so that it becomes self-sufficient. And last of all, post offices are being used for banking purposes, which is good. But these days, everybody wants to invest money in stock markets. So my advice is, let us allow post offices to deal in mutual funds. So there are some people who are tax savvy, some are non-tax savvy. So that non-tax savvy can go into post office and still invest in mutual funds, which will ultimately go to stock markets and which will help in growth of the markets as a whole. Thank you. I support this bill other than the points which I have said, and if there some changes can be made. Thank you, Chairman. Shri Ram Bhai Mokriya. सर, मैं पोस्ट का जो बिल है 2023 का, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, आपका आभार। ये मोदी साहब के अगुवाई में अपने अश्विनी जी, वैष्णव जी ने जो बिल लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैं पहले कुरियर कंपनी से जुड़े हुए थे, तो मेरे को कुरियर का भी एक्सपीरियंस है और पोस्ट ऑफिस का भी एक्सपीरियंस है। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब 2006 में अमेंडमेंट बिल आया था यूपीए सरकार में, तब इसका कोई जो बोझ था, इसको समझाने पटाने के लिए काफ़ी मेरे को दिक्कत आई, और 25-30 लाख लोग काम कर रहे थे गुजरात, पूरे इंडिया में। तो सुधार बिल वो फ्रीज हो गया था। इसके पहले मोदी साहब एक बार जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो मेरे एक फंक्शन में आए, तो इसने बताया था कि सबसे पहला कुरियर या तो पोस्ट कौन था। क्वेश्चन किया तो किसी को पता नहीं था। मोदी साहब ने बताया कि भगवान राम की रिंग जो वीटी है, वो लेके सीता जी को देने गए, वो मारुति नंदन, मतलब मारुति भगवान, वो सबसे पूरा पहला कुरियर सर्विस था। दूसरा एक बात मेरे को ये बताना कि कुरियर कंपनी जब पोस्ट में स्ट्राइक हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तब मैं पोस्ट ऑफिस मैनेजर के पास गया और मैंने बताया कि मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। बोला, आप क्या कर सकते हैं, आप तो हमारे ओपोजिशन में। मैंने बोला, सर ऐसा नहीं, मैं आपका पूरक बनना चाहता हूँ। और पूरे समय में जो 6-8-10 दिन स्ट्राइक रही, तब हमने इसका टेलीग्राम जो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था बिना चार्ज लिए उसको सर्विस दिया। बाद में मैं गया कि अभी मेरे का चार्ज दो। बोला क्या? मैंने बोला मेरे को सर्टिफिकेट दो कि मैंने आपको ये हेल्प किया है। वो सर्टिफिकेट मेरे को ये अमेंडमेंट बिल जब आया तब बताने में काफ़ी सहूलत रहा। दूसरा ये है कि कुरियर कंपनी में करोड़ों लाखों लोग भी काम करते हैं, और कुरियर सर्विस के माध्यम से भी मेरे को पहले जो 10 साल पहले की बात है, तो उसी टाइम पोस्ट में जो सुधार नहीं था, वो कॉम्पिटिशन में, जैसे एयर इंडिया एक ही था, इंडियन एयरलाइंस था, बाकी एयरलाइंस कंपनी आई तो सभी कंपनी में तंदुरुस्त हरीफाई हुई, वैसा पोस्ट में भी हो रहा है। पोस्ट पहले एक ही पोस्ट सर्विस काम कर रहे थे, अभी काफ़ी कुछ इसमें सुधार आया, काफ़ी लोगों को रोजी रोटी भी मिलते, डेवलपमेंट भी हुआ पोस्ट में। और एक बात वो भी मैं जिक्र करना चाहता, जब सूरत में प्ले गया था, उसी टाइम वहाँ के सब बड़े बड़े लोग अपना घर बार छोड़ के
उसने एकदम फ्री में निःशुल्क पूरे सूरत में दवाइयाँ बांटी थी। तो ये मेरा कहना यह है कि प्राइवेट कंपनी भी समाज के लिए, देश के लिए भी अच्छा काम कर रही है। और जो सिक्योरिटी की बात है, जो अपने ओपोजिशन वाले बोलते हैं, सिक्योरिटी होना जरूरी है, क्योंकि पहले काफ़ी कुछ ऐसा हादसा हो गया। पोस्ट में पार्सल जाते हैं, पार्सल बॉम्ब बनाते हैं, वहाँ पार्सल जिसके घर पर जाते हैं तो टच करते हैं तो एक्सपायर्ड हो जाते हैं या तो कुछ हादसा हो जाता है। तो ये सब बिल आया वो तो सही है, वो देखना चाहिए कि सेफ्टी पहले देश की होनी चाहिए, बाद में सब बात हो। उसी टाइम मोदी साहब जब आए तो बताया था कि कुरियर कंपनी वाले लोगों को जो बॉर्डर एरिया है, ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में जो गतिविधि होती है देश विरोधी, उसमें भी आप केयर कर सकते हैं और आप निजी जांच कर सकते हैं। वो इससे भी काफ़ी हमारे पास कुछ ऐसा अनलीगली आता है, हम पुलिस को या तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, कभी जाली नोट चली जाती है, कभी ये कुछ। ये पोस्ट में इतना काम नहीं वो रहता था, वो प्राइवेट में हम कर सकते हैं और देश की सेवा में भी काम करते हैं। आज काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट के बिना 20,000 रुपया से 25 लाख रुपया हर महीने कमाते हैं टैक्स पेड। ये भी एक कंपटीशन का ज़माना है और प्राइवेट कुरियर और पोस्ट के साथ जो कंपटीशन हो रही तो सर्विस में भी सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुरियर कंपनी इसका कोई बिजनेस खा जाती है, लेकिन कुरियर कंपनी भी जो कारगिल का युद्ध हुआ था तभी प्रधानमंत्री केयर फंड में काफ़ी कुछ लोगों का ड्राफ्ट चेक सब फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाते हैं। रक्षाबंधन के टाइम में भी मिलिट्री वाले लोगों को उसके बहन का जो रक्षाबंधन का है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाते हैं। मतलब काफ़ी सामाजिक काम भी करते हैं। जैसे एयर इंडिया में 1-2 कंपनी थी, अभी काफ़ी एयरलाइंस हो गई। टेलीफोन में पहले एक MTNL था और BSNL था, अभी काफ़ी कंपनी आ गई। तो कंपटीशन के ज़माने में पहले हमको फ़ोन लेना था, पैर पर पानी आ जाता था। अभी हम फ़ोन करते कि मेरे को फ़ोन लेना तो 10 कंपनी आ जाती। इसका मतलब तंदुरुस्त हरीफाई होनी चाहिए और ये पोस्ट में काफ़ी कुछ सुधार भी हो रहा है। उसका तनख्वाह भत्ता में भी काफ़ी सुधार हो गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि माननीय मंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी कोई रूल्स है कि फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर नहीं जाते पोस्टमैन, नीचे डब्बा होना चाहिए, आप पोस्ट बॉक्स जैसा रखना और वहाँ देंगे। हम कुरियर वाले 7 माला पर भी कभी लिफ्ट बंद है तो पहुँच जाते हैं। तो पोस्ट में भी ये होना चाहिए कि कहाँ भी है, 3रे मंजिल, 5वें मंजिल। एक मेरा वो रिक्वेस्ट है इसमें अमेंडमेंट करने का। बस, बाकी धन्यवाद। और ये बिल लेके आइए, काफ़ी खुशी की बात है। Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav to reply the discussion. Thank you, sir. I thank all the honorable members who participated in this very lively debate. Many important issues have been raised, and some of the issues are basically common. Honorable members have raised points regarding the privatization of post, regarding PSU, regarding interception, regarding the liability. Some honorable members also raised the issues regarding the continuity of the law. So I would like to cover all the points one by one, and beginning with the point about interception. Honorable Chairman, sir, in a society which is as complex, as diverse, and times which are as difficult as they are, it's very important that interception is done. This kind of provision is kept in the law for the national security. What I would like to request honorable members through you is the way constitutional provisions are framed, where a right is given, but there are certain carve-outs out of it. Similarly, in this law, very clearly laid out procedure, very clearly laid out carve-outs have been kept in this law. Many honorable members said that what is the process, what procedure will be followed for the interception. I would like to inform all the honorable members that interception is something which has been there in this act, in the previous act, for ages, for many decades, and the procedure also has been very well established. As and when we frame the rules,
the rules will be laid before the Parliament, and the procedure for interception will be introduced through the rules. And it will be very fair and transparent. There is absolutely nothing to worry about it. The second point which was raised by many honorable members was about the liability of the post office employees. Even now, Honorable Chairman Sir, the liability of the employees, whenever there is a negligence or a willful act by which the services which are supposed to be today, that bill also provides for the liability in those cases. The clause regarding no liability, that is a clause which is given because post office people they are basically public servants. That's why that clause has been given. The third major point which was raised by many honorable members was about the employment, PSU, privatization. Very clearly, there is absolutely no question of privatization of the post offices. We have very categorically said, और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूं कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। जो इस बिल में लाया गया है वो बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की सर्विसेज को विस्तार करने का है। पहले केवल मेल, डाक, इसके लिए पोस्ट ऑफिसेस का कानून के अंदर प्रावधान था और अब उसका विस्तार करके बाकी कई तरह की सर्विसेज को लाया जा सकता है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया, आज पोस्ट ऑफिसेस प्रैक्टिकली बैंक बन चुके हैं, बैंकिंग सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में करीब 26 करोड़ अकाउंट है और 17 लाख करोड़ रुपए उसमें डिपॉजिटेड है। तो एक साधारण परिवार के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे अपनी सेविंग्स को सेफ रख सके। वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों के लिए पूरी जिंदगी भर का एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है, उसमें 3 करोड़ खाते खोले गए हैं जिसमें 1,41,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 21 लाख दिए गए। जैसा कई मान्य सांसदों ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्र के कारण उनको आज जितनी सुविधाएं मिली है पासपोर्ट बनाने में, ये एक ऐसी सर्विस है जो सर्विस और बढ़ेगी और इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। वैसे ही आधार एनरोलमेंट 13,500 सेंटर। और सबसे बड़ी बात जो एक और माननीय सांसद ने कहा था कि एक समय था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा 100 रुपये भेजते हैं, केवल 15 रुपये जमीन तक पहुंचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं, एक बटन दबा के पूरे 100 रुपये अपने साधारण नागरिक के खाते में पहुंचते हैं। और इसमें पोस्ट ऑफिस का भी बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक है, इसके जरिए से करीब 3.5 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिल रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। 3.5 करोड़ लोगों को एक बटन दबाते ही लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा था कि भाई अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट आपने क्यों बंद कर 2011 में तो आप ही की सरकार थी भाई, तो आपने थी भी और नहीं भी थी तो आपने जो काम किए उन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, किसी और को जिम्मेदारी न करते हैं। वैसे ही कहा गया आपने कि स्पोर्ट्स कोटा हटा दिया। अरे भाई थोड़ी तो जांच कर लेते हैं अपने बात की। आज भी स्पोर्ट्स कोटा पूरी तरह से है और उसको एकदम ट्रांसपेरेंट करने के लिए हर चीज को ऑनलाइन कर दिया गया है। एफिशिएंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है।
वैसे ही कई मान्य सदस्यों ने कहा इंटरसेप्शन का जिक्र करते हुए फ़ोन कंपनी का नाम लेते हुए कहा, मैं उन सबको कहता हूं कि आप अपने फ़ोन चेक कराने के लिए सर्टिन को दे दें, जो बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट से जांच करेंगे भारत के। आप कहेंगे किसी विदेशी एक्सपर्ट के पास भेजना है तो वो भी कर देंगे, क्योंकि आपको वैसे भी अपने देश पे तो भरोसा रहता नहीं है। आपने तो हमेशा देश को नीचा दिखाने का ही काम किया। अभी एक माननीय सांसद महोदय कह रहे थे कि ये सर्विस अंग्रेजों ने यूनिफाई की। कांग्रेस के माननीय सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने ओपनिंग में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय डाक की स्थापना की थी। आपके माननीय सभापति जी, कांग्रेस के पूरे माइंडसेट में अंग्रेज और इनके एक परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं तथ्य रखना चाहता हूं कि भारत में पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की डाक सेवा आज से करीब 2000 से अधिक वर्षों पहले तक स्थापित है। हम अपनी संस्कृति पे क्यों ना गर्व करें, क्योंकि कांग्रेस की पूरी जो मनोवृत्ति थी वो सारी की सारी कॉलोनियल। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। Not yielding. Sorry, he is not yielding. मान्य सभापति जी, मान्य सभापति जी, no, I will not allow you. मान्य सभापति जी, Mr. मान्य Goyal, सभापति जी, Mr. Goyal, शक्ति सिंह जी, मान्य सभापति जी, बैठिएगा, please take your seat. Take your seat. आपने It is most, one second, Honorable Minister, one second. It is most unfortunate that during the day we show discipline and decorum. Now every member here should learn about compliance of rules. Maybe a particular member or a minister is saying something on which you seek to have, let's say, a rejoinder or intervention. Follow the rules. You can't jump from your seat. Please, and even this also is not acceptable. Go to the rule book, study the rule book carefully. I have had the most painful occasion today. We had to hold one of our members, Raghav Chadda, guilty. It was a very sad occasion for the committee. But it is our job to ensure that they follow rules. They do not belittle this institution. I would urge all the members to carefully go through that committee report. It's a very well deliberated, thoughtful committee report. There is a provision in the rules for everyone to make a rejoinder, to make an intervention. But that can't be like this, that the Honorable Minister is saying something, you immediately rise on your seat. Sorry, I don't allow. Please, continue. Thank you, Honorable Chairman, sir. मैं कांग्रेस के जो कॉलोनियल माइंडसेट के प्रति जो इनका लगाव है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पोस्टल सिस्टम हो, चाहे किसी भी तरह की सामाजिक सुविधा की जो बात है, उसमें इनका जो माइंडसेट है उसकी बात आपके समक्ष रखना चाहता था माननीय सभापति महोदय। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि जो माननीय शंकर सिंह गोहिल जी ने कहा था और भी कई एक दो सदस्यों ने कहा, माननीय सदस्यों ने कहा कि अंग्रेजों ने इस पोस्टल सिस्टम की स्थापना की थी। ऐसा नहीं है, तथ्य है, ऐतिहासिक तौर पे प्रमाण है कि ये व्यवस्था पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की हिंदुस्तान में बहुत पहले से स्थापित थी और बहुत ही अच्छी तरह से भी चलती थी। कुछ माननीय सदस्यों ने ये भी कहा कि पोस्टल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है। शायद कुछ माननीय सांसद या तो तथ्य देखना नहीं चाहते माननीय सभापति महोदय, या फिर वो देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं। 1,28,000 लोगों को रोजगार दिया है माननीय मोदी जी ने पोस्टल नेटवर्क। 660 पोस्ट ऑफिसेज यूपीए की सरकार के समय बंद किए गए थे, मोदी जी ने 5,000 नए खोले हैं और 5,700 से अधिक नए खोलने के लिए मंजूर किए। पोस्टल नेटवर्क को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये मोदी जी का क्लियर विजन है।
यूपीए सरकार में ये था कि पोस्टल सर्विसेज को किस तरह से बंद किया जाए, कैसे उसको इररेलेवेंट कर दिया जाए, कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए, और आज वो दुहाई दे रहे हैं, पीएसयू को प्राइवेटाइज न करने की बात कह रहे हैं आज शक्ति सिंह जी गोहिल जी। इनका ये जो हिपोक्रेसी है, उस हिपोक्रेसी को आज भारत का जन जन जान चुका है। भारत के जन जन के मन में जो आज सरकार की सुविधाओं, सरकार के विकास के प्रति जो विश्वास आया है, वो विश्वास आया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है, जो मोदी जी की गारंटी है, सिर्फ पूरे के पूरे भारत का सिर्फ उसी पे भरोसा है। और जो परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, वो परिणाम उसी का नतीजा है कि कांग्रेस हमेशा केवल कॉलोनियल माइंडसेट में चली रहेगी और इररेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह से चलते चलते हो गई है। मैं मान्यवर श्री नारायण बिसी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, सपोर्ट किया। श्री विजय साई रेड्डी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्राइसिंग के बारे में कहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पोस्टल सर्विसेज का बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन भी है, इसीलिए पोस्टल सर्विसेज को इतना अफोर्डेबल रखा गया है, बहुत ही कम प्राइस में सर्विसेज दी जाती है और सरकार की क्लियर नीति है कि इसी तरह से इसको अफोर्डेबल रखा जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, लेकिन प्राइसिंग को हमेशा अफोर्डेबल रखा जाएगा। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि इसमें एडिशनल सर्विसेज जोड़नी चाहिए। और भी कई साथियों ने, कई मान्यवर सांसदों ने अच्छे सुझाव दिए हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। और दूसरे बड़े पॉइंट्स में से श्री थम्बीदुराई जी ने कहा था हेरिटेज बिल्डिंग्स का, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं पोस्ट ऑफिसेज की, जिनका अच्छे से पुनरुद्धार किया जा रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है। अभी हाल ही में उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रेलवे की मदद से पोस्ट ऑफिस की एक हेरिटेज बिल्डिंग को बहुत अच्छे से रेनोवेट किया गया है, उसका पूरा हेरिटेज कैरेक्टर मेंटेन करके। इसी तरह से लखनऊ में और भी कई जगह देश के जगह जगह पर हेरिटेज बिल्डिंग्स का किया गया है रेनोवेशन। इसके अलावा मान्यवर सभापति महोदय, अनयूज्ड पोस्टल लैंड के बारे में सुझाव आए कि उसके लिए वेयर हाउसिंग और नई तरह की सर्विसेज आए, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। और आज के बिल में विशेषकर इस बात का प्रावधान लाया गया है कि पोस्टल सर्विसेज का विस्तार हो, केवल डाक और एक्सप्रेस मेल के अलावा और भी कई तरह की सर्विसेज आए। एक और विषय कम्युनिस्ट पार्टी के मान्यवर सांसद महोदय जी का था, फेडरलिज्म पे आपका आरोप था कि फेडरलिज्म पे प्रहार किया जा रहा है। शायद कम्युनिस्ट पार्टी को कभी भी संविधान में रुचि नहीं थी, विश्वास नहीं था। जो संविधान की दुहाई देते हैं मान्यवर सभापति महोदय, वो पहले थोड़ा संविधान को पढ़ तो ले भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्टें बनी हुई है, कौन सा यूनियन सरकार का, भारत सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का विषय है और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट है और कौन सा राज्य का है, क्लियरली संविधान में स्पेसिफाई किया हुआ है। आइटम 31 जो यूनियन लिस्ट की है उसमें पोस्टल सर्विसेज को क्लियरली रखा गया है। तो आपका तो वैसे भी संविधान में कोई रुचि थी नहीं। आज भले आप डेमोक्रेसी की बात करो और संविधान के ऊपर अटैक की बात करो, लेकिन जनता सब जानती है और जनता सब समझती है। जनता को पता है, जन जन को पता है संविधान की रक्षा करने के लिए कौन आज सशक्त है और कौन कर सकता है। जो केवल एक दिखावा करते थे संविधान की रक्षा की और डेमोक्रेसी की रक्षा की, उनको जनता ने नकार दिया है और आने वाले समय में भी नकारते रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सांसदों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को, जो कि हमारी कॉलोनियल माइंडसेट को, उपनिवेशवादी समय की एक लेगेसी को समाप्त करके आज के समय के अनुरूप
एक बहुत अच्छा मॉडर्न वेल ड्राफ्टेड अच्छा एक सरल भाषा में लाया गया जो बिल है इसको यूनानिमसली पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 16 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. Yes. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 16 are adopted. The clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Special mentions. Shri Subhash Chandra Bose Pilli demand for promoting research into changing rainfall patterns. Thank you, sir. Climate change is now causing disruptive alterations in India's rainfall patterns. Regions that once experienced nominal rainfall are now facing unusual downpours, while traditionally wet states are witnessing by dry spells, as confirmed by the Indian Meteorological Department after analyzing decades of rainfall data. Monsoon characters have been specifically affected, leading to change of rainfall patterns, intensity and frequency. These shifts are closely tied to rising the temperatures. Consequently, extreme weather events such as floods are on the rise due to climate change's impact on the monsoon season. These effects will continue to intensify with further temperature increases. Persistent heavy rainfall spells result in floods, directly affecting agriculture and infrastructure, leading to human migration to loss of life. From deficit rainfall affecting agriculture in Andhra Pradesh and unprecedented floods to other states, India has already experiencing the consequences of changing the rainfall patterns. Therefore, I request the government to initiate the research to better understand and predict these patterns, allowing for the development of improved mitigations and early warning systems for such seasons. This information will enable us to reduce our vulnerability to climate change and undertake mitigation measures to lower the risk of extreme weather events. Thank you, sir. Dr. Fozia Khan, concern over growing risk of antimicrobial resistance in India. Thank you, sir. Antimicrobial resistance presents a serious global health challenge with 2,97,000 deaths directly attributed to it in India and an additional 10,42,500 deaths associated with it in the year 2019. The growing resistance to newer and more sophisticated drugs further complicates the issue, sir. Various factors contribute to the rise in AMR in India.
like the injudicious use of antimicrobial drugs, over-the-counter availability of drugs attributed to poverty, misinformation and unawareness, climate change, the growth of the pharmaceutical industry and environmental pollution through the improper disposal of pharmaceutical waste, factors like antibiotic use in livestock. The food industry has witnessed a 577% increase in poultry consumption in 3 decades, which has led to extensive non-therapeutic antimicrobial use to meet market needs. The consumption of animal products rich in resistant microbial strains by humans further contributes to AMR. There is an urgent need to address the issue through proper measures by the government. For instance, increasing R&D investment for AMR, that is presently at 0.01% of the total GDP expenditure on health research. WHO reports a decrease in antibiotic consumption with 47.1% involving unapproved drugs, necessitating a regulatory body for streamlining initiatives with a country as diversely populated as India. Thank you, sir. Sri Naresh Bansal demand to connect Dehradun, Ramnagar, Saharanpur, Dehra Chakrata, Uttarkashi and Dehradun, Saharanpur to broad gauge line. धन्यवाद सभापति जी। महोदय, यह दुख का विषय है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी पहाड़, रेल, 4 लेन व ऑल वेदर रोड से वंचित रही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दर्द को समझा व उसकी मंजूरी देने के साथ ही लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम के तहत इसका कार्य भी शुरू हो गया, जो निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में पूरा भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा केदारनाथ तथा भगवान बद्री विशाल जी के धाम का जो विकास कार्य हो रहा है, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। हर क्षेत्र में पहले से बहुत ज़्यादा विकास कार्य हो रहा है। उसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से अपने प्रधान सेवक को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। चक्रौता, उत्तरकाशी आदि भी रेल लाइन से वंचित हैं। देहरादून से रामनगर रेल लाइन नहीं है। हरिद्वार देहरादून के बीच कई प्रमुख रेलों का संचालन नहीं है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को देहरादून रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाना बाकी है। सहारनपुर देहरादून के बीच सीधा रेल संपर्क नहीं है, जिससे हरिद्वार की ओर से आना पड़ता है और इसमें समय बहुत अधिक लगता है तथा माल भाड़ा भी बहुत अधिक हो जाता है। साथ ही चक्राता, मसूरी, उत्तरकाशी जो उत्तराखंड के मुख्य धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, वह सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वहां के लिए भी रेल सुविधा नहीं है, जो चिंता का विषय है। महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देहरादून से रामनगर, देहरादून सहारनपुर रेल लाइन, देहरादून हरिद्वार के मध्य बड़ी रेल लाइन, सहारनपुर देहरादून, चक्राता, मसूरी, उत्तरकाशी रेल लाइन की आवश्यकता है। इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। श्री निरंजन बीसी demand for adequate budgetary allocation for ensuring safety of mining workers. Not present. Shri Anil Prasad Hegde. Thank you, Chairman, sir. Concern over impact of free trade agreements. Thank you, Chairman, sir. I would like to raise an important issue related to free trade agreements, FTAs. In 2022, India signed an FTA with UAE and Australia and is currently negotiating FTAs with UK, European Union, Canada, GCC, New Zealand and Israel. All these proposed trade deals are expected to include policy areas that new age FTAs normally cover, like goods, services, rules of origin, labor, SMEs, non-tariff measures, and regulatory frameworks.
These FTAs may also include issues like e-commerce, IPRs, investment and ISDS, innovation, government procurement, trade facilitation, etc. Past experience shows negative consequences that India faced with FTAs with Japan, Korea, and ASEAN. Our trade deficit increased after FTAs. Industry federations and farm unions are cautioning the government and seeking review of existing FTAs. This should be taken up. FTA negotiations needs to be transparent, hence government must in fact share negotiating texts of each FTA under negotiation with the parliamentarians, state governments and citizen groups. FTA subjects like agriculture fall under state governments. Therefore, all state governments must be consulted beforehand and their concerns must be addressed. While the government was wise with regard to not signing Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, it is unclear why this same logic is not being applied to FTAs. It is important not to sacrifice the interest of primary sectors like agriculture and dairy. I therefore urge the government for ex-ante impact assessment study of each FTA under negotiation to see how trade deal benefits various sectors. Thank you, sir. Shri M. Mohammad Abdullah requests to allow the hyper or hypopigmented vitiligo persons to join Indian Army. Not present. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik demand to rename Kolhapur Airport as Chhatrapati Rajaram Maharaj Airport. धन्यवाद सभापति जी। छत्रपति राजाराम महाराज जी ने स्वतंत्र पूर्व काल में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच कोल्हापुर हवाई अड्डे की शुरुआत की, जो उनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। इसलिए कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखना हमारे लिए गर्व का क्षण है। ये उल्लेख करना उचित होगा कि महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार को कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा करने की सिफारिश की थी। सभापति जी, कोल्हापुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होने जा रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया उद्घाटन कार्यक्रम से पहले कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद। Dr. V. Sivadasan, concern over problems faced by gig workers in the country. Respected Chair, here I am presenting the concern or problems faced by gig workers in the country. Gig workers consist of a vast array of jobs including agency and temporary work, short-term contracts and app-based roles. There were 7.7 million gig workers in India in 2020-21, projected to rise 23.5 million by 2029-30, according to official data. The gig workers are victims of privatization and contractualization and are overworked and underpaid. Most of them have no job security or protection of labor laws. Much of the gig workers take place outside the office, and this informality and unpredictability often leave the workers yet vulnerable. The platforms which employ these workers argue that they are not employers but aggregators of customs requests. The workers are called partners, but when it comes to deciding the nature of work, the partner has no say. The workers are rendered helpless as the employer is an invisible force, and the digital divide in India further facilitates this exploitation. There are reports that the gig workers have to face sexual harassment, abuse, and hostile working conditions. They suffer from a declining income, increasing expenses, and lack of welfare schemes and social security. They have no pensions,
health insurance, paid sick leave, or paid holidays and are endurable helpless with no legal support. It has been reported that the food delivery workers are victims of air pollution and suffer from serious health problems. The government should take urgent and proactive steps to bring legislation ensuring job security, specifying the responsibilities that the companies have towards workers. Thank you, sir. Thank you. Sri GVL Narasimha Rao need to expedite establishment of South Coast Railway Zone in Visakhapatnam. Sir, my special mention is about the need to expedite establishment of South Coast Railway Zone in Visakhapatnam. Sir, establishment of Visakhapatnam Railway Zone had been a major demand and emotional issue for the people of Visakhapatnam and Uttarandhra region for many decades. Sir, people of Uttarandhra region rejoiced when the Union government, when the Union Cabinet on February 28, 2019 cleared the proposal for the establishment of South Coast Railway Zone with headquarters in Visakhapatnam. Sir, setting up of new railway zone will bring optimality with regard to the size and scale of railway operations and also to meet the persistent demand and aspirations of the people of the area. Government of India's press statement then read. Last month, the Railway Board has sanctioned detailed estimates construction of the new South Coast Railway Zone headquarters in Visakhapatnam with a budget of 106 crore rupees. Railway Board has also issued orders assigning the construction work of the new Visakhapatnam Railway Zone headquarters to East Coast Zone officials after getting designs sanctioned. However, delay of handing over of 52 acres of land by the state government for the construction of the headquarters of the proposed Visakhapatnam Railway Zone headquarters in Mudisarlova area of Visakhapatnam in lieu of the railway land taken by the state government as a compensatory measure has inordinately delayed operationalization of the Visakhapatnam Railway Zone. Sir, I appeal to the Ministry of Railways to immediately get pending land issues sorted out and begin construction of the headquarters of the South Coast Railway Zone in the next 2 months and operationalize the South Coast Railway Zone with headquarters in Visakhapatnam at the earliest. Thank you, sir. I'm lucky to have the attention of the Honorable Minister in the House. I look forward to some positive action in this regard, sir. Thank you. Dr. John Britta's concern over fiscal stability of states. Sir, I didn't get the script, sir. Thank you very much, sir. So I have not been given the script. All right. Yeah. If you can give me, I will speak, or I can speak as chamber, sir. No. That may be too dangerous. It may be far more serious than the issue you seek to address. We need stability here. Sir, I will be speaking about the fiscal stability of Kerala, sir. You see, I make a very fervent appeal to everyone that members of the upper house have to show a conduct which is gladly emulated by others. It was in that perspective I made an appeal that everyone should go through the report of the Committee of Privileges with respect to Sri Raghav Chadha. I had the occasion to see the young man. There should have been remorse. There should have been reflection. It was a day on which he was held guilty on both the counts by a very detailed report.
The suspension had not come to an end. The sentence was limited to this day. So here was a case where a member of this House suffered being held guilty and punished. I would urge everyone to live up to the high expectations. Today has been a good day. So I'm the most obedient member, sir. You know it, sir. Sir, if I were to refer this to a parliamentary committee, then perhaps you will know more about it. Sir, I know that I uphold. Sir, the topic which I have given to you, the notice is with regard to the fiscal stability of Kerala, since it hasn't been given to me by the Secretariat. No, nothing will go on record. Sir? Because a special mention has to be as per text approved. Avail your opportunity next time. I'll be little more indulgent. I'll be little more indulgent. Sir, I'm waiting for the test, sir. Okay. And honorable members, ethics is so vital for performance of duties of a parliamentarian. Take your seat. Yes, sir. It was in 90s that for the first time Rajya Sabha had the benefit of an ethics committee. And the first ethics committee was headed by a man of great experience, Sri S.B. Chauhan. He rendered that report, and in that report presented to this House on December 8, 1999, a code of conduct was laid down for us. I'll make reference only to two elements. Members must not do anything that brings disrepute to the Parliament and affects their credibility. Members are expected to maintain high standards of morality, dignity, decency, and values in public life. I strongly commend the first report of the Ethics Committee, which is very thorough and detailed, imparted by a committee headed by a very experienced man who had been Chief Minister of a state, who had held high cabinet positions, Sri S.B. Chauhan. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 5th December 2023.
बनाने में सक्षम रहे तो ये चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म, चेकमेटिंग जो मैकेनिज्म है, ये और इसमें और ज़्यादा असरदार होगी। तो सर मैं ये जो विधेयक लाए गए हैं इसको समर्थन करते हुए मेघवाल साहब को ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए ये लीगल एड प्रोसेस को, लीगल एड मैकेनिज्म को और थोड़ा चूस दुरुस्त कीजिए। ये सलाह देते हुए मैं अपना वक्तव्य को विराम देते हैं और बिल को समर्थन करते हैं। थैंक यू। श्री इम्तियाज जलील। लेकिन बिल अधूरा है और इस वजह से अधूरा है अध्यक्ष महोदय, ये जो टाउट का डेफिनेशन दिया गया है इस बिल के अंदर, टाउट का मतलब ये है कि पर्सन्स हु प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर अ लीगल प्रैक्टिशनर इन रिटर्न ऑफ मनी। टाउट्स का मतलब दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है या मिडलमैन हो सकता है। और ये बिल इन दलालों को, इन टाउट्स को पेनलाइज और पनिश करने के लिए लाया गया है, इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ इस बिल के जरिए हम जो दलाल है या जो टाउट है उसके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं, या वो दलाल किसके लिए काम कर रहा है, क्या इसके बारे में सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या वो सिर्फ अपने क्लाइंट से पैसा खींचने वाला है, या जिसके लिए वो लेके जा रहा है उस एडवोकेट के लिए, तो क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए इस बिल के अंदर? इसके बारे में भी जवाब होना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, यकीनन यहाँ पर आज जो डेफिनेशन दिया गया है कि ये टाउट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो आपने बताया है दे फ्रीक्वेंट प्लेसेस सच एज द प्रेसिंग्स ऑफ द सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ में ये बिचौलिए दलाल होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसेस के अंदर होते हैं या रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं और ये गिराकों की तलाश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत है। ये टाउट्स आज हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहां कानून बनाए जाते हैं शायद उसके अतराफ में भी ये टाउट्स आपको मिलते होंगे। इसीलिए आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या टाउट्स नहीं है, अगर किसी को बेल लेना है और अगर पुलिस वाला ये कहेगा कि मैं बेल का अपोज नहीं करने वाला हूं, तो ये भी एक टाउट है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर अधिकारी भी टाउट का रोल अदा कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि जिसके अंदर, बहुत खुश होंगे आज देश भर के जितने भी टाउट्स, अगर ये बिल पास हो गया है तो, क्योंकि उसकी पनिशमेंट के पैसे कितने हैं, महज 500 रुपये। मैं मंत्री जी, इस सरकार ने 500 रुपये की कीमत 50 रुपये के बराबर ला के रख दी है और आप दलालों को कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको 500 रुपये फाइन करेंगे, अगर आप दोबारा पकड़े गए तो 3 महीने की आपको सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये दलाल किस लेवल के ऊपर काम करते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है। यकीनन इसके ऊपर फाइन बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, छोटे छोटे दुकानों को, मेरे चुनावी क्षेत्र में छोटे छोटे दुकानों को अपना छोटा छुपके से कारोबार कर रहे थे तो प्रशासन ने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया फाइन दिया छोटे छोटे दुकानों को। मैं उसके अंदर जब हस्तक्षेप किया, लेबर कमिश्नर के सामने जाके बैठा, आंदोलन किया, तो 3 लाख रुपये की फाइन 3000 रुपये हो गई। उन लोगों को तो राहत मिल गई, लेकिन मंत्री साहब मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर किया कि मैं सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। तो मुझे यह एहसास होता है कि आज इस देश के अदालतों के अंदर अगर लाखों केसेस पेंडिंग है तो ऐसे केसेस पेंडिंग है। 1 घंटे के अंदर ये केस अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी का अहंकार को मैंने ठेस पहुंचाया था तो केस रजिस्टर किया गया है। आज 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जब आप ये कह रहे हैं कि ये लॉयर्स का जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत प्रोफेशन है, लेकिन जब यंग लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो इन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और इनके लिए भी मदद होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लॉयर नहीं हूं, मंत्री साहब मैं लॉयर नहीं हूं, ना मेरे पास लॉ की डिग्री है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया हूं, सिर्फ आधा मिनट, एक PIL फाइल किया हूं जनहित याचिका मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं
औरंगाबाद बेंच ऑफ हाई कोर्ट का कि जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं सिर्फ मुझे सुनकर, मैं वहां पर 2 साल से वकील नहीं लगाया हूं। अदालत ने मुझसे कहा कि आप वकील क्यों नहीं लगा रहे, तो मैंने कहा कि वकील कानूनी भाषा बोलेगा। मैं दिल से बताना चाहता हूं कि हमारी मेडिकल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इसलिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बस बशर्ते इसके अंदर से दलाल, बिचौलिए, ये टाउट्स है, इन्हें हटाना चाहिए। और यकीनन आप इस बिल को लेकर आइए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है, हम ये समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री गिरिधरी यादव जी। सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन बिल लाया है अच्छी बात है, लेकिन समग्र होना चाहिए। ये बिल पार्ट में, यदि ये बिल समग्र में आता, पूरा आता तो और अच्छा होता। आपने सिर्फ कहा कि टाउट को हटा देते हैं इसमें से, अच्छी बात है, हटा दिए, लेकिन जो वकीलों की स्थिति है, वकालत खाने में उसके बैठने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके बाथरूम यदि जाके देखेंगे आप तो लगेगा कि ये सबसे खराब हाल में। जो वकील नया नया ज्वाइन करते हैं, जो शामिल होते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज का कोई इंतजाम नहीं। ये पूरी बिल कि जो जूनियर वकील हैं, जो नए वकील हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एकदम बहुत सारा अंतर है। इस देश के सीनियर वकील को पैसा रखने का जगह नहीं है, इस देश के जूनियर वकील को खाने का ठिकाना नहीं है। इन बातों को क्यों नहीं, फीस कौन सा फीस क्या रखेगा वकील लोग, इस देश की जो गरीब जनता जाती है न्यायालयों में, कोई रेट ही तय नहीं है। जो मन माया बोलता हम 20,000 लेंगे, कोई बोलता 30,000 लेंगे, कोई बोलता लाख लेंगे, बोलता कोई ठेका ले लेंगे। आप जब कोर्टों में जाइएगा, आप केस लड़िएगा, आप देखिएगा, गरीबों से बात करिएगा, तो आपको पता लगेगा कि इस देश में न्यायालयों की क्या हालत है। अच्छा बिल लाए हैं, दलाल को आप हटाइए, हटाना भी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि उसमें दलाल नहीं, लेकिन दलाल न्यायपालिका के अंदर भी है। आपको देखना पड़ेगा कि जो जज और वकील के बीच कहीं कहीं जो कॉन्वेंस है उसको भी खत्म करिए। उसके जो मुंशी हैं उसको तो लाइसेंस है, कैसे हटा देंगे उसको आप? ये बाहर से कोई नहीं आता है। वहीं जो वकील के जो मुंशी हैं और लोग हैं, वो क्या करिए, आप किसी को कहिएगा दलाल है, वो मुंशी अपना वकील बना लेगा, क्या कर लेंगे हम और आप प्रैक्टिकल नहीं है। आप बिल क्या होता है, आप क्या करते हैं इस देश में, बिल को एसी चैम्बर में बनाते हैं। आप कभी, आपका जिसने बिल बनाया है, क्या किसी कोर्ट में गरीब से जाके बात किया है? किसी जो जेल में उससे बात किया? बिना दलाल में कैसे होगा भाई? कोई हम जेल में मान लीजिए कोई मेरा एक आदमी है, उसके घर में कोई नहीं है, कोई आदमी उसको छुड़ाने के लिए गया, उसको अब दलाल बना के जेल में डाल दीजिए, उसको छुड़ाएगा कौन? कुछ लोग उसका दिल्ली कलकत्ता में कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए, पूरा लाइए कि कैसे हम उसको, आप उसको मदद दीजिए। जिसके कोई परिवार में एक आदमी जेल गया, उसके घर में कोई महिला है, वो कैसे कोर्ट में जाएगी? जेल में टिप्पा लेना, कौन लेने जाएगा जेल में टिप्पा? आपको पता ही नहीं कि जो जेल में उसको टिप्पा लेगा तब वकालत फाइल कर सकते। इस देश में वकालत का जो पैसा है, बड़ा पैसा है। और आप जानते हैं इसका जो वकील लोग क्या होते हैं, देश में क्रांति लाते हैं। चाहे जार के खिलाफ क्रांति हुई हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, तो सब में वकीलों का योगदान है। और इस देश की आज़ादी में जितने बड़े देश में आज़ादी के नेता थे, चाहे वो नेहरू जी हों, गांधी जी हों, सारे लोग पैसे से वकील थे। उन लोगों का कैरेक्टर था, उन लोगों ने देश में दिया। इसीलिए आप जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में हम चाहते हैं ये सरकार अच्छी काम कर रही है, इसको और अच्छे तरीके से करिए कि सब पक्ष को सुनिए आप और रखिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके लाइए। ये बिल तो आप पास करिए, लेकिन जो गरीबों का हालत है, जो बरसों से केस में, अब एक हाईकोर्ट है मेरे पास बिहार में, पटना हाईकोर्ट, आबादी हमारी कितनी है 12 करोड़, आप एक हाईकोर्ट नहीं दे रहे। छोटे छोटे राज्यों को अब 2 हाईकोर्ट दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब 3 हाईकोर्ट दे रहे हैं। हमको आपत्ति मध्य प्रदेश के हाईकोर्टों से नहीं है। आप क्यों नहीं बिहार में एक बेंच बना? आपको बिहार से सख्त नफरत है। बिहार ने 39 सीट दिया, पहले 31 सीट दिया, लेकिन बिहार के साथ जो नाइंसाफी इस भारत की सरकार कर रही है, वो बिहार की जनता देख रही है। आप क्यों नहीं बनाना चाहते? आप आबादी के अनुसार, हम लोग बरसों से जेल में पड़े रहते हैं। एंटिसिपेटरी फाइल करते हैं 6 महीना में आता है, बेल फाइल करते हैं 5 महीने में आता है, बस जज की संख्या नहीं है। हम चाहते हैं एक ऐसा बिल लाइए कि आबादी के अनुकूल हमारे राज्यों में भी बिल हो, हमारे राज्यों में भी हाईकोर्ट का बेंच बने। नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको तो हमारे राज्य से खाली वोट लेना है, जात पात करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, वोट मिल जाएगा। आप आके यहाँ खाली गुजरात,
महाराष्ट्र, इनका विकास करिएगा। कोई चिंता आपके हल्ला से हमको नहीं है। आपके हल्ला पर मेरा कोई असर पड़ने वाला नहीं। जनता बता कि बिहार की जनता आने वाले चुनाव में आप लोग का बिहार में क्या असर होगा, जब जानते हैं इन बातों को। हम जानते हैं, समग्र बिल नहीं लाते हैं। आप एकदम नाइंसाफी करते हैं हम लोगों के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के साथ भी न्याय हो और बिहार में एक हाई कोर्ट का बेंच खोला जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने बिल का समर्थन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती अपरूपा पोतात जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this bill, sir. So the bill has been listed for the business so many times, yet it never came up for discussion. सिर्फ तारीख पे तारीख आता गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई सरकार को. This bill is a very noble, they have brought it with a very noble object, but it's a decade late. The 249 Law Commission report that made the recommendation of repealing the Legal Practitioners Act 1879 was laid in October 2014. Hence, it took for this government 10 years to adopt this recommendation, and this should be brought much earlier. Even when the government has adopted the recommendation, they have done it in a half-heartedly manner. I have some suggestions, though my learned advocate, my senior member have already spoken from my party, Kalyanda have already spoken, but I have some suggestions. The government should have at least come out with some sort of awareness campaign about the practice of tout and it being illegal. Unfortunately, a common man, a sadharan public, who have a legal case to fight may not be able to identify a tout, although and end up by paying hefty fees to him, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर इसके पास जाएंगे तो शायद मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा. तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ पर एक क्लियरिटी होना चाहिए. द गवर्नमेंट यूजुअली एडवोकेट्स टू गो डिजिटल. ये गवर्नमेंट हमेशा कहते हैं डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटली. बट व्हाट हैपेंड इन दिस सिनेरियो? व्हाई कुड the government not make a single database when all could be uploaded their tout list? इनको tout list को upload कर देना चाहिए था courts में. This should have helped to mitigate this practice at a larger level and would limit this practice at scale. I beg to this government to make the judicial system more accessible and more inclusive. I am sure the entire House would like to see more robust and equitable justice system. The legal fees is the legal fees taken in throughout the country is not very regulatory. One end, few lawyers who charge a very high amount of fees up to 50 lakh rupees hearing. On the other end, the member of the legal aid cell are paid a marginal fees. In fact, a per capita spending by the government on legal aid is of lowest of the world, just 75 paisa. This is extremely concerning, and I would urge the government to make the system more equitable for all of us. As a policy maker, it is our responsibility to ensure that all the wheels of justice turn smoothly and fairly. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Srimati Navneet Rana ji. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023. सर, जो ये बिल लाए हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज जो मंत्री महोदय ने इस सदन में लाए हैं. एवरी सिंगल मेंबर ऑफ दिस हाउस हैज सपोर्टेड दिस बिल. सर, बहुत साधारण सा ये बिल है और चेंजेस ये बहुत सालों से अपेक्षित था. जो एडवोकेट्स भी अपने ज़िले में काम करते हैं, जो जिनसे हमसे बात करते हैं, हमारी डिस्कशन होती है. एक ट्राइबल क्षेत्र से, जहाँ मेरा क्षेत्र ट्राइबल पड़ता है, दार्नी मेलघाट से जब एक आधा किसान आता है या एक्सीडेंटल केस होता है या फार्मर्स की लैंड के कंसर्न होता है फॉरेस्ट के साथ या उनके आपसी फैमिली के प्रॉब्लम्स में, जब वो किसान प्लेन पट्टे पे आके कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद वो इतना अनएजुकेटेड है कि उसे हर चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है.
तब उनका ट्रैपिंग का जो मामला आता है, जो कोर्ट में पहुंचते बराबर, गेट के पहुंचते बराबर वो वहां पे ट्रैप कर लेते हैं। किसान की जो फार्मर्स की लैंड है, ये एक्सीडेंटल केस है, तीसरी पीढ़ी आने तक वो सॉल्व नहीं होती है सर। पर उसके केस का निर्णय जब लगेगा, पर वो जो एक आधी एकड़ उनके पास रहती है वो भी बिकने की बारी आ जाती है, तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लगता। और उसको तारीख पे तारीख दिलाने वाला जो ये इमीडिएटर, जो दलाल वहां पे गेट पे बैठा रहता है, जो आते बराबर उन्हें ट्रैप कर लेता है, इसको हटाने का जो बिल लाया गया है दी बेस्ट है। क्योंकि एडवोकेट से बात करते हुए, क्योंकि नया जब एडवोकेट कोर्ट में आता है तो उसे 2-2.5 साल लगते हैं अपनी सोशलाइट बना के लोगों तक अपना संपर्क करना। तो ये वहां पर ही एडवोकेट को जितने पैसे जाते नहीं है उससे कई ज्यादा ये बिचौलिया उनसे ले लेता है। और इसमें नुकसान होता है जो गरीब, जो आदिवासी परिवार के लोग जाते हैं अपने केस लेके, या किसान के जो पानधान रास्ते होते हैं, हमारे मराठी में पानधान कहते हैं, पगड़ी रास्ता मुझे कहते हैं लगता है, तो वो रास्ते पे जो वाद होते हैं बहुत सालों तक चलते हैं, उसमें उसके किसान की खेती बिक जाती है पर निर्णय वो बिचौलिया लगने नहीं देता है। और ये हटाकर मुझे लगता है डायरेक्टली जो गरीब वर्ग है जिन्हें इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, वो ऐसे किसानों को, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा होगा। सर एक और प्रॉब्लम देखी गई है जब हमने सभी एडवोकेट से बात की कि majorly problems what you find when these poor people, needy people come to you, they say we cannot help them in any which ways. I said why you cannot help them? तो उन्होंने ये साफ कहा है, अगर हमारी मंशा भी रहती है कि गरीब महिला कोई अपनी फैमिली कोर्ट में आती है, फैमिली को इशू लेकर आती है, या एक्सीडेंटल में किसी का हस्बैंड गुजर जाता है, तो उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए। उसके लिए अगर हमें उन्हें डायरेक्ट मदद भी करना है, पर बिचौलिया पहले ही आके बोल देता है कि एडवोकेट साहब इन्हें मदद नहीं करना है, आपने अपने पैसे जो चार्ज करते हैं उससे इतना बढ़ाकर चार्ज करना, अगर 50 मेरा है तो 1.5 आपने चार्ज करना है, उसके कम आपने चार्ज नहीं करना है। तो एडवोकेट ऑल्सो बिकम्स हेल्पलेस सर। पर उस दौरान सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिचौलिया इतना फेमिलियर हो जाता है वो परिवार के साथ कि अगर हस्बैंड गुजर जाता है एक्सीडेंट में या एनी विच वेज कि डिवोर्स का कोई विषय चलता है, तो वो इतना फेमिलियर हो जाता है, फीमेल के पास पैसे नहीं रहते हैं देने के लिए, तो वो उनका मिस यूज करती हैं वो फीमेल का, वो बिचौलिए। तो ये बिल लाकर, अमेंडमेंट लाकर, मुझे लगता है ऐसे परिवारों को, ऐसे किसान को, ज़रूरतमंदों को जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं और जिनके कारण, बिचौलियों के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान डायरेक्टली ये गरीब लोगों को होता है, और ये लाकर मुझे लगता है उनको डायरेक्ट फ़ायदा हमारे मंत्री महोदय पहुंचा रहे, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और वी सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू। धन्यवाद। श्री संतोष पांडे जी। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर और बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। महोदय, ये जब ये विधेयक आज पेश हो रहा है और सब लगभग हम सभी सहमत हैं, एक समसामयिक 4 लाइन का कोरस मुझे ध्यान में आता है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृतियों को ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, दूसरों की यह नकल है अस्मिता क्या मान ले हम, इस पराये तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम, देश के भवितव्य को ही अब चुनौती मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। ये जितने भी शोधन, संशोधन, परिवर्तन और आज भी जो ये संशोधन जो लाया गया है इस देश में, जितने भी और ऐसे जिसमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, ये काम और ये बीड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारे विधि मंत्री सम्माननीय यहाँ उपस्थित है मेघवाल जी, उन्होंने उठाया है। मैं इस ये विधेयक जो कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। महोदय,
1961 अधिनियम कानून को समेकित करता है। कानूनी व्यवसायियों से संबंधित और बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार का गठन करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल है। विधेयक में ये जो दलाल हैं, विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी, और जिसमें एक है कि जिला कलेक्टर पद से नीचे नहीं है, ऐसे दलालों की सूची बनाकर और प्रकाशित कर सकते हैं। महोदय, ये जो टाउट है, जो दलाल एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो या तो किसी को भुगतान के बदले कानूनी व्यवस्था में कानूनी और व्यवसाय के रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है। महोदय, नागरिक या आपराधिक अदालतों के परिसर जैसे स्थान पर, जैसे राजस्व कार्यालय है और हॉस्पिटल जैसे हैं, ऐसे रोजगार प्राप्त करने के लिए और रेलवे स्टेशन में न्यायालय के स्थान पर यह न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है। महोदय, सूचियां तैयार करना, दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधीनस्थ अदालतों को कथित या दलाल होने के संदेह वाले व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति और दलाल साबित हो जाता है तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को शामिल किए जाने के विरुद्ध और बताने का अवसर प्राप्त किए बिना, यानी लांछन से बचाने के लिए, और ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा। महोदय, इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है, जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे 3 महीने का कैद और कुछ 500 रुपये का जुर्माना तक का जो प्रावधान है, ये दंडित करने का जो प्रावधान है, ये वास्तव में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही सोच समझ करके, और मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। पारदर्शिता, न्याय मिलनी चाहिए, और जैसे कहा गया कि न्याय के साथ साथ न्याय मिलते हुए प्रतीत भी होनी चाहिए। पवित्रता, शुचिता आज आवश्यक है, और इसके लिए जो है संशोधन विधेयक जो लाया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now the Honorable Minister. डिप्टी चेयरमैन सर, जो आज चर्चा आपने प्रारंभ करने की अनुमति दी थी, ये बिल है द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय राज्य सभा, और ये एडवोकेट एक्ट 1961 है, आपने ठीक कहा, वही बिल है। 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा ने इसको पास किया। आज ये हाउस, लोकसभा, इस बिल पे चर्चा भी कर रहा है, और मुझे लगता है सर्वसम्मति से पास भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए सभापति महोदय, इसमें जो लोगों ने भाग लिया, करीब 21 लोगों ने भाग लिया, कि कार्तिक चिदम्बरम से शुरू किया और अभी लास्ट में हमारे संतोष पांडे जी तक, और आपने भी इसमें भाग लिया। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विषय बहुत छोटा सा था, लेकिन इसमें चर्चा करीब करीब 3 घंटे से ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले मैं आपके सब्जेक्ट का ही जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट उठाया था इनके प्रेमचंद्र जी। ये 1879 एक्ट है, ये कॉलोनियल एक्ट है और रिपील होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने ये तय किया है कि जो कॉलोनियल लॉ है और उसकी यूटिलिटी नहीं है, जिसका भर्तृहरि मेहताब साहब जिक्र कर रहे थे, वो समाप्त होने चाहिए। तो देश में भी इसका स्वागत हुआ। अब तक 1486 ऐसे लॉ समाप्त हो चुके हैं, 1486। अभी और कुछ पाइपलाइन में, कुछ अभी एक साथ और लेकर आएंगे।
आपका जो क्वेश्चन था कि सेक्शन 36 आप 1961 में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो क्या आप चाहते थे कि 1879 का लॉ एज इट इज रहे? हम उसको रिपील कर रहे हैं, लेकिन 36 का जो ये टाउट वाला जो सब्जेक्ट है, ये कमेटी को भी ठीक लगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी ठीक लगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लगा, क्योंकि वकील की ड्रेस में बहुत से लोग ऐसे आते हैं वो वकील नहीं है, उनकी डिग्रियां भी फर्जी है, और वो आकर के किसी को ठगते हैं, तो उसका प्रावधान क्या हो? तो ये ऑलरेडी 1879 में प्रावधान था, इसको उठा करके हम 1961 में लाए, छोटा सा अमेंडमेंट था, 45A हमने इंसर्ट किया, और इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है कि जो कॉलोनियल लॉ है वो हम जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो हम समाप्त करेंगे। 1961 तो हमने इसी सदन ने पास किया। जो आप कह रहे थे कि टाउट शब्द उस समय, वो ऑलरेडी ये 1961 में सोचा नहीं ना उस समय की सरकारों ने कि पुराने जो कॉलोनियल लॉ है उनको भी समाप्त करना है। मैं यूपीए के 10 साल का आपको विवरण दूंगा। हमने अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1486 कानून समाप्त कर दिए। मनमोहन सिंह जी के समय 10 साल आप भी थे, एक भी ऐसा कॉलोनियल लॉ जो था ना वो रद्द नहीं किया। इसका मतलब उसका सोच ही नहीं था। हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पंच प्राण, जिसका जगदीप पाल साहब जिक्र कर रहे थे, विकसित भारत, मानव केंद्रित बनाना है विकसित भारत 2047 तक, विरासत पर गर्व, ये दूसरा प्रण है। तीसरा है कि गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति, ये हम मुक्ति लेने का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं हम। एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन, ये कुछ विषय पंच प्राण के थे जिनका हमने जिक्र किया। और बहुत से विषय इसमें आए, उनका मैं जिक्र थोड़ा थोड़ा करूंगा। अब ए राजा साहब अभी है नहीं, लेकिन इतना नहीं बोल देना चाहिए कि भाई अब ठीक है यहाँ प्रिविलेज है, लेकिन करप्शन तो समाज की प्रॉब्लम है ना। अगर कोई आदमी एग्जीक्यूटिव में है, कोई आदमी जुडिशरी में है, कोई आदमी प्रेस में है, कोई आदमी लेजिस्लेटिव विंग में है, अगर वो करप्ट है तो समाज की प्रॉब्लम उसको दूर करना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन आप किसी को इंडिकेट करो, और उन्होंने ऑब्जेक्ट रीजन और ऑब्जेक्ट हमें मिले ही नहीं, बिल में ही लगे हुए हैं, या तो उन्होंने पूरा देखा नहीं, जुडिशियल सिस्टम को पूरे कोई वो गड़बड़ बता के। कल्याण बनर्जी साहब बैठे हैं, इनकी एक बात का मेरे टेलीफोन पे भी इनसे कुछ बात हुई थी, ट्रांसफर ऑफ जजेज पे इन्होंने कहा पॉलिसी होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ जजेज, आपको सबको पता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज 93 के बाद कॉलेजियम के पास है। ट्रांसफर ऑफ जजेज का भी कॉलेजियम से सिस्टम आता है। आपने कहा भी पिक एंड चूज, या अब कॉलेजियम के सिस्टम पे कभी अपन बहस कर सकते हैं, इसी हाउस को बहस करनी चाहिए। हम तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे, आप भी बोले थे, आप बहुत अच्छा भी बोले थे, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन उसके बाद आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है कि ट्रांसफर ऑफ जजेज पे देयर मस्ट बी ए पॉलिसी, हम इसको स्वीकार करते हैं। और आपकी बात को हम जुडिशरी से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वहां कंसल्ट करके कोई अगर पॉलिसी बनती है तो हम इसमें आगे काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके भर्तृहरि मेहताब साहब ने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो एक्ट समाप्त हो रहे हैं। इसी की भी यूटिलिटी नहीं थी 1879 की, लेकिन टाउट को सबने कहा कि भाई कोई ठगी करेगा तो उसका क्या इलाज है, इसलिए हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। बाकी जो बिंदु आए हैं अधिकतर वो आए हैं, अधिकतर जो बिंदु आए हैं वो आए हैं कि जो कोर्ट वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट का विषय आया, इंश्योरेंस, चैम्बर लॉयर्स के, सिक्योरिटी, ये सारे विषय आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे कोई वर्ग हो, कोई प्रोफेशनल सेक्शन हो, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। तो वकील कैसे पीछे छूट जाएंगे? वकील भी पीछे नहीं छूटेंगे। इंश्योरेंस का विषय मैं खुद डील कर रहा हूं, मैंने राज्यसभा में भी कहा है, और अभी संविधान दिवस के अवसर पर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन में गया था, वहां भी मैं कह के आया हूं कि इंश्योरेंस में अगर आपको कंट्रीब्यूशन देने में कोई दिक्कत है तो आप प्रपोजल लेकर के आइए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग जल्दी प्रपोजल लेकर आएंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स में जहां भी जरूरत होगी, भारत सरकार
पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करेगी जो प्रपोजल विजिबल होगा। हमारे वकील भी इतने ही प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी का विषय आया तो इनके लिए भी हम कुछ करने के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। एक विषय आया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 10-12 साल पहले कभी आप कोर्ट परिसर में जाते थे तो आप किसी से पूछते थे मेरी पेशी कब है। आज तो साहब वहां मशीन लगी हुई है, उस पर जाके टच स्क्रीन लगी हुई है, उस पर जाकर अपना नंबर डायल करो, उसमें अपना लिखो नाम, आपकी पेशी का पता चल जाएगा कि आपका ये कोर्ट है, इसमें आपकी पेशी है, अगली डेट ये है, जाना ही नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी की सरकार है साहब, ये समझ में ही नहीं आए क्या? मोदी जी की गवर्नमेंट में ईज ऑफ लिविंग ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं आपको सदन को बताते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है कि ई कोर्ट एक हमारी स्कीम चल रही है, ई कोर्ट, उसमें 7,280 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये कमेटी बनी हुई है और जहां जहां भी जरूरत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे किसी ने कहा बेंच नहीं है, मलुक नागर साहब चले गए, उन्होंने कहा मेरठ में बेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हम लोग मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम दावा पेश करने का, बेल गारंट करने का सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं क्या? ये तो बहुत अच्छा एक कदम है कि अगर बेंच नहीं बनी किसी वजह से, क्योंकि बेंच बनने के लिए जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का, उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर का, उनकी कंसेंट चाहिए, कई बार कंसेंट नहीं मिलती है। लेकिन हम वीसी के माध्यम से हाई कोर्ट की सुविधा जैसा अगर सुविधा उपलब्ध करा दें तो उसमें दिक्कत क्या है? तो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इस संबंध में 2 चीजें और कहकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक विषय मैंने उस समय कहा था मैंने राज्यसभा में कि वकील कई तरह के होते हैं सब। एडवोकेट अमेंडमेंट्स जो हम एक्ट लेके आए बिल लेके आए हैं, मैं एक जिक्र करूंगा महर्षि अरविंद, जो हमारे बहुत बड़े संत हुए महर्षि अरविंद, और उन्होंने डिवाइन लाइफ और कई पुस्तकें लिखी, महर्षि थे। अलीपुर बम केस में वो आरोपी थे। किसी ने कहा इनको सजा होगी, किसी ने कहा इनको फांसी होगी। एक दिन अखबार में छपा कि शायद मजिस्ट्रेट इनको फांसी की सजा देने वाला है। तो चितरंजन दास जो उनके वकील नहीं थे लेकिन एक प्रसिद्ध वकील थे जिनका जिक्र थोड़ा सा जगदीप पाल साहब ने भी किया, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने अखबार में पढ़ करके और वो कोर्ट में पेश हो गए। तो जज साहब ने पूछा आप इनके वकील हो क्या, आपको वकील किया क्या? उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं किया लेकिन मैं आया हूं, क्या मैं बहस नहीं कर सकता? फिर मैं अरविंद को पूछा, अरविंद घोष को, उन्होंने कहा मैंने कोई वकील नहीं किया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं बहस करूंगा। कोई फाइल नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही जिसके कारण जो वहां जज थे, ब्रिटिशर जज थे, उन्होंने कहा जज साहब आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो अरविंद घोष का थॉट है वो हमेशा अमर रहेगा। और जो बहस की उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा बहस की और उसके चितरंजन दास की बहस के बाद कोई फीस नहीं ली। ऐसे भी तो वकील हुए हैं हमारे यहां, कोई फीस नहीं ली। और उस बहस के बाद महर्षि अरविंद को जज ने छोड़ दिया, एक्विटल हुआ। उसके बाद कितना बड़ा काम किया उन्होंने पांडिचेरी में जाकर के। तो ऐसे भी तो वकील हुए हैं। तो कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक बड़ा काम हमने अभी संविधान दिवस के अवसर पर किया, जिसका जिक्र करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा, 6 बज रहे हैं। अभी संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी, उस अवसर पे लगी जब बाबा साहब को वकील के रूप में 100 साल पूरे हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट का इस अवसर पे धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मुख्य जो लॉन है उसमें ये परिसर में मूर्ति लगी है। और जब बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं उनके मुकदमे फ्री भी लड़ने चाहिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा लग गई है तो वो भी हमें दिशा दिखाएगी। तो मुझे लगता है सही दिशा में देश चल रहा है। और ये जो छोटा सा एक अमेंडमेंट है जिसका जिक्र मैंने आपको कहा चेयरमैन साहब, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय द राज्यसभा, उसको आप सर्वसम्मति से पास करें, ऐसी मैं आपसे विनती करके मेरे स्थान लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Yes, now it is already 6. If the House agrees, we will extend the House till this bill is passed. Yes. Now the bill is for consideration and passing. विधेयक पर विचार किया जाने हेतु प्रस्ताव पक्ष यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों का पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेंगी। श्री सौगत राय जी नॉट प्रेजेंट। सौगत राय जी अमेंडमेंट नंबर 4 and 5 नॉट। सौगत राय जी अमेंडमेंट नंबर 6 नॉट प्रेजेंट। प्रश्न यह है कि श्री सौगत राय जी 8 to 10 नॉट प्रेजेंट। खंडों की स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक की पारित किया जाए। Chairperson, Honorable Chairperson, sir, I move that the bill be passed as passed by Rajya Sabha. पक्ष एक की विधेयक का पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 5 दिसंबर 2023 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। थैंक यू।
Act. A bill passed by both houses of Parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings. सामने देख सकते हैं, इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले जिन कमांडोज ने दुश्मन की चौकी को नष्ट किया था, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं। इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए STAR is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. स्टाई रोप इस समय रबड़ की नौका पर पकड़ ली गई है। इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडोज हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राणपणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रू सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया। Naval aviation forms a key part of our operations to support the fleet in achieving its objectives. Ladies and gentlemen, today you will catch a glimpse of the might of the Naval Air Arm, wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. The aircraft will approach the display area from your left side. Ladies and gentlemen, as we can see from the left side are the Chetak helicopter. The Angels, the Chetak helicopter, is a single-engine light utility helicopter manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited at Bengaluru. Chetaks are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling, and to transport passenger or equipment. The aircraft are based at almost all air bases of the Indian Navy. They can cruise at speeds of 185 kilometers per hour and can sustain up to 3 hours in air without refueling. Ladies and gentlemen, leading the flypast for the day are the Angels Chetak helicopter. It has been flown by Commander Srijit Gopal. देवियों सज्जनों, मंच के सामने आ रहे हैं चेतक हेलीकॉप्टर, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि देखन में छोटे लगे, काम करें गंभीर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में बने ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं। उनकी उपयोगिता के कारण चेतक भारतीय नौसेना के हर बेस में हैं। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये लगभग 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और लगभग 3 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। इनकी कमान कर रहे हैं
कमांडर श्रीजीत गोपाल। मंच के सामने से फॉर्मेशन ऑफ चेतक आपके सामने से गुजरता हुआ एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, क्रम में अगले हेलीकॉप्टर स्वदेश में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH हैं, जो बेंगलोर में बने हैं। ALH 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चेतक की तरह ये भी बहुआयामी और बहुउपयोगी हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं। ALH की कमान कर रहे हैं कमांडर धनुष मेनन। बाईं तरफ नजर घुमा के देखिए, अगला हेलीकॉप्टर जो आ रहा है वह है MS-60 रोमियो। यह हेलीकॉप्टर अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। सबसे अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए हैं। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। The MS-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems and weapons technology. देवी और सज्जनों, बाईं तरफ से मंच के सामने आ रहा है अगला हेलीकॉप्टर कामोव 31, जिसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार की विशेष क्षमता वाला यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाता है। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर कौशिक धर। Next in formation are the Sea King helicopters. These are the advanced anti-submarine warfare helicopters. These helicopters are also known as flying frigates due to their advanced sensors and firepower. The helicopter formation is being led by Commander Deepak Diwan. Ladies and gentlemen, Flying Frigate Sea King 42 Bravo. हेलिकॉप्टरचे शक्ती प्रदर्शन बघूनच आश्चर्यचकित झाला असाल तर अजून काही क्षण धीर धरा, कारण आता आपल्या सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणारे कर्तव्य दाखवायला येत आहेत भारतीय नौसेनेचे फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्ट आणि फाइटर जेट्स. Following the Sea Kings are the Dornier aircraft. These are the medium-range maritime surveillance aircraft. Dorniers are the workhorses of the Indian Navy and are extensively used for tactical operations like maritime reconnaissance and patrolling missions all around the mainland as well as our island territories. The aircraft is indigenously built by Hindustan Aeronautics Limited and has been active in service for the past 3 decades. Leading the formation today is Captain Siddharth Rao. Ladies and gentlemen, the Dorniers. The next aircraft is the P-8I, Poseidon. This multi-role aircraft has proven its mettle by being the sixth sense of the fleet and has exceeded more than 40,000 hours of flying since its induction. It is a multi-dimensional lethal instrument of war equipped with torpedoes to attack enemy submarines, anti-ship missiles, and long-range, state-of-the-art radar to classify each contact it encounters at high seas. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the left as we can see the P-8I. Ladies and gentlemen, P-8I Poseidon, a big round of applause. देवी और सज्जनों, यह आकाश में चमकती हुई रोशनी इस बात का पर्याय है कि अब बारी आ गई है समुद्र में अपना दमखम दिखाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो क्रम में पहले आ रहा है देश में निर्मित LCA नेवी, जो तेजस का नेवी रूप है। ये लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो HAL में बना है। यह अपनी श्रेणी का सबसे छोटा व हल्का परंतु सबसे घातक फाइटर है।
ये नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। अपनी सर्वाधिक गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये फाइटर, इसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन अमित कावड़े। कुछ ही पलों में मंच के सामने से गुजरने आपकी बाईं तरफ इस समय आ रहा है LCA नेवी। आकाश में रोशनी बिखेरता हुआ LCA नेवी। देवियों सज्जनों, कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने गर्जना करते हुए फ्लाई पास करने के लिए आ रहे हैं हॉक्स। ये मूलतः फ्लाइंग ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अपनी निगाहें बाईं तरफ ही रखिए। ये दिल को स्पंदित करने वाली ध्वनि के साथ पलक झपकते ही ओझिल हो जाते हैं। बाईं तरफ से आ रहे हैं हॉक्स। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान सामने क्षितिज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। सूर्य की किरणों को चुनौती देती हुई MiG-29 की फाइटर स्क्वाड्रन आ रही है पैंथर्स। ये ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और INS विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत ये फाइटर्स हैं और 2009 से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। 2200 किलोमीटर की उच्चतम रफ्तार से उड़ने वाले इन विमानों के कमान कर रहे हैं कैप्टन विकास नरवाल। सामने से आते हुए MiG-29 पैंथर्स। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। अब आप क्षितिज के पास से एक और MiG-29 के पैंथर को आता हुआ देख सकते हैं। यह युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए फिगर ऑफ 8 नॉट का फिगर बनाने जा रहा है आपके समक्ष। मिक्स की ध्वनि निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर रही होगी और शुरू होता है हवाई करतब। इस समय अंग्रेजी का 8 आपके समक्ष हवा में बनाता हुआ बहुत संयम और कौशल की जरूरत होती है इस प्रकार का मनोवर करने के लिए। चीते की भांति हमला करने वाले ये हवाई विमान पैंथर्स अपने नाम को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं, यथा नामो तथा गुणो। अब आप चीते को एक लीप लेते हुए ऊपर देख रहे हैं। आकाश की बुलंदियों तक पहुंचने वाले ये हमारे फाइटर्स। देवी और सज्जनों, हमारे जांबाज पायलट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। Now, ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause the Indian Naval Band, led by Drum Major, Master Chief Musician Anthony Raj.